If I could, I would get myself out this mess. If I could, I would get myself out this madness. If I could, I would get myself out this mess. If I could, I would get myself out this madness. On my clock, in this cock, mask on my face. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. On my clock, in this cock, mask on my face. Hesitate to give me some, I'ma catch
Everybody feel it, come around with the rhythm, it's a sound, everybody get down. Everybody feel it, come around with the rhythm, it's a sound, everybody get down when we give it to you. Around with the rhythm, it's a sound, the rhythm, it's a sound, the rhythm, it's a sound, the rhythm, it's a sound. Get down, come on, get down. Get down, come on, get down. Get down, come on, get down. We give it to you.
taste of berries on my tongue. Sipping on a feeling, sunny's got me healing. Vibing out to your guitar. I don't wanna go yet, watch another sunset. Wishing on a shooting star. Ooh, I know that it has to end. Ooh, maybe we could just pretend. Ooh, I know that it has to end. Ooh, maybe we could just pretend. I know that it has to end. Ooh, maybe we could just pretend. Ooh, I know that it has to end. Maybe we could just pretend. Don't stop the rave. Can't feel my body, but don't stop the rave. Rave, 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 rave. Now everybody from the front to the back go. Now everybody from the front to the back. Go, 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 go. Now everybody from the front to the back go. Don't stop the party. Don't stop the rave. 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 Can't feel my body, but don't stop the rave. Don't stop the party. Don't stop the rave. Can't feel my body, but don't stop the rave. Rave, 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 rave. Now everybody from the front to the back go. Now everybody from the front to the back go, 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 go.
From the front to the back though, don't stop the party, don't stop the rave. Can't feel my body, but don't stop the rave. Don't stop the party, don't stop the rave. Can't feel my body, but don't stop the rave.
face. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. Look on my Glock, in this cock mask on my face. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. In this cock mask on my face. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. Look on my Glock, in this cock mask on my face. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. Yeah, this for the players out there. Check out this dope shit, man. Now we getting paid. Another day, another dollar living in the bay. Hustling for my baby, trying to pay in my escape. I ain't staying in the matrix, really trying to get my papers. Hello everyone and welcome to Arena Esports यहाँ पे powered by Etisalat EN and जहाँ पे strategic partner AD Gaming और उसके साथ podcast partner Platonia है। मैं हूँ आपका host RC और आज मुझे join किया है for this wonderful occasion हारिस ने। हारिस, how are you और कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन के बारे में? I'm actually feeling good about the games. Of course, the team today playing जो आज के दिन की तरह खेल रही है टीमें, वो मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि आज क्या होने वाला है। मुकाबला टक्कर का होगा, ये तो सबको पता है कि टीम्स जितनी भी खेल रही हैं आरजी, वो किसी से कम नहीं रहने वाली। वी डोंट नो कि आज किसका कमबैक होने वाला है, कौन यहाँ पर टेबल टॉप पे राइज करने वाला है। डेफिनेटली आज हमारे पास काफ़ी एक क्लोज कंपटीशन है बट वो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन की बात नहीं। अरीना ई स्पोर्ट्स जनरली हमारे पास एक बहुत ही वंडरफुल कंपटीशन वंडरफुल प्लेटफॉर्म चल रहा है जहाँ पे हमारे पास बहुत क्लोज कॉल्स आती हैं। एक दो पॉइंट्स के ऊपर टीम्स क्वालिफाई कर पाती है या नहीं पाती, बट थोड़ा सा हम रोड पे आपको डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास इन्विटेशनल क्वालिफायर Q2 चल रहा है। वी आर डन विद द क्वालिफायर नंबर 1। अभी इसी तरह हमारे पास इन्विटेशनल क्वालिफायर 2 है, फिर 3 और 4 होंगे और फिर हमारे पास लास्ट चांस क्वालिफायर भी होने को है। तो हमारे पास अभी बहुत से और मौके हैं, बहुत बड़ा हमारे पास ये टूर्नामेंट रहता है। तो अभी आगे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि ये कहानी कैसे चलती है और कहाँ तक जाती है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग हारिस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा सफ़र। ऑफ कोर्स और फ्री फायर की अगर बात की जाए तो फ्री फायर में हमेशा हमें कंपटीशन ही देखने को मिलते हैं। टीम्स जो यहाँ तक पहुंची हैं वो किसी से कम नहीं होने वाली। जो ऑफ कोर्स जहाँ तक पहुंचना अभी एक मतलब कि भी काफ़ी आपको मेहनत करनी है इस रोड तक, इस स्टेज तक पहुंचना। किसी मतलब कि भी आम नॉर्मल टीम की बात नहीं। यहाँ पर जो भी टीम पहुंचेगी इस स्टेज तक पहुंचेगी, वो कुछ आपने मतलब बैक प्रीवियस टाइम में और अभी इतना कुछ कर लिया, उसने अचीव कर लिया तो इधर तक पहुंची है। तो ऑफ कोर्स एक वही मैं वंस अगेन कहूंगा कि टक्कर का मुकाबला आरजी आज के दिन हमें देखने को मिलेगा। ये वर्थ वाचिंग। ओह माय गुडनेस, वर्थ वाचिंग।
हमें मैच आज को देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं हारिस, ऐसे मौके आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। बट जहाँ पे हमने रोड मैप को पहले भी डिस्कस किया था, हम एक दफ़ा फिर बताते चले कि हमारे पास Q2 फाइनल से आती हैं। मंथली फाइनल्स के अंदर 15 टीमें खेलती हैं। ऑब्वियसली 15 टीमों की ये लॉबी बनती है। दैट इज द सेम केस फॉर हमारे पास मंथली फाइनल्स 3, मंथली फाइनल्स 4 एज वेल। तो इन टोटल हमारे पास 4 क्वालिफायर्स हैं। बट एक पांचवा क्वालिफायर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिफायर है, दैट विल बी द लास्ट चांस क्वालिफायर, जिसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा एज द नेम सजेस्ट। और टॉप 12 टीम्स लास्ट चांस क्वालिफायर से आके आएंगी प्लेऑफ्स के अंदर। तो हमारे पास 2 ग्रुप बनेंगे प्लेऑफ के अंदर हारिस, जहां पे 28 टीमें खेल रही होंगी, which will be an interesting turnout. But as much as that factor goes on, एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जो फैक्टर रहता है कि अगर आप इनविटेशनल क्वालिफायर से क्वालिफाई कर जाते हैं मंथली फाइनल के लिए, और मंथली फाइनल आप चैंपियन बनते हैं, यू डायरेक्ट गेट एन इनवाइट टू ग्रैंड फाइनल। सो दैट इज समथिंग कि आप प्ले ऑफ्स मिस कर देंगे 2 ग्रुप्स का। सो यू नीड टू बी मेकिंग श्योर कि if you want to skip a whole step, you go into the top one, या आप चैंपियन बने मंथली फाइनल के। एग्जैक्टली बट दोस्तों प्राइस पूल की बात कर लेते हैं विच इज अ 1500 यूएसडी डॉलर्स। और अगर बात कीजिए एक प्राइस पूल की, एक हैंडसम प्राइस पूल यहाँ पे रहने वाला है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे रहेंगी। जो नंबर 1 आने वाला है उसको मिलेंगे $500। उसके बाद अगर बात की जाए सेकंड 350, देन थर्ड 250, फोर्थ 200, फिफ्थ 150 एंड द प्लेस सिक्स्थ रीना ई स्पोर्ट्स पॉइंट जो सिक्स पे आएगी टीम, उसको $50 मिलेंगे। मतलब कोई भी खाली हाथ नहीं जाने वाला सिक्स प्लेस तक का। एग्जैक्टली यहाँ पे मैं उसके बाद हमें कोई भी देखना नहीं पड़ेगा 6 प्लेस के बाद किसी को मिलते हैं। सो यू नीड टू बी इन द टॉप 1। हमें $1300 कैश में मिलेंगे, $200 हमें वर्थ ऑफ अरीना स्पोर्ट्स पॉइंट्स मिलेंगे, जो आप बाद में भी आपको काफी चीजों का फायदा होगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म प्लान। अरीना स्पोर्ट इज हियर टू स्टे, here to invest, and not just free fire। हारिस, जो चीज हमें पसंद आई है अरीना स्पोर्ट्स इन जनरली, हमें डोटा, CSGO, PUBG, हमें मल्टीपल इवन MLBB के अंदर भी हमें देते हुए नजर आ रहा है। सो इट्स एग्जैक्टली प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म to multiple type of games across mobile, across PC gaming, to make sure that we cater to every type of gamer out there। और हमने फर्स्ट पर्सन शूटर भी रखे, हमने स्ट्रैटेजी गेम भी रखी हुई, हमने जिस तरह की ये PUBG भी रखी हुई कि आप एक दुनिया में उतरे एंड यू जस्ट लाइक वो फ्री वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट भी हमने रखा हुआ है। एग्जैक्टली So in terms of every gamer is catered, and this is what I love about Arena Esports. And looking at the game plan, looking at the format that they have developed, it is here to stay over the courses of months and years. They are here to make sure that esports grow as an industry। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी। हर प्लेयर को, हर मतलब कि खेलने वाले को यहाँ पर उन्होंने भी दावत दी है कि आए अपने जितने भी अगर अपने आपके एक्सपर्टीज हैं वो स्टेज के ऊपर मतलब कि भी इजहार करें और विन करें। मतलब नॉट जस्ट आप खेलें आके, बट विन भी कर सकते हैं। आपको एक हैंडसम अमाउंट भी प्राइस पूल के तौर पे दी जाएगी। आरजी विच दिस आरजी ने जो बात की वाकई एक बहुत अच्छी बात है। इरीना ई स्पोर्ट्स जिस तरह की इस तरह के इवेंट्स लेके आता जा रहा है, आगे भी बहुत सारे इवेंट्स आने हैं। तो मेक श्योर यू गाइस हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक कर दें और ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, योर गेमर फ्रेंड्स, बिकॉज अभी तक क्वालिफायर्स राउंड चल रहे हैं। आपका भी चांस बन सकता है। इफ यू आर गुड इन द गेम you can get in. Definitely you can get in if you're good enough, and that is the only thing that matters कि ये platform, the way ये पूरा road map हमने discuss किया था, हमने qualifiers को detail में plan out किया था, last chance qualifiers भी लेके आए थे, उसकी एक ही वजह रहने वाली थी, so that everybody gets a chance, and if they deserve to be in the best, they definitely will be in the top teams as well। लेकिन आज के दिन की बात करें, we'll have discussed the tournament काफी ज़्यादा। आज के दिन के ऊपर आते हैं, 5 maps खेले जाएंगे like the last time। The first map will be played on Purgatory, the second map on Bermuda, third map Alpine के ऊपर, and there comes the repetition on the fourth map of Purgatory, and fifth map फिर Bermuda के ऊपर खेला जाएगा। So obviously it's going to be quick, it's going to be fast, it's going to be intense। So I hope the teams are ready, और ये 5 matches decide करेंगे आपकी fate, whether you are qualifying or not, whether you have the chance to be a champion or not। So it depends on all these 5 matches, और वही वाली बात है, आपको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा कि आप बार बार आए और अगले दिन ट्राई करें। एग्जैक्टली आरजी, बार बार चांस नहीं मिलने वाला। बट अब पॉइंट सिस्टम की अगर बात की जाए, अगर मैच के ऊपर आप उतर रहे हैं, पहले ही मैच के अंदर अगर आपने
पहली पोजीशन ले ली तो आपको मिलेंगे 12 पॉइंट्स। सेकंड आने वाले को यहाँ पर मिलेंगे 9 पॉइंट्स, इसी तरह थर्ड को 8 और फोर्थ को 7 है, फिफ्थ को 6 है, सिक्स को 5 पॉइंट्स, 7 4 और उसके बाद 8 पोजीशन पे जो आएगा उसको 3 पॉइंट मिलेंगे, 9 को 2, 10 को 1 मिलेंगे। उसके बाद कोई भी पोजीशन पे अगर आप लैंड करते हैं तो आई एम सॉरी यू गेट नन, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। बट एलिमिनेशन अगर आप पीछे रह के भी करते हैं तो आपको एक पॉइंट लाजमी मिलेगा। तो एलिमिनेशन के ऊपर भी फोकस रखना है और प्लेसमेंट के ऊपर भी आपने नजर रखनी है कि वो भी आपने ऑफ कोर्स बुया करेंगे तो आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे, अदरवाइज यू मिस द चांस टू विन ए बिग प्राइस पूल। एंड ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा प्राइस पूल जीतने का चांस रहता है, बट हमें प्लेसमेंट के साथ साथ एलिमिनेशन भी देखनी पड़ेंगी। वी विल हैव अ कपल ऑफ टीम जो कि शुरू से हमारे पास अग्रेसिव होती हुई नजर आएंगी, कुछ टीमें हमें प्लेसमेंट को प्रेफर करते नजर आएंगी और आखिर में जाके बुया स्कोर करना चाहेंगी। सो आई वांट टू सी वो कौन सी टीम्स है। जैसे हमें लास्ट टाइम भी कुछ हमारे पास एक टीम्स के मेटा टीम्स की हमारी स्ट्रेटजी नजर आ चुकी थी, कोई टीम जल्दी उतरती हैं, हमारे पास स्टार्ट से लेकर एंड तक फाइट लेती हुई नजर आती है। सो ऑब्वियसली एलिमिनेशन के एक अच्छे पॉइंट होने, बुया के भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स होने की वजह से टीमें हमें दोनों काम करते हुए नजर आती हैं। बट दी ओनली टीम दैट इज बेटर कि वो टीम होगी जो कि दोनों काम करते हुए नजर आएगी, जो पॉइंट्स भी लेगी, प्लेसमेंट के जो एलिमिनेशन भी करेगी। एंड वी हैव सीन टीम जो कि 17 18 18 पॉइंट्स ले जाती हैं और उसके बाद दे मेक श्योर कि वो बुया भी लेके जाएं एंड दे गेट अ वेरी ह्यूज जंप इन द पॉइंट्स एज वेल। तो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अगली देखें तो टीम्स को देखें, तो टीम्स की अगर हम बात करें, आर्क टीम मौजूद है, ब्लैक पी भी मौजूद है, फैंटास्टिक फोर, ग्रेट वॉल, आइकॉन, आईएनएस स्क्वाड है, हमारे पास एन 9 स्पोर्ट्स मौजूद है, नाबा स्पोर्ट्स, उसके बाद ओलंपिया, प्रेडेटर, रेबल्स, सैवेज, शिफ्ट, स्टार्स डीजी, द लीडर्स एंड एक्स शूटर। सब बिग नेम्स अमंग अस, हारिस। एग्जैक्टली द बिग नेम वी कैन सी हियर, और यहाँ पर नॉट जस्ट बिग नेम बट अगर बात की जाए, ऑफ कोर्स मैंने गेम यहाँ पर देखी हुई है प्रेडेटर्स बॉयज की, मैंने गेम देखी हुई यहाँ पर एक्स शूटर्स की, इवन द स्टार्स डीजी, ये वो बंदे हैं जिनको मैंने पहले से देखा हुआ है। बट काफ़ी सारी टीम्स ऐसी हैं जो मेरे लिए भी न्यू है इस रीजन के अंदर, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज ही। एंड वी आर गोइंग टू विटनेस ए बिग क्लैशेस इन द बीस्ट टीम्स। डेफिनेटली इन बीस टीम्स, प्रीडेटर का नाम ने पहले भी सुन चुके हैं, फैंटास्टिक फोर ऑब्वियसली दैट इज अनदर बिग नेम टू बी हर्ड अबाउट एज वेल, द लीडर्स, ये वो स्क्वाड्स हैं जो कि मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर बहुत जाने पहचाने जाते हैं। सो इट इज़ वेरी पर्सनली इज गुड टू सी कि ये वो टीम्स हैं जो कि इस रीजन के अंदर कैसे सोचती है, कैसे खेलते हुए नजर आती हैं। एंड आई वांट टू सी एवरीथिंग। ऑब्वियसली आई हैव बीन फेमिलियर टू द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, हमें उस रीजन का ज़्यादा पता है, हमें रीजन का अंदाजा है कि कौन सी टीम कैसे खेलती है। But coming to Free Fire and looking at these teams, it is interesting, it is good to see कि यार ये वो गेम्स, ये वाली टीमें अपने मेटा को कैसे लेके जाती हैं, यहाँ पे हमें ड्रॉप्स कैसे करती है, क्लैशेस कैसे लेते हैं, रोटेशंस कैसे देती हैं, एंड इन द एंड बूया कैसे सिक्योर करती हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी अ लॉट टू लर्न एज वेल। एंड ऑब्वियसली कुछ टीमें हैं जिन्होंने यहाँ पे नए नाम भी नजर आ रहे, कुछ टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेला होगा, which means that there is a lot of surprise factor involved. So I hope कि टीम्स रेडी हों, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी क्लैश लैंडिंग होने के 100% चांस है। एंड दिस इज द लास्ट टाइम एज वेल वी रिमेंबर इन द लास्ट इन्विटेशनल क्वालिफायर हारिस के हमें एक एक 5 स्क्वाड्स, 5 मुख्तलिफ स्क्वाड्स, दैट मींस 10 स्क्वाड्स अर्ली क्लैश लेते हुए नजर आए थे। Oh my goodness. I just love to witness this as well in this lobby. Let's see कि वो चीज़ रिपीट होती है आरजी इस लॉबी के अंदर कि नहीं। कुछ ही देर के अंदर ऑफ कोर्स हमारा जो मैच, पहला मैच रहने वाला है जो कि खेला जाएगा प्रोग्रेटरी के ऊपर, और नो डाउट ये मैप ऐसा रहने वाला है जिस मैप के ऊपर टीम्स की मैक्सिमम, कहते हैं ना कि एक हैंड होल्ड होता है, इनको पता होता है कि यार के वेयर इज द डिप, कहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं, एवरी सिंगल थिंग। मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला मैप है नॉर्मल रूटीन के अंदर भी, वो भी इसी मैप के ऊपर टीम्स प्रैक्टिस कर रही होती हैं लोकली। बट अगर बात की जाए इस मैप की, तो आज ये मैप जिस तरह मैंने बोला कि स्टेडियबल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खेले जाने वाला मैप है, तो टीम का इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी रहेगा। तो वी कांट से दैट कि कौन सी टीम आज ऊपर जाने वाली है, कौन सी नीचे जाने वाली है, ये तो वक्त ही बताएगा, सिचुएशन बताएगी कि सिचुएशन किसको फेवर दे रही है, सर्कल किसको फेवर दे रहा है। ये चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी जैसे ही गेम चलना स्टार्ट होगी आरजी। बट प्रोग्रेटरी, what do you think about it? आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैप। ऑब्वियसली हमारे पास कुछ अच्छे यहाँ पे ड्रॉ स्पॉट भी रहते हैं। दूसरी की अच्छी बात रहती है कि
जो उस साइड के ऊपर टीमों की फेमिलियरिटी है और वहाँ पे उनकी यहाँ पे ड्रॉ स्पॉट की थोड़ी सी इनकी फेमिलियरिटी है, दैट मेक्स इट अ बेटर मैप फॉर देम कि वो वहाँ पे उतरना पसंद करते हैं। ऑब्वियसली कुछ टीमें हमारे ब्लू जोन की तरफ खेलना चाहती हैं, स्की लॉजेस जैसे एरियाज के अंदर इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि लोग टीम स्की लॉजेस की तरफ खेलती है, वहाँ पे भी हमारे पास क्लैश होते हैं। हमें ब्रासीलिया की तरफ भी हमारे पास क्लैशेस थोड़े से नजर आते हैं। सो इन द मैप ऑफ पर्गेटरी कुछ टीमें हमें इस तरफ सेंटर्स ईस्ट और वेस्ट की तरफ खेलने नजर आती हैं। अगर आपने जनरली क्लैशेस को अवॉइड करना है, क्रॉस रोड इज अ गुड प्लेस टू गो। मॉट हाउस कोई भी अमूमन नहीं जाता, देयर वर ओनली फ्यू टीम्स लास्ट टाइम एज वेल जो है मॉट हाउस जाते हुए नजर आई थी। दैट मेक श्योर कि आपके पास एक स्टार्ट में गन्स शन्स मिल जाए, आप आराम से कूद से आराम से ड्रॉप कर सकते हैं विदाउट अ क्लैश एज वेल। लेकिन ब्रासीलिया, लंबर मिल, दैट सेंट्रल गोल्फ कोर्स, खासतौर पे स्की लॉजेस, दीज आर द एरियाज दैट विल लाइकली टू बी गेट हिट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर क्लैश, इफ यू आर लुकिंग फॉर अर्ली एलिमिनेशंस और मे बी जस्ट सम फाइट, ये वो एरियाज है जहां आपको डेफिनेटली हिट करना चाहिए। एग्जैक्टली आरजी, ये जो चीज़, ये जो स्पेसिफिक एरियाज रहने वाले हैं, अगर तो यहाँ पर टीम्स उतरती हैं, मोस्ट प्रोबली यहाँ पर टीम्स कुछ ऐसी भी होंगी जिनके सेम ड्रॉप्स होने वाले हैं। अर्ली क्लैश लैंडिंग्स में भी हमें क्लैश फाइट्स हमें देखने को मिले कि ये प्लेस हमारी रहने वाली है। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन सी, जो ऑफ कोर्स जो ड्रॉप स्पॉट रहने वाला है वो किस टीम के को बिलोंग करता है। ऑफ कोर्स जिसका यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा रहने वाली है वो ही वो जगह होल्ड करता हुआ नजर दिखेगा। बट पहला मैच ऑफ कोर्स एक ऐसा मैच होता है जिससे कहानी करके कहानी स्टार्ट होती है, और पहले मैच के बाद ही दबदबा बढ़ता है दूसरी टीमों के ऊपर कि ये ऊपर आ चुकी है। भुया पहले मैच में निकाल लिया इसने, बट अब आगे के मैच में क्या करेंगे। ऑफ कोर्स एक बड़ा पॉइंट्स उनके पास चलेंगे, प्लेसमेंट के 12 पॉइंट्स चले जाएंगे उनके पास, और ऑफ कोर्स अगर वो भुया निकालती है, सिक्योर करती है, तो किल्स भी उनके पास रहने वाले हैं। हे यू गो, हमारा पहला मैच हो चुका है स्टार्ट आरजी, और टीम्स अपने अपने ड्रॉप्स के ऊपर जाते हुए भी दिख रही हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर बात की जाए टीम्स जिस तरह स्प्लिट लूटिंग के सिनेरियोस के ऊपर जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि टीम्स अगर देखें लेफ्ट टू राइट सारे एक एक सिंगल प्लेयर जो है लेफ्ट टू राइट नजर आ रहा है। बट अगर बात की जाए नीचे, अगर हम क्लैश देखें कि स्मॉल आइलैंड के ऊपर हमें आरजी नॉट जस्ट 1 2 3, ओ माय गुडनेस, 5 टीमें हमें स्मॉल आइलैंड पे हमें देखने को मिल रही। ऑब्वियसली लंबर मिलर सेंट्रल का एरिया काफी ज्यादा हिट हुआ है, यहाँ पे हमारे पास फाइट होते हुए नजर आएगी। और आईएनएस के प्लेयर्स ऑलरेडी एक प्लेयर का बल्कि दो प्लेयर को एलिमिनेट कर चुके हैं। दूसरी साइड के ऊपर एसवीजी और पीटीआर की फाइट होते हुए नजर आ रही है। फर्स्ट ब्लड भी आईएनएस को मिल जाता है, और ऑब्वियसली दे गॉट द फर्स्ट किल एज वेल। और एसवीजी भी यहाँ पे फाइट लेते नजर आ रही है। पुलिस का स्क्वाड हमें दोबारा नजर आता है, एंड फॉर नाउ दे सीम इन अ बिट ऑफ अ ट्रबल एज वेल। ऑन द अदर साइड हमारे पास N9, दे सकून से कैंप साइट के अंदर लूट करे, कैंप साइट के अंदर सकून से मौजूद है, कोई टेंशन की बात नहीं है, एंड दे आर हैप्पी टू गो टुवर्ड्स द अदर साइड एज वेल। लेकिन साथ साथ अगर देखें तो हमारे पास ऑलरेडी अच्छे खासे प्लेयर्स यहाँ से जा चुके हैं, एंड दैट नंबर इज नॉट स्टॉपिंग एज वेल। सैवेजेस हमारे पास न्यू किल लीडर्स में भी आ चुके हैं। पुलिस के क्लॉ फाइनली थोड़ा सा रिटालिएट करते हैं और वहां पे डैमेज देना चाहते हैं, और वहां पे वर्ता को भी यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, एंड दैट इज वन गुड साइड जो पुलिस के स्क्वाड की तरफ से नजर आई। वरना अमूमन पुलिस के प्लेयर्स हमें एलिमिनेट होते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल आरजी, और यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन आने वाली। टीम 7 जो कि यहाँ पर अपने अर्ली रोटेशन के साथ ही अपनी लूट करती हुई नजर आ रही है। पैन उनके हाथ में रहने वाला है। दो, अगर बात कीजिए, दो गन्स सेम उन्होंने रखी हुई है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और दूसरे साइड पे बात करें फाइट्स, हाँ हमें स्टार्ट भी होते हुए दिख रही है। फैक्ट्री एरिया अगर बात कीजिए, तो ये एरिया ऐसा रहने वाला है जहाँ पर काफ़ी फाइट होने वाली है, अच्छी फाइट होने वाली है। लेट्स सी क्या बनता है इसके वर्ल्ड। जीडब्ल्यू के बॉयज यहाँ पर भी एम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी साइड पे अगर बात कीजिए टीम्स एक अच्छे एरिया के अंदर होल्ड अप कर रही हैं। बट ग्लू वॉल लगाते हुए, ग्लू वॉल की मदद से आगे बढ़ते हैं ताकि इनको कोई शॉट्स ना लग सके। बट जिस साइड पे जा रहे हैं आरजी, वहाँ पर टीम ऑलरेडी मौजूद रहने वाली है। ऑब्वियसली ऑन द अदर साइड हमारे पास जीडब्ल्यू की 2 एलिमिनेशंस तो हो चुकी है। मेटा ने भी अपनी किल कंफर्म कर ली। दे अदर 2 प्लेयर्स, पीएक्सएल को थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा, बाकी सारी टीम इससे दूर रहने वाली है। बट देयर समबडी इन द सेंटर एज वेल, वो आईएनएस के प्लेयर रहते हैं। इज गोइंग टू बी अ वेरी डीप ट्रबल। अगर उनको अंदाजा नहीं होता कि यहाँ पे प्लेयर मौजूद है, एक इजी किल यहाँ पे दे सकते हैं। आवाज बहुत क्रिएट की जाए उनकी तरफ से। लुक एट दैट, okay, what Oh my just happened? I thought कि they were on the same team. I knew they were on the different team. But जिस confidence से एक दूसरे को देखा है, जिस confidence से वहाँ खड़े हुए गए हैं, I thought कि they were on the same team. I was checking myself, लेकिन नहीं. But look at that, and एक को अपने spot किया जाता है, jump shot दी जाएगी. Although Meta 2 pack की health काफी कम कर दी जाती है, but they still are victorious in the end. और अपने player को यहाँ पे revenge कर लिया जाएगा उनकी तरफ से। PXL को revive करने की जरूरत है, तो बाकी भी INS के players आगे तरफ बढ़ना चाहते हैं। 2 pack की अपनी health काफी कम है. He needs to be careful. Unfortunately
अनफॉर्चुनेटली आईएनएस के यूरी भी यहाँ पे नॉक डाउन हो जाएंगे और अब आईएनएस के आई थिंक सिर्फ और सिर्फ पीछे एक ही प्लेयर मौजूद है जो यहाँ पे नहीं रहने वाले, यहाँ पे मौजूद है बल्कि एग्जैक्टली वहाँ पे स्पॉट के ले जाएगा उनकी तरफ से और शॉट्स लैंड की जाती है। मेटा नीड्स टू बी केयरफुल, वन शॉट टू द बॉडी और वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ब्लू वॉल का इस्तेमाल किया जाता है बट अनफॉर्चुनेटली हाथ जूनो के ऊपर भी काफी ज्यादा शॉट्स आती है। ही इज डाउन एंड ही इज आउट। आईएनएस माइट बी द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड। एग्जैक्टली यहाँ पर पहली टीम रहेगी जो यहाँ से हमें छोड़ के जाएगी, इस मैदान को छोड़ के जाएगी। और लेट्स सी कि अभी भी बहुत सारे मैचेस रहने वाले, 4 मैप्स अभी भी पड़े हैं दोस्तों। तो आई होप कि यहाँ पे कम बैक भी देखने को मिल सकता है। बट दूसरे पे बात की जाए, यहाँ पे फाइट अभी भी हमें होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर एबिलिटीज प्लस ग्लू वॉल है, एक अच्छा कंपटीशन है, 1v1 फाइट रहने वाली है। लुक एट दिस, ग्लू वॉल लगाई जाती है, एक अच्छा ग्रेनेड, 1 HP एंड हिट। ओह माय गुडनेस, एक अच्छी फाइट हमें देखने को मिली 1v1। किल कंफर्म करते हैं, अपने नाम 1 किल और आ जाएगी। मिल एरिया अभी भी खाली नहीं होता दोस्तों, अभी भी यहाँ पे 2 टीमें रहने वाली हैं। फाइट अभी भी कैरी ऑन चलती हुई नजर आ रही है। बट लेट्स सी के क्या बनने वाला है। लेट्स सी के मिल के अंदर से यहाँ पे किस टीम खेलते हुए नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर काफी एक क्लस्टर एरिया रहने वाला है, जहाँ पर उनकी छोटा एरिया रहेगा, जहाँ से वो निकलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। ब्लू वॉल की मदद से उन्होंने यहाँ पर कैरी तो करना चाहा, बट न्यू किल लीडर यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। किल्स यहाँ पर जिस तरह करते हुए नजर आ रहे हैं, टीम स्टार वंस अगेन अपना नाम यहाँ पर एक होल्ड अप करते हुए आगे बढ़ेगी। एग्जैक्टली लंबर का यहाँ पे एरिया भी काफी ज्यादा फाइट हुई थी। GW विल बी द विनर इन द एंड। इट वाज अ बिग फाइट। ऑब्वियसली हमें इन्होंने प्लेयर्स को भी लूज करते हुए देखा, PXL दोबारा रिवाइव कर लिए जाएंगे बट इट केम क्लोज। फॉर्चुनेटली फॉर JXL वो 2 फाइट्स जीत जाते हैं, 7 एलिमिनेशन हो जाती है एंड द बेस्ट थिंग इज दे आर मूविंग अहेड विद 4 प्लेयर्स राइट नाउ। एज फॉर आर्क द ओनली प्लेयर लेफ्ट बिहाइंड, राइट साइड पे RL के एक ही प्लेयर मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इनके पास ऑग भी मौजूद है और सामने इनको नजर भी आ रहा है, प्लेयर घूम फिर भी रहे हैं बट ही इज नॉट गोइंग आउट ऑफ हिज वे टू टेक अ शॉट एज वेल, बिकॉज उन्हें पता है कि ये शॉट हमें एलिमिनेशन कंफर्म नहीं कर सकती। सो जस्ट प्लेइंग अ बिट अहेड बट लुकिंग एट द सर्कल राइट नाउ। हमारे पास सर्कल को देखा जाए तो ब्राजीलिया इज इन द सेंटर। हमारे पास INS के प्लेयर वहां पे जो बाकी रिमेनिंग है वहां पे आ चुके हैं। टीम GWL फ्रॉम साउथ ईस्ट साइड एज वेल एंटर हो रही है। टीमों को मेजरली रोटेट करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द टीम जो कि मेन आइलैंड के ऊपर नहीं मौजूद। GWL जैसी SFG से ये वो टीमें हैं जो कि हमें अंदर आने की जरूरत है, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। बट एक टीम जो हमारे पास 4 नंबर की रहती है, वो जो ब्राजीलिया खेल रही है, दैट इज द मोस्ट फेवरेबल लोकेशन फॉर देम एंड आई फील लाइक दे नीड टू होल्ड देयर पोजीशन। एग्जैक्टली सर्कल में भी हमें ब्राजीलिया को फेवर करता होगा। अभी देखिए आरजी और ऑफ कोर्स एक सेंटर पॉइंट ऑफ द मैप रहने वाला है। मैक्सिमम टीम्स की यही होता है सिचुएशन कि यार कि इस एरिया के अंदर हमने होल्ड अप करके खेलना है। लेट्स सी कि सर्कल जो है किस को फेवर करता है, किस टीम को फेवर करने वाला है, बिकॉज मैक्सिमम टीम्स वी कैन सी दैट है यहाँ पर एज टू एज खेलते नजर आ रही है। कुछ यहाँ पर प्लेयर जोन का डैमेज भी लेते हुए नजर आ रही है, विच इज नॉट गुड फॉर द टीम प्लेयर्स। ऑफ कोर्स यहाँ पर डैमेज भी उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फाइट्स भी अगर बात कीजिए आउट ऑफ द जोन, आउट ऑफ द सर्कल यहाँ पे खेलते हुए मुश्किल बन सकती है। बट लुक एट दिस सर्कल, ब्राजीलिया की तरफ ही जाएगा आरजी। और दूसरी साइड पे अगर बात कीजिए, थोड़ा सा नेक्स्ट लैंड को भी टच करता है, विच इज एक गुड साइन फॉर द टीम जो कि वो दूसरे एरिया पे रहने वाली है, तो क्रॉस ब्रिज रहने वाली है। लेट्स सी कि उनका क्या बनने वाला है। आर्क का जो एक ही प्लेयर रहता है एंड ही इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, ग्रेनेड थ्रो किया जाएगा, यहाँ पर भी ऑफ कोर्स डैमेज करके ही किल लिया जाएगा। एंड द लास्ट प्लेयर ऑफ द टीम आर्क, वो भी हमें यहाँ पर छोड़ के जाते हुए नजर आते हैं। बट दूसरे पे की बात कीजिए, ट्रिपल किल GW, यहाँ पर टोटल एलिमिनेशन इनके हाथ में रहते हैं, वो रहेंगे 8 पॉइंट्स इन्होंने ऑलरेडी इन्हें स्टार्ट ऑफ द मैच, जहाँ पर 13 टीमें अभी भी यहाँ पर अवेलेबल हैं इस मैप के ऊपर, वहां पर उनके पास 8 एलिमिनेशन रहती है। एंड नाउ दीज गाइज आर ग्रीडी फॉर मोर, एक वो कहते हैं ब्लड लग चुका है उनके हाथों पे, और दीज गाइज आर लुकिंग फॉर मोर ब्लड। Definitely, SVG on the other side, they are looking super sharp right now. The major concern है ये ब्रिज कैसे क्रॉस करते हैं, बट नेक्स्ट आराम सुकून से मूव करते हैं, आउट इन दी ओपन शॉट्स ले रहे हैं यहाँ पे SVG के प्लेयर्स, और यहाँ पे उनको अंदाजा है कि इसके प्लेयर्स मौजूद है, बट दे आर जस्ट सुपर गुड। RL यहाँ पे उनको सराउंड करके लेफ्ट साइड पे बैठी हुई है, वो भी एक टीम है जो सर्कल के टाइम पे एच पे मौजूद है, एंड अनदर टीम जो कि ब्लू जोन के साथ पुश कर रही है। SVG नीड्स टू गेट इनटू द सर्कल एज वेल एंड नीड्स टू गेट इनटू द कंपाउंड्स। RL को शायद अंदाजा नहीं कि प्लेयर्स इनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड SVG के नेक्स्ट फॉर्चुनेटली वो कंपाउंड्स के पास आ चुके हैं। नाउ समहाउ आई डोंट सी ओनली 2 प्लेयर्स फ्रॉम द साइड ऑफ टीम RL, और वो 2 प्लेयर्स का अब
2v4 यहाँ पे पुल ऑफ करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। एसवीजी पूरी की पूरी इस कंपाउंड के अंदर सिचुएशन हो चुकी है, प्लेयर को स्पॉट किया जा चुका है, शॉट्स लैंड करने की कोशिश की जा रही है बट एम नहीं किया जाता उनकी तरफ से। बट आरएल के प्लेयर अब एसवीजी के बाकी प्लेयर्स के सामने आ चुके हैं एंड नाउ वही होता है, पीपो यहाँ पे नॉकडाउन हो जाएंगे बट वो वहाँ पे नॉक होंगे किसी और की तरफ से। एंड आरएल के बाकी प्लेयर्स भी हमें नजर आ रही है, नूर यहाँ पे उनकी एचपी काफी कम हो चुकी है। एग्जैक्टली यहाँ पे काफी एचपी कम हो चुकी है। ग्लू वॉल का इस्तेमाल वंस अगेन क्लोज किया जाता है, नॉक करने की कोशिश, काफी डैमेज कर देंगे यहाँ पर एसवीजी के बॉयज आगे हल्ला बोलते हुए और क्लोज में जाकर एक और किल अपने नाम करते हैं। ग्लू वॉल्स का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है एसवीजी की तरफ से, 7 टोटल एलिमिनेशन इनके भी हाथ में आ चुके हैं। अभी टाइम गुजर चुका है टोटल पूरे के पूरे 9 मिनट और अब टीम एसवीजी इज मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टोटल 8 किल्स इनके पास आ चुके हैं इस टाइम के ऊपर एंड नाउ अब सिचुएशन ऐसे रहने वाली है, जो दो टीमें हमें फेवरेट नजर आ रही हैं। हे यू गो, जिस तरह ये पास जाते हैं ड्रॉप लेने के लिए, यहाँ पर एक और प्लेयर आता है, लास्ट मोमेंट पे लैंड करेगा एंड नाउ लेट्स सी कि 1v1 सिचुएशन कौन विन करने वाला है। क्रैक ऑफ कोर्स कॉलिंग फॉर द हेल्प आउट, आप पीछे से उनको हेल्प भी ले ली होगी एंड नाउ एक अच्छा ग्रेनेड उसको यहाँ पर नॉक करेगा एंड नाउ ड्रॉप अभी इनके नाम हो जाएगा। Exactly, यहाँ पे उनके नॉक भी हो जाएगा बट एसवीजी दे लुकिंग सुपर गुड राइट नाउ डिस्पाइट द फैक्ट कि सर्कल से बाहर आते ट्रिपल किल भी प्लेयर को मिल जाएगी बट आइकन का स्क्वाड सर्कल के ईस्ट साइड से पुश करता हुआ नजर आ रहा है। शॉट्स लैंड करना चाहते टुवर्ड्स द टीम जो नॉर्थ की तरफ मौजूद है एंड दे आर ट्राइंग टू पिक अ कपल ऑफ फाइट बट ब्राजीलिया के अंदर जाना इस टाइम पे मुश्किल हो चुकी है। ये जो एक हमारे पास रिज इनके पास रहते दैट इज द ओनली कवर दे हैव, उसके बाद और अंदर जाना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्थ एक बहुत बड़ा क्लस्टर ब्राजीलिया के अंदर और ब्राजीलिया के इर्द गिर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी टीम नॉर्थ की तरफ नहीं रहने वाली, यूएवी भी डिप्लॉय कर दी जाती है एंड आई थिंक वो फाइनली खत्म भी हो जाएगी, डिस्ट्रॉय की जाती है, वो देख लेते हैं। बट जीडब्ल्यू के प्लेयर्स वहां पे लॉन्च होके हमारे गोल्फ कोर्स के पास उतरते हैं बट वेयर इज द सर्कल गोना गो, दैट्स गोना डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड नाउ वी अंडरस्टैंड क्यों ब्राजीलिया की टीम मौजूद थी, क्योंकि सर्कल आखिरी भी ब्राजीलिया पे बनते हुए नजर आ रहे हैं हमें। Exactly, Brasilia is now a place to stay and get the Booyah. Let's see कि किसके के नाम पे होने वाला है। SVG क्रैक यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर नॉक एक उन्होंने और निकाल लिए, 10 किल्स और ओह माय गुडनेस 10 एलिमिनेशन के पास रहने वाली है। काफी एक अच्छा डैमेज नॉक प्लेयर के ऊपर भी डाला गया बट अगर बात कीजिए यहाँ पर भी जो कोई प्लेयर अलाइव रहने वाला है उसकी तरफ भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। ट्रिपल किल वंस अगेन एसवीजी अपने नाम करते हुए, 11 किल एलिमिनेशन इन टोटल इनके हाथ में रहेंगी, आगे बढ़ेंगे एंड और किल्स की जानिब बढ़े और नजर आ रहे हैं बट आई एम लुकिंग फॉर द जीडब्ल्यू, वो ये उनका यहाँ पर होना काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है, उनको यहाँ पर किल्स उनको भी जरूरत रहने वाले हैं। इधर पे बात कीजिए एसवीजी बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए जा रही है, कितना डैमेज हर प्लेयर को, हर एक शार्पनेस अगर बात की जाए प्लेयर्स के पास यहाँ पर रहने वाली है, डैमेज जैसे ही खा रहे, लुक एट दिस द वे ही गेटिंग द डैमेज, जल्दी से जल्दी ग्लू वॉल लगाते हैं ताकि उनको मोर डैमेज ना पड़ सके। बट दूसरे साइड पे बात कीजिए प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, एसपीजी के प्लेयर्स यहाँ पर भी डैमेज पे डैमेज करते हैं। एक जावेद को नॉक कर दिया जाएगा, नॉक करके जीडब्ल्यू अगर बात की दूसरे साइड पे वो भी यहाँ पे नॉक कर रही है, किल्स में वो भी पीछे नहीं रहने वाली। आइकॉन यहाँ पर ये देखते हैं कि सब प्ले करते हुए नजर आते हैं, एक और प्लेयर को अपना खो देंगे। नाउ 2 प्लेयर्स लेफ्ट, गेमर एंड अर्जा, लेट्स सी कि अब वो यहाँ पे कहते हैं एसवीजी लूज 1 प्लेयर। नाउ 3 प्लेयर्स पे यहाँ पर मुश्तमिल टीम, लेट्स सी कि एसवीजी किस तरह प्ले करती है 14 किल्स के साथ। एग्जैक्टली वो देखना पड़ेगा वो कैसे किल करती हैं। यहाँ पे स्काई का स्क्वाड भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जीडब्ल्यू के प्लेयर उनके राइट साइड पे मौजूद है, दैट्स एन इजी किल फॉर देम बट नॉट जस्ट दैट, दे हैव टू गो टू द सर्कल, यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी तरफ से, बाहर प्लेयर निकलते शॉर्ट लाइन करना चाहते हैं बट एक और ब्लू वॉल लगा दी जाएगी। स्काई नीड्स टू बी केयरफुल, यहाँ पे बैक साइड से कंप्लीटली वल्नरेबल मौजूद है, यहाँ पे थोड़ा सा हील अप भी करना चाहते हैं, अयो यहाँ पे काफी डैमेज ले रहे हैं ब्लू जोन से बट एट द सेम टाइम एसवीजी दे आर बीइंग यहाँ पे केयर टेकर्स ऑफ द सर्कल, सर्कल के एज के ऊपर मौजूद है। जो टीम सर्कल के एज के ऊपर रह रही है उनको भी शॉर्ट लैंड कर, जो बाहर से आए उनको भी एलिमिनेट करना चाहती हैं। आइकन के एक ही प्लेयर मौजूद है, शॉर्ट लैंड करते हैं, बहुत ही मुश्किल से बचते नजर आते हैं बट वहीं पे एसवीजी के एक प्लेयर को नॉक करके एलिमिनेट करते हैं, दूसरा प्लेयर भी सामने आता है, ब्लू वॉल लगा दी जाएगी, ढूंढना चाहते हैं कब तक बचेंगे, कब तक रियलाइज करेंगे, बहुत ज्यादा डैमेज भी ले रहे हैं बट वहीं पे रियलाइज नहीं करते कि एक और शॉर्ट लैंड करती है, पुल ऑफ करना चाहते हैं एंड पुल ऑफ भी कर पाएंगे। मेडकिट नाउ ही इज अप टू लाइक एचपी अप होना चाहती है बट साथ ब्लू जोन से डैमेज ले, राइट साइड से एंटर होना चाहते हैं बट अपनी लाइफ एक्सटेंड कितनी देर तक कर पाएंगे। ही नीड्स टू पुल ऑफ फर्स्ट विकेट एज वेल, अंदर की तरफ भागेंगे, ब्लू वॉल लगा दी जाएगी, एक और शॉट आई, ही कैन गेट आउट एज वेल, ब्लू वॉल तोड़ दी जाएगी एंड फाइनली ही गेट्स स्पॉटेड, मेरे ख्याल में उनको एलिमिनेट भी कर दिया जाएगा। एट द सेम एग्जैक्टली आइकन का स्क्वाड पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। एसएफटी दे आर नॉट लुकिंग सुपर गुड राइट नाउ, 2 प्लेयर्स नॉक डाउन है, एक प्लेयर पीछे बचा हुआ है, उसको भी शॉट लाइन की जा रही है, स्नाइपर रहने वाली है एंड सेवर को नॉक डाउन कर दिया जाएगा। व्हाट अ शॉट बाय एसएफटी के प्लेयर की तरफ से, लेकिन उनके एक प्लेयर वहीं पे मौजूद रहने वाले जो उनको रिवाइव कर सकते हैं।
एग्जैक्टली S2G इज प्लेइंग वंस अगेन। हम मेरे सामने दिख रहे हैं, अभी तक किल उनके पास और नहीं आए, वो सर्कल के अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। बट दूसरे नंबर की बात कीजिए, काफी सारी टीम्स ऐसे रहने वाली है जो कि होल्ड अप एक अच्छी पोजीशन पे करते हुए नजर आ रही हैं। PTR, दीज गाइज आर लुकिंग फॉर मोर किल्स। जहां पर बात कीजिए जोन का डैमेज भी इनको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, सर्कल के अंदर भी यहाँ पे मूव करना है। एंड हे यू गो, ट्रिपल एलिमिनेशन इन दी बैकपैक। 6 एलिमिनेशन टोटल रहने वाली है। नाउ दीज गाइज नीड टू मूव इन दिस सर्कल, अदरवाइज यहाँ पर अंदर ही रहेंगे। एसवीजी जहां पर काफी फेवरेट हमें देखने को मिली थी इस गेम के ऊपर, 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। एंड नाउ एक को जल्दी से रिवाइव किया जाएगा, जल्दी से हील अप कर दिया जाएगा, और दूसरे को ओ माय गुडनेस, हे यू गो, 2 प्लेयर्स एसवीजी के यहाँ पर जाते हैं। तीसरा प्लेयर भी जाएगा, क्रैक, जो कि काफी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे थे। लेट्स सी कि वो अपनी टीम का बदला यहाँ पे कैसे लेते हैं। 15 किल्स इन द बैकपैक। यहाँ पर और क्लोजअप होगा, 1v1 फाइट। एंड हे यू गो, क्या ही खूबसूरत है, क्या ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्लेयर को टेक डाउन किया है आरजी। एग्जैक्टली बहुत ही खूबसूरत तरीके से टेक डाउन भी किया। N9 के भी एक ही प्लेयर मौजूद है, स्नाइपर उनके हाथ में रहती है, सामने एक प्लेयर रहने वाले हैं। शॉट्स लैंड करना चाहते हैं, बट ब्लू वॉल का एसवीजी के प्लेयर की तरफ से एक अच्छा इस्तेमाल रहता है। दोनों टीम्स की जिम्मेदारी इनके प्लेयर के ऊपर आती है, बट N9 के प्लेयर ही गोज डाउन एट द हैंड ऑफ SHOOTRS, जो बहुत दूर से उनको स्पॉट कर जाते हैं। बट पुलिस के प्लेयर यहाँ पे स्लैम इन करना चाहते हैं, 2 प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन कर देते हैं, बट वही पुलिस के प्लेयर नॉकडाउन भी हो जाएंगे। उनके रिवाइव करने का प्रोसेस भी यहाँ पे जारी करना चाहते हैं, सर्कल से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। पुलिस का स्क्वाड बैक टू द 4 पीपल, अनफॉर्चुनेटली जोन पुश करना जाएगा। यूएवी भी डिप्लॉय कर दी जाती है, काफी लोकेशन भी यहाँ पे नजर आ जाएगी प्लेयर्स के। दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट, बट द मेजर कंसर्न फॉर पुलिस का स्क्वाड यहाँ पे घर से बाहर निकलते हैं, कहाँ सर्कल के अंदर जाते हैं। जो सामने वाली टीम रहती है वो सर्कल के अंदर मौजूद है, सो इनको भी NK5G हम उनके जहाँ पे प्लेयर की तरफ रहते हैं। एक प्लेयर का पता है पीटी आगे जो जहाँ पे मौजूद है, बचना बहुत मुश्किल हो चुका है। बाहर निकलते हैं, ब्लू वॉल्स लगाते हैं, दरमियान में आ चुके हैं, कब तक बचा जाएगा। शट डाउन एसटीआर के प्लेयर की तरफ से नजर आएगा, पुलिस के प्लेयर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। टीम एक्सेस इस टाइम पे सर्कल के एज के ऊपर मौजूद है, पीछे से पूरा का पूरा स्क्वाड आ रहा है। दे नीड टू टेक केयर ऑफ पुलिस का स्क्वाड जो इनके पीछे से आएगा, फिर ही आगे बढ़ सकते हैं, और वही करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे पीछे एम लेके बैठे हुए हैं, जोन के बिल्कुल एज के ऊपर मौजूद है। तो दैट मींस कि दे आर कंफर्टेबल फॉर नाउ एंड दे नीड टू टेक दिस फाइट। एग्जैक्टली, नीड टू टेक दिस फाइट। एक प्लेयर इनका नॉक रहेगा, उसको भी यहाँ पे पिकअप करना है। ग्रेनेड थ्रोड से यहाँ पर ग्रेनेड थ्रो किए जा रहे हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द टीम इन फ्रंट ऑफ देम। बट दूसरे प्लेयर की बात कीजिए, बिल्कुल सामने इनके पास जो टीम रहने वाली है उसको भी यहाँ पर टेक डाउन करने की कोशिश। टीम स्टार्स, लेट्स सी कि यहाँ पर किस तरह टेक डाउन करती है सामने वाले प्लेयर्स को। ब्लू वॉल यहाँ पर टीम अगर बात की वो भी यहाँ पर क्लोज करना चाह रही है, जरा क्लोजनेस बढ़ाना चाह रही है। ये चीज देख के टीम स्टार के किंग पीछे कैसे रह सकते हैं, वो भी यहाँ पे क्लोज जाते हैं। एंड हे यू गो, ब्लैक स्काई को यहाँ पे काला आसमान नहीं नीला आसमान दिखाते हुए उनको वापस भेजा जाता है। एंड नाउ टीम स्टार इज स्टिल मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए जरूर खेलते हुए नजर आ रही है। एंड लास्ट मोमेंट 1-1 टीम यहाँ पर रहने वाली है। और बात कीजिए टीम स्टार, ऑफ कोर्स यहाँ पर उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा इनका। और हे यू गो, द बुया इज फॉर टीम स्टार्स एंड द विनर ऑफ द फर्स्ट मैच। एक अच्छा इम्पैक्ट लॉबी के ऊपर आरजी इस टीम ने बना लिए, स्टार्स डीजी। एग्जैक्टली एक अच्छा इम्पैक्ट बनाया, एक अच्छी गेम उन्होंने यहाँ पे पुल ऑफ की है। द वे दे प्लेड, द वे दे पुल्ड ऑफ दिस बूया, इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट इन द लास्ट। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे उस सर्कल्स के अंदर बहुत मुश्किल हो चुका था, बट इन द एंड इट वाज लाइक उस लास्ट सर्कल के अंदर जब प्रेशर बढ़ चुका था, एंड व्हेन देयर वाज इट वाज क्विकली हैपनिंग, स्टार डीजी शाइन, बिकॉज आखिरी सर्कल के अंदर आपको याद है 5 से 6 स्क्वाड सर्वाइव कर रहे थे, एंड सडनली इट वाज द ओनली वन जो कि यहाँ पे सर्वाइव करके जाती है। अच्छे एलिमिनेशन भी लेके जाएंगे और बूया भी सिक्योर करके जाएंगी, तो डेफिनेटली दिस टीम कैन हैंडल प्रेशर। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। और यहाँ पर अगर बात की जाए, स्टार्ट में ही मैंने बोला कि यार कि ये 3 टीमें रहने वाली हैं जो कि खेलेंगी, बट उसमें से एक ही टीम यहाँ पर भी परफॉर्म करते हुए नजर आती है, बुया सिक्योर करती है। बट दूसरी तरफ बात की जाए, GW की परफॉर्मेंस परफॉर्म वेरी वेल, SVG परफॉर्म वेरी वेल। अगर बात की जाए एलिमिनेशंस की, तो मेरे ख्याल से वो किसी से कम नहीं रहने वाले। किल्स काफी अच्छे निकाले हैं बाकी टीम्स ने भी, और कुछ ही देर के अंदर जब ओवरऑल रिजल्ट आएगा, जब 2-3 मैचेस के बाद, तो ऑफ कोर्स उसमें पता चलेगा कि टीम कौन सी #1 रहने वाली है इस लॉबी के अंदर, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग लॉबी। और काफी मजे के मैचेस हमें पहले ही देखने को मिल गए। ऑफ कोर्स नेक्स्ट मैप जो रहने वाला है वो भी किसी से कम नहीं रहता, काफी एक इंटेंस मैप रहने वाला है आरजी, उसमें टीम्स के साथ परफॉर्म करेंगे। बट इस मैच के अंदर नो डाउट द टीम स्टार्स प्लेड वेल, बट उसके साथ ही साथ GW और SVG ने भी काफी अच्छा खेला। एंड नॉट जस्ट दैट हारिस, मैं कहता हूँ कि
एक तो है कि आगे स्कोर कार्ड हमारा कैसे लगता है मैच वन का, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, वी हैव मल्टीपल टीम्स दैट परफॉर्म रियली वेल। हमारे पास जीडब्ल्यू का स्क्वाड था, हमारे पास पुलिस का स्क्वाड था, हमारे पास एस का स्क्वाड था, एस एच एफ टी का स्क्वाड था, हमारे पास एस का स्क्वाड था। वी हैव मल्टीपल स्टार्स इनटू, ऑब्वियसली स्टार्स का स्क्वाड भी रहने वाला है। सो वी हैव मल्टीपल टीम्स दैट वर लुकिंग गुड टिल द end of the game. That means कि any one of them has the capacity to get the booyah. अब मसला ये आता है कि जब इतनी टीम्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हों कि अगर आखिरी सर्कल तक वो सर्वाइव कर रही हो, उसकी वजह से हमारे पास प्रिडिक्टेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ बूया वो मुश्किल हो जाती है कि अगली टीम यही लेके जाएगी। वन थिंग दैट आई एम कैन से फॉर श्योर इज लाइक द चांस केस जिसमें स्टार डीजी बूया लेके जाएगी, दैट इज वेरी वेरी लेस। वी हैव अ लॉट ऑफ द टीम दैट आर रियली रियली गुड। वो हमें यहाँ पे दोबारा उठते हुए नजर आएंगी। जो आखिरी गलतियां थी आखिरी सर्कल में, जहाँ पे उनसे थोड़ी सी मैं कहता हूँ गलतियां भी नहीं कहेंगे, सर्कल में थोड़े से अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो चुके थे, उसके खिलाफ अगली सर्कल्स के अंदर, अगली गेम के सर्कल्स के अंदर दे विल डेफिनेटली मेक श्योर कि वो एक डिफरेंट आउटकम यहाँ पे जनरेट कर सके। सो लेट्स सी कैन दे डू दैट। स्टार्स का दोबारा बुया लेना या स्टार्स का दोबारा इस तरह की गेम परफॉर्म करना, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली काफ़ी डिफिकल्ट मे बी हो सके और मे बी नॉट, बट ये तो वक्त ही बताने वाला है क्योंकि अगले मैचेस काफ़ी डिफरेंट होने वाले, डिफिकल्ट होने वाले हैं आज ही। बट इससे पहले हम मूव करते हैं हाइलाइट्स के ऊपर और देखते हैं कि पिछले इस मैच के अंदर जो पहला मैच रहने वाला है उसके अंदर टीम ने किस तरह परफॉर्म किया। नॉट जस्ट वन स्टार्स, बट अगर दूसरी साइड पे बात की जाए एस प्लेड वेल, वेरी वेल। और जब अगर बात की जाए जहाँ पर 11 मिनट हो चुके हैं, 12 टीमें जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके इस लॉबी से पहला ही मैच के अंदर गई। पॉइंट्स काफ़ी अच्छे डिसेंट पॉइंट्स हर टीम के पास रहेंगे जो टॉप 10 और टॉप 8 के अंदर हमें दिख रही होंगी। बट हे यू गो, यू कैन सी द टीम प्लेड एक्चुअली अमेजिंग। टीम स्टार्स, टीम एसवीजी एंड टीम जीडब्ल्यू। एंड ऑब्वियसली टीम स्टार्स का स्क्वाड में नजर भी आ रहा है, शुरू से 5 एलिमिनेशन लेते हुए नजर आया था और उनके पास आखिर में उन्होंने मल्टीपल स्क्वाड्स को एलिमिनेट किया था। एंड द वे दे चेज डाउन ऑब्वियसली लास्ट टू प्लेयर्स, दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस इन द एंड, जहां पे वो चेज करते हुए भी नजर आए थे। ऑब्वियसली दे हैड द एडवांटेज, यू नो वेयर द लास्ट प्लेयर वाज, दे हैड द सर्कल, वहां पे आखिरी दो प्लेयर्स को चेज करके उन्होंने वहां पे एलिमिनेट भी किया था। तो इन द एंड आई फील लाइक इट वाज नॉट इजी, बट एक चीज जो अच्छी जिस चीज की दाद देनी पड़ेगी, दैट वाज के द वे दे मेड श्योर उनके के चार प्लेयर्स खड़े रहे आखिर तक, उनके पास एग्जैक्टली। नंबर्स लूज नहीं उन्होंने किए। एंड दैट इज द की पॉइंट इन एनी गेम लाइक दिस ऑफ फ्री फायर कि इफ यू वांना win against the odds, the basic concept is कि आपने survivability of your 4 team member is the key. The moment you lose a team member, that means कि your chance goes down by 25 to 30% obviously, and maybe more than that. तो all in all, इसलिए हमें टीमें अर्ली फाइट्स लेते हुए नजर नहीं आती, इसलिए हमें टीमें जनरली अर्ली क्लैशेस भी लेती, रोटेशंस थोड़ी ध्यान से करते, दे प्ले इट वेरी सेफ अंटिल द पार्ट लास्ट पार्ट ऑफ द गेम, जस्ट बिकॉज वो मेक श्योर करना चाहती है कि वो टीम बुया लेके जाती है, द चांसेस कि वो टीम बुया लेके जाए जिनके 4 प्लेयर सर्वाइव करें, एंड दैट इज द जस्ट द रूल ऑफ एग्जैक्टली। फ्री फायर। एग्जैक्टली आरजी, यहाँ पर भी स्क्वाड गेम जो है ऑफ कोर्स स्क्वाड के साथ ही कंप्लीट होती है। अगर चार के चार प्लेयर्स अगर अलाइव रहते हैं टिल द एंड ऑफ द मैच तो आपको ऑफ कोर्स एक फेवर पोजीशन रहेगी क्योंकि हर प्लेयर का एक डिफरेंट रोल होने वाला होता है। एक फ्रैगर होगा, एक स्पोर्ट पे खेल रहा होगा, ऑफ कोर्स द इन गेम लीडर, इस तरह की सारी चीजें हमारे सामने हो रही होंगी। बट लेट्स मूव टुवर्ड द स्कोर बोर्ड। द पहले मैच के अंदर किस टीम ने अच्छे पॉइंट्स निकाले, एंड लुक एट दिस आरजी, we can see that team star ने बुया लिया 21 points के साथ, but SVG just because of the kill points, these guys are still on the hashtag 2, but look at the elimination points, same like stars. एग्जैक्टली यहाँ पे सेम लाइक स्टार्स की तरह उनके यहाँ पे टोटल पॉइंट्स आते हैं बिकॉज उनके किल पॉइंट्स बहुत इंप्रेसिव थे, बट द मेजर कंसर्न इज नॉट दैट। यही बात हमने शुरू में की थी, स्टार डेजी गुड गेम, बट ओलंपिया यहाँ पे टोटल 16 पॉइंट्स के साथ पीछे मौजूद है, एक्स शूटर्स 15 पॉइंट के साथ रहने वाली है, एंड 9 13 पॉइंट के साथ मौजूद है। हमारे पास 8 टीमें हैं जो डबल डिजिट्स में मौजूद है, और हमारे पास बहुत ऐसी, मैं कहता हूँ आखिरी जो 7 टीमें रहती हैं ऑब्वियसली दे कुड परफॉर्म वेरी वेल। So Star DZ, while they are in a comfortable position right now, they got the booyah. They shouldn't get themselves too comfortable. Same as the case of Savages. टीमें पहले मैच के अंदर ही पीछे मौजूद है, वो बिल्कुल पीछे रहने वाली है। वन गेम कैन टर्न द टाइड ऑफ एवरीथिंग। 4 गेमें पीछे रह चुकी हैं, तो ये टीमों को बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस देनी है। स्टार्स डीजी, सैवेजेस, ओलंपिया, शूटर्स एंड 9, दे हैव टू परफॉर्म एवरेज, एटलीस्ट एवरेज परफॉर्म करना पड़ेगा टू मेक श्योर के दे
remain the top position unless until के they can perform like they get the booyah या top 2 में top 3 में दोबारा आ जाती हैं. That is another case. But what I meant to say in all of this, इसका क्रक्स ये है, कहानी का जो होता है ना, नतीजा ये है कि यहाँ पे पॉइंट्स का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होने वाला. आपके पास जो क्वालिफिकेशन होगी वो 1 या 2 पॉइंट्स के डिफरेंसेस पे आ जाएगी. सो इट विल कम डाउन टू दोज पॉइंट्स वेयर एवरीबॉडी विल हैव रिग्रेट्स कि यार हम वो बेहतर कर सकते थे, हम ये बेहतर कर सकते थे, एग्जैक्टली जस्ट बिकॉज द नेचर ऑफ द टीम एंड द टफनेस ऑफ द कॉम्पिटिशन. एग्जैक्टली आरजी दी जिस तरह की बात की जाए पॉइंट सिस्टम की, तो वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि टीम्स कैन कम बैक. वो इन टीम्स को काफी आराम से मतलब कि वो टेक कर सकती है, इनको यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकती है. तो ऑफ कोर्स जैसा आरजी ने बोला, इन टीमों को जिनका ऑफ कोर्स जो स्टार्टअप में रहने वाली हैं, पहले ही मैच के बाद जिन्होंने 5 टीमें जो जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, उनको स्टेबिलिटी रखने के लिए अगले मैचेस को भी काफी देखभाल के खेलना पड़ेगा. किल्स की तरफ जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, मूविंग फॉर द पोजीशन, क्योंकि पोजीशन प्लेसमेंट पॉइंट्स भी काफी एक डिसेंट रहते हैं इस पूरे पॉइंट सिस्टम के अंदर. तो किल्स ऑफ कोर्स मैटर करते हैं लाइक एसओजी. और बेशक अगर देखा जाए उनके पास प्लेसमेंट पॉइंट उनकी अगर देख लें और उनके किल्स देख लें, तो उनके पास एक अच्छे डिसेंट पॉइंट भी मिल जाते हैं उनको. वो एक स्टार्टअप में ऑफ कोर्स फिनिश हो जाएंगे, बट किल्स की वजह से वो अभी भी #2 पे रह रहे हैं. तो ऑफ कोर्स किल्स भी बहुत मैटर करते हैं, प्लेसमेंट भी बहुत मैटर करती है. और अगर आप आगे इसी तरह अपनी पोजीशन को बरकरार रखना चाहते हैं, तो यू गाइस नीड टू कंसिस्टेंसी आपके अंदर वो होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए और अपने टेबल को एक स्टेबिलिटी में रखने के लिए. Obviously you need to be consistent. That is the key in every game कि आपके पास consistent होना चाहिए. But coming to the second map, obviously it is going to be just as interesting as the Purgatory. उसका islands इतने ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा island है, but Santinosa जिसकी तरफ हमारे पास teams खेलना कम पसंद करती हैं. We have a lot of cities on the main island. हमारे पास Clock Tower, हमारे पास Mass Electric Factory, हमारे पास ये वो है जो कि जहाँ पे टीम ज्यादा खेलेंगी. सो लेट्स सी, ऑब्जर्वेटरी का एरिया भी रहता है जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग रहता है. बट गेम 2 हमारे पास लाइव हो चुकी है. विल डाइव राइट इनटू द मैप टू सी द एक्शन एंड टू सी कि वो कौन सी टीम है जो जीतते हुए नजर आएगी. बट नॉट जस्ट दैट, हमारे पास फाइट भी शुरू हो चुकी है जहाँ पे एसवीजी दोबारा आ गई है. यहाँ पे हमें प्लेयर्स एलिमिनेट करते हुए नजर आ रही है. एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हैं. बट दूसरे नंबर की बात की है, टीम यहाँ पर जैसे फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं. प्लेयर यहाँ पर नॉक होगा, दूसरा प्लेयर भी टेक डाउन कर दिया जाएगा. टीम F4 इज इन नॉट ए गुड कंडीशन. बट दूसरे नंबर की बात की जाए, एक अच्छा होल्ड अप किया जा रहा है टीम्स को. यहाँ पर अगर सामने वाली टीम को बात करूँ तो उनको जरा थोड़ा सा टफ टाइम भी दिया जा रहा है. दूसरे को एक तीसरा प्लेयर डाउन किया जाएगा. एंड देखते ही देखते 4 किल्स पीएल के बॉयज अपने बैक पर रखते हैं. अभी भी यहाँ पे फाइट खत्म नहीं होती और एक और एलिमिनेशन हमें देखने को मिला. F4 लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग. लेट्स सी कि 1v3 यहाँ पर वो किस तरह करते हैं. सामने जो प्लेयर रहने वाले हैं वो भी यहाँ पर भी देख चुके हैं कि प्लेयर अंदर रहने वाला है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ प्लान करना है. इफ दीज गाइज हैव सम ग्रेनेड्स तो यहाँ पर मुश्किलात बनाई जा सकती हैं. मे बी इफ रिस्पॉन ऑफ द प्लेयर अभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. लुक एट दिस, दीज गाइज आर मूविंग फॉरवर्ड. मे बी सम इज गोइंग फॉर द लूट और ग्रेनेड ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं. ग्रेनेड अगर आ जाता है उनके पास आरजी, तो मुश्किलात और बढ़ते हुए नजर आएंगी इस लास्ट प्लेयर एडम के लिए. एग्जैक्टली यहाँ मुश्किल बढ़ते नजर आएंगी. बट वही बढ़ते नजर भी आ रही है. अपने बचने की कोशिश की जाती है, बट थ्रू द वॉल, थ्रू एवरीथिंग, यहाँ पे टीम पुलिस का स्क्वाड उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा. द फर्स्ट स्क्वाड टू गेट एलिमिनेटेड. बट कहानी ये नहीं है, हमारे पास 6 से 7 प्लेयर्स और भी जा चुके हैं वहां पे. लुक एट दैट, टीम स्टार के स्क्वाड के ऊपर ऑब्वियसली फाइट चलते नजर आई, जहाँ पे एक प्लेयर को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है. यहाँ पे शॉट्स लैंड की जाएंगी एंड ही माइट जस्ट गो डाउन एज वेल. लेकिन नहीं, एक्स शूटर का स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा एंड इन द एंड स्टार विल बी विक्टोरियस. दे लॉस्ट वन ऑफ देयर प्लेयर्स, बट मसले की कोई बात नहीं है. एक प्लेयर के एचपी कम है, ये भी मसले की बात नहीं है. द गुड थिंग इज नॉट जस्ट द स्क्वाड, इनको 5 एलिमिनेशंस मिल जाती है और ग्रेवयार्ड का एरिया अब इनके पास आएगा. एसवीजी अब राम सुकून से ये पूरा एरिया लूट कर एक एलिमिनेशन को मिल जाती है. उनकी जो मुखालिफ टीम थी वो ये देख के दुम दबा के यहाँ से भाग जाएगी. एंड दैट इज द राइट मूव एट द स्टार्ट. एसवीजी इज नॉट एन इजी टीम टू फाइट विद. ऑन द अदर साइड आईएनएस का स्क्वाड देखा जाए तो आराम सुकून से इस टाइम पे लूट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एंड दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यहाँ पे किसी न किसी फाइट को भरपूर तरीके से अवॉइड किया जा सके. एग्जैक्टली आरजी भरपूर तरीके से अवॉइड भी किया जा सके. बट दूसरे पे की बात की जाए, एनएस के बॉयज यहाँ पर वो उनके लेफ्ट राइट भी कोई टीम नहीं रहती, तो आराम सुकून से वो लूट करेंगे. बट दूर कहीं हमें स्टार्स डीजी के बॉयज भी हमें देखने को मिल रहे हैं. लेट्स सी कि इस टीम की फाइट किससे इनिशिएट होती है, किससे यहाँ पर भी वो अर्ली स्टेज पे यहाँ पर फाइट करते हुए नजर आते हैं. पर टाइम की अगर बात की जाए तो अभी जस्ट 3 मिनट्स एंड 40 सेकंड यहाँ पे गुजर चुके हैं. और अभी तक अगर बात करें, हमारे पास जो टीमें बाकी रह चुकी हैं इस मैप के ऊपर वो रहेंगी 13.
49 प्लेयर्स रिमेनिंग ऑन दिस मैप, और अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। इनके सामने जो टीम रहने वाली है वो भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार रहने वाली है। एंड here you go टीम 6 which is the team champ ITL boys, लेट्स सी कि ये यहाँ से किस तरह मूव करके आगे बढ़ते हैं। इनके भी लेफ्ट राइट कोई भी टीम नहीं रहती। दूसरे पे फैक्ट्री की बात की जाए, फैक्ट्री में भी एक टीम रहेगी which is N9। दीज गाइज आर अलोन एज वेल। ये भी यहाँ पर आराम सुकून से लूट करेंगे इस मैच के बाद। बट अगर मैं बात कर रहा था जैसे ही आराम सुकून से लूट करने की, इनके पास जो टीम है वो भी यहाँ पर क्लोज करना चाह रही है। फैक्ट्री के ऊपर यहाँ पर रश इन करके यहाँ पर भी जरूर टेक डाउन करना चाहेंगे किसी को। बट दूसरे पे बात कीजिए, टीम्स आर लुकिंग फॉर मोर एग्रेसिवनेस, और बात कीजिए किल्स की तरफ जाने की कोशिश की जाए। एंड 9 विच इज ऑलरेडी इन द फैक्ट्री, गुड होल्डिंग पोजीशन उनके पास रहने वाली है, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। जो लेट्स सी एज अ आइकॉन इस दफा किस तरह खेलते हुए नजर आ रही है। पिछले मैच के अंदर इनकी ऑफ कोर्स हमें वो एग्रेसिवनेस हमें देखने को नहीं मिली, बट इस मैच के अंदर जरूर में भी हमें आइकन जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस निकालते हुए नजर दिखी आज। Definitely, that will be the major concern, and we're looking forward to the fact that despite the fact कि आखिरी last game के अंदर इतनी कोई ravishing किस्म की performance नहीं आई थी, we are still hoping कि इस game के अंदर they are able to turn things around. But looking at the first circle, it is the things have calmed down. जो एक हमारे पास शुरू में थोड़ा सा issues था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, but एक ही जो possible clash है वो INS का squad लेता हुआ नजर आ रहा है बिल्कुल सेंटर के अंदर। वहाँ पे UAV भी ड्रॉप कर दी गई है, तो पॉसिबिलिटी है लोकेशन के पता होने की। यहाँ पे स्ट्रिप के बाद ये फाइट हो रही है। आइकन के आसपास स्क्वाड जरूर मौजूद है, बट दैट इज अप टू देम के फाइट लेते हैं। बट GW दे नो वेयर द प्लेयर्स आर कमिंग फ्रॉम, उनके पास अच्छी यहाँ पे वॉल ऑफ डिफेंस भी मौजूद है, एंड दे आर ट्राइंग टू यूज यहाँ पे DMR स्नाइपर का इस्तेमाल करके वो कोशिश के INS को पुश ना करने दिया जाए। बट INS रियली वांट टू टेक दिस फाइट। उनको अंदाजा है कि जो ये लोकेशन रहती है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। UAV दोबारा स्टार्स की तरफ से डिप्लॉय कर दी गई है, एंड ही वांट टू टेक अप लेक अ पीक ऑफ द प्लेयर्स जो यहाँ पे मौजूद है। GW के प्लेयर्स स्टिल यहाँ पे जंप लेके यहाँ पे लोकेशन लेना चाहते हैं, एंड सारे के सारे प्लेयर्स फ्रंट फुट की तरफ आ चुके हैं। अब इतना भी आसान नहीं है बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू टीम्स बहुत ज़्यादा रहता है, वो क्लोज करने की कोशिश की जा रही है, स्नाइपर्स के इस्तेमाल किया जा रहा है, बट दैट इज स्टिल नॉट गोइंग टू बी इजी। जब टू पैक थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, प्लेयर्स थोड़ा सा राइट साइड से भी आना चाह रहे हैं। टीम जी यहाँ पे GW दे आर बीइंग सराउंडेड, दे नीड टू बी केयरफुल बिकॉज ये सराउंड हो रहे हैं, आराम सुकून से INS को ब्रेक थ्रू मिल सकता है। Exactly, INS is looking for a plan कि भी वो किस तरह इस टीम के ऊपर चार्ज करें। Of course, the team GW have a good position in the ground, और उसको of course उनको यहाँ पर भी अगर टेक डाउन करना है तो उनको यहाँ पर कुछ INS को यहाँ पर कुछ अच्छी स्ट्रेटजी, कुछ अच्छे प्लान्स यहाँ पर लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। बट लुक एट दिस GW boys, know the फैक्ट कि वो किस तरह यहाँ पर भी फाइट कर सकते हैं। एंड ही यू गो, अगर दूसरी साइड पे अगर बात करें, दूसरी साइड पे भी काफी एक उम्दा फाइट जिस टीम को यहाँ पर ट्रिपल एलिमिनेशन भी मिल चुका है। दूसरे पे यहाँ पर क्लोजनेस बढ़ती है INS के ऊपर। INS का पहला प्लेयर यहाँ पर टेक डाउन किया जाएगा, ओपनिंग की जाएगी, बट इसी के साथ साथ ओपनिंग दूसरी साइड जाने से भी देखने को हमें रिवाइव मे बी पॉसिबल, मे बी नॉट। लेट्स सी कि INS के बॉयज आगे बढ़ के किस तरह खेलते हुए नजर आते हैं। किल्स यहाँ पे कंफर्मेशन बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, ग्लू वॉल का इस्तेमाल और आगे का अग्रेस किया जाएगा। टीम GW इज going for more kills, but let's see कि INS यहाँ पर उनको easy kill देती है अपने, या यहाँ पर GW को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। GW का एक और प्ले यहाँ पे टेक डाउन हो जाएगा। Here you go, टीम GW is actually playing well, और आगे बढ़ते हुए एक किल तो कंफर्म कर लिए। जो यहाँ से प्लेयर निकलता हुआ नजर आ रहा है, तुम दबाता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे यहाँ पर जरूर जाया जा रहा है। Here you go, he can finish as well. INS is eliminated and moving from this lobby. टू पैक, व्हाट अ शॉट यहाँ पे इन्होंने लैंड की थी इतनी डिस्टेंस के ऊपर। इट वाज अ वेरी गुड शॉट एज वेल। वहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, रेबल्स का स्क्वाड भी एलिमिनेट हो जाएगा। टीम SFT दे आर लुकिंग सुपर गुड राइट नाउ। 7 एलिमिनेशन उसके पास हो चुके हैं। शिफ्ट के मिक्स के ऊपर यहाँ पे उनको 5 एलिमिनेशन मिल जाएगी यहाँ पे, लेकिन नॉट जस्ट किलिंग स्प्री, ही इज गोइंग ऑन अ रैम्पेज राइट नाउ। बट लुक एट आइकन, वहाँ पे प्ले को स्पॉट करना चाहते हैं, उनको स्पॉट करते हैं, स्नाइपर गेम लेके बैठे हुए हैं, शॉट लैंड करते हैं, एक शॉट कनेक्ट भी करती है, ब्लू वॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, बट द डैमेज थोड़ा सा डील किया जाता है, नॉक नहीं निकालते। UAV डिप्लॉय कर दी जाएगी इनकी तरफ से, सो दैट दे वांट टू अंडरस्टैंड वेयर द प्लेयर्स आर एग्जैक्टली कहां पे मौजूद है। एंड नाउ विद दैट दे आर मूविंग अ बिट अहेड। आइकन का स्क्वाड बहुत करीब आ चुका है, और यहाँ पे फाइट इतनी भी आसान नहीं है। SMGs भी मौजूद है, शॉटगन भी रहने वाली है, तो दे नीड टू बी केयरफुल विद दिस क्लोज रेंज फाइट। लेकिन एज सून एज दे केम, टीम और पीछे हो चुकी है, उस रिच के ऊपर जा चुकी है, उस रिच से फाइट लेकी, एंड दे वांट फाइट अ कंफर्टेबल पोजीशन। और वही बात है, लगती है कि यहाँ पे जो आइकन के रहते हैं उनको नॉक डाउन कर दिया गया, और साथ साथ किल भी कंफर्म कर ली
जाएगी। एंड विद दैट दे जस्ट मूविंग अहेड, दे हैव द एडवांटेज एंड दे आर पुश। उनको अंदाजा हो चुका है इस एडवांटेज को मैक्सिमाइज करना। Oh एक my प्लेयर यहाँ पे goodness. शॉट लैंड करती है, ब्लू वॉल्स का इस्तेमाल किया जाए, दूसरा प्लेयर भी नॉकडाउन कर दिया जाएगा। देखते देखते तीसरा प्लेयर भी यहाँ पे नॉकडाउन करने की कोशिश की जा रही है। टीएल के प्लेयर को नॉकडाउन जरूर किया जाएगा, बट दे स्टिल हैव अ बिट ऑफ एडवांटेज इन दिस फाइट। Oh my goodness. So एक प्लेयर के लूज के ऊपर आगे टीम बढ़ते हुए नजर आ रही है। 3 आर लेफ्ट ऑन दिस मैप। और कहानी की बात की जाए, आइकॉन यहाँ पर से एलिमिनेट हो चुकी है, बट टीएल के बॉयज एक प्लेयर को लूज करके यहाँ पर अभी भी स्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रॉप के पर लूटिंग की बात की जाए, यहाँ पर ड्रॉप को लूट लिया जाता है। दूसरे प्लेयर पीटीआर के बॉयज आर एक्चुअली प्लेइंग वेरी वेल, एग्रेसिव, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जीडब्ल्यू के प्लेयर को दूर से स्नाइपर पड़ती है, एक प्लेयर यहाँ पर टेक डाउन होगा, मे बी रिवाइव पॉसिबल हो जाए। यस, रिवाइव इज पॉसिबल। लेट्स सी पीएक्सएल के आगे बॉयज यहाँ पे किस खेलते नजर आते हैं। जीडब्ल्यू बॉयज हील अप करेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे, ग्लू वॉल लगाई जाएगी, अच्छे कवर के अंदर मूव करते हुए जरूर दिखेंगे। और दूसरे पर बात कीजिए, दी पीटीआर बॉयज हैव द हायर ग्राउंड। और नीचे के बॉय बात करूं तो नीचे भी प्लेयर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जीडब्ल्यू के बॉयज नो दैट द पोजीशन ऑफ पीटीआर हैव ए गुड लोकेशन, उनके पास एक अच्छी लोकेशन है। उनको यहाँ पर जहां से भी जाएंगे वहां से नजर आते हुए नजर आ रहे होंगे। ही यू गो, ग्लू वॉल एक लगाई जाएगी, उसको डैमेज किया जाएगा। देन अगेन ही जस्ट मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, अपने आप को कवर में रखने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। बट सर्कल वंस अगेन एक नई शेप के अंदर जाता हुआ जरूर नजर आएगा। एक टीम्स के लिए नई डिफिकल्टी यहाँ पर जरूर पैदा करता हुआ नजर आएगा। लेट्स सी कि यहाँ पर सर्कल जो है पीक साइड पे जाता है, एंड ही यू गो, पीक पे ऊपर सर्कल आएगा। एंड नाउ टीम्स, एवरी सिंगल टीम नीड टू मूव इन द सर्कल, क्योंकि सर्कल के अंदर ही रह के बुया स्कोर किया जा सकता है। अदरवाइज मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जोन काफी डैमेज करना स्टार्ट कर देगा टाइम बाय टाइम। बट दूसरे पे टू बैक की बात करूं, टू बैक यहाँ पर एक अच्छे नॉक्स के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जीडब्ल्यू के बॉयज एक प्लेयर को लूज करके अब आगे 3 मैन स्टैंडिंग टीम विद 6 एलिमिनेशन। पिछले मैच की बात करूं, पिछले मैच के अंदर भी इनके पास काफी अच्छे डिसेंट किल रहने वाले थे, बट इस मैच के अंदर इनके पास 6 किल्स रहेंगे। बट एक प्लेयर की नुकसान के ऊपर 3 आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बट दूसरे पीटीआर जिनके पास एक अच्छी लोकेशन थी, जिनके पास एक हायर ग्राउंड रहने वाला था आरजी, वो यहाँ पर अपने 3 प्लेयर लूज कर चुके। पीटीआर के YSF77 जो भी इनका मुश्किल सा नाम है, ही नीड्स टू प्ले केयरफुली। ऑब्वियसली यहाँ पे शॉट्स लैंड की जा सकती है, इनको एलिमिनेट करने जाए, बट ब्लू वॉल्स का इस्तेमाल आता है। और यहाँ पे एसवीजी के प्लेयर जो इनके सामने नहीं थे, पीछे रहने वाले उनको एलिमिनेट करते हैं। स्टार्स के टूफा के ऊपर आते हैं, जो जीडब्ल्यू के टूफा के ऊपर आते हैं, उनको एलिमिनेट कर दी जाएगा। थोड़ा सा लूट भी करना चाहते हैं, एंड उसके बाद उनको अंदाजा हो चुका है एसवीजी के प्लेयर भी ऊपर रहने वाले सामने रहते हैं। सो इस इंफॉर्मेशन का इनको काफी फायदा है कि नॉर्थ से पुश आ रहा है एसवीजी, दे कैन नॉट पुश दैट इजीली। जीडब्ल्यू यहाँ पे पीक के जो रहते वाले कॉम्पाउंड, जो भी टीम इनके पास आई, उनको बार बार इन्होंने एलिमिनेट किया है। मेटा के सामने भी एक प्लेयर रहते, स्पॉट कर लिया जाता है, बट ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते। 2 को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया। ही इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि कहीं ना कहीं प्लेयर रिवाइव करते हैं, उनको ब्लू वॉल्स का तो इस्तेमाल किया जाता है, और अब उनको रिवाइव भी कर लिया जाएगा। एक अच्छा रिएक्शन टाइम मेटा के साथ दिया जाता है, मेटा ट्राइज टू गेट अ बिट एग्रेसिव एज वेल। तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली आगे क्या पढ़ना पड़ता है। बट एसवीजी दे आर ट्राइंग टू गेट अ ट्रिपल किल एज वेल। उनके प्लेयर्स किल्स के ऊपर किल्स लेते हुए नजर आ रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू एंटर फ्रॉम द नॉर्थ सर्कल एज वेल। लेकिन सर्कल थोड़ा बड़ा है, एलिमिनेशंस बहुत ज्यादा हो चुकी है। शिफ्ट आर्क टीम 2 पैक यहाँ पे प्लेयर्स किल्स कंफर्म करते नजर आते हैं। लुक एट दैट, न्यू किल लीडर शिफ्ट के प्लेयर मैक्स आता है, जो कि इनके पास 6 किल्स हो चुकी हैं। यहाँ पे शेडियो को नॉकडाउन कर दिया जाता है, बट जीडब्ल्यू दे आर मेकिंग श्योर कि एसएफटी अंदर की तरफ पुश ना कर पाए। N9 का स्क्वाड भी एलिमिनेट हो जाएगा, आर्क का स्क्वाड भी एलिमिनेट हो जाएगा, लीविंग ओनली 5 behind. SFT still trying to move inside. एक प्लेयर के नुकसान के ऊपर, but the only player that is still a very huge concern, वो मैक्स रहते हैं, जिनके पास 7 किल्स मौजूद है इस टाइम पे। एग्जैक्टली, किल्स पे किल्स। यहाँ पर भी एसएफटी बॉयज हैव 10 किल्स। एक प्लेयर के लूज के ऊपर अभी भी यहाँ पर भी स्टैंड करते हुए नजर आ रही है। लेट्स सी कि 3 मैन स्टैंडिंग टीम है, हाउ दीस गाइस आर गोना प्ले। जीडब्ल्यू के ऊपर यहाँ पर एग्रेस करते हुए जरूर दिख रहे हैं, बट दूसरी साइड पे बात की जाए, टीम ऑलरेडी नो दैट, टीम जीडब्ल्यू जहाँ पर उन्होंने अभी एक टीम को ऊपर से उतारा था, हाई ग्राउंड से उतारा था, एंड नाउ लेट्स सी कि इनको कोई उतार सकता है कि नहीं उतार सकता आरसी। ऑफ कोर्स इनके पास एक अच्छी हायर ग्राउंड की पोजीशन रहने वाली है, बट ऑफ कोर्स अगर एक ऐसी पोजीशन इनके पास रहेगी जो हायर ग्राउंड के ऊपर रहेगी, और दूर से नजर भी सबसे पहले यही टीम आएगी, जीडब्ल्यू के ऊपर हर टीम की नजर होगी कि यहाँ पर ये रहने वाले हैं, तो यहाँ पर सोच समझ के यहाँ पर भी खेला जा सकता है बाकी टीमों की तरफ से। और जिस तरह अगर बात कीजिए, लुक एट द पोजीशन ऑफ टीम एसएफटी,
वो यहाँ पर जान चुके हैं कि यहाँ पर मुश्किलात हमारे लिए और बढ़ती नजर आएंगी, प्ले जोन का डैमेज भी इनको पड़ता नजर आएगा। सर्कल के अंदर मेरे ख्याल से सर्कल के अंदर GW का एक छोटा सा हिस्सा जरूर मिलेगा, बट दूसरे पे का बात की जाए SFT बॉयज आर लूजिंग प्लेयर वन बाय वन, लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग। अगर बात की जाए किल्स की, SFT boys have 10 elimination in the backpack, but still these guys need to move forward. आगे बढ़ के खेलना चाहिए था इनको साथ साथ, बट एक प्लेयर, आखिरी प्लेयर, लेट्स सी किस तरह खेलता नजर आता है। ग्रेनेड्स इनके पर आ रहे हैं, यहाँ पर दूर से शॉट लैंड होते हुए नजर आ रही है। किल्स पे किल्स है जो टीम निकाल सकती है इस टाइम के ऊपर, विच इज GW। एंड लुक एट दिस, हियर यू गो, इनको नजर आ चुका है द पजल इन द पजल एरिया, उनके उधर यहाँ पर प्लेयर्स आते हुए नजर आ रहे हैं, बट इनके पास है, GW के पास हमेशा से एक अच्छी पोजीशन रह रही है RZ, which is quite dangerous for the other teams. Exactly, GW, look at that. The way they are shining right now, it's impressive. एक कोने के ऊपर जरूर आ चुके हैं, but PL and SVG ये फाइट ले चुके हैं। सर्कल थोड़ा सा यहाँ से पीक से दूर जा चुका है। GW उनको उतरना पड़ेगा। मेटा यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं, उनको भी रिवाइव करना काफी जरूरी है। आयो के ऊपर शॉट स्टैंड की जाती काफी दूर से, थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाएंगे, बट ये टीम लेफ्ट साइड से आराम से निकल सकती है, आराम से कूद से उतर सकती है। This is exactly what they're doing. The circle is completely empty. Everybody should capitalize on the fact कि सर्कल खाली रहने वाला है। टीम GW के नीचे टीम मौजूद है, सामने टीम मौजूद है, राइट साइड पे टीम रहने वाली है, and they should get themselves into the circle as well as soon as possible. But यहाँ पे टीम प्ले लॉन्च होंगे, स्टार्स के प्लेयर उड़ते उड़ते आएंगे, and now somewhat they got the advantage, huge advantage इनको मिल जाएगा, और उस रॉक को इन्होंने एक अच्छे तरीके से टारगेट किया है, एक अच्छा कवर रहता है, और अब टीम स्टार्स को एलिमिनेट करना मुश्किल हो चुका है। GW ऑब्वियसली नीचे उतरे थे, नीचे एक स्क्वाड इंतजार कर रहा था, उसकी वजह से दोनों प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके, दो रह चुके जो अब ऊपर सर्वाइव करना चाहते हैं। नीचे यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुसीबत फंसी हुई है, SVG यहाँ पे एक डेथ फैक्टर बना हुआ है मल्टीपल टीम्स के लिए, अंदर आ चुके हैं, लेकिन SVG के प्ले में क्या पुलिस का यहाँ पे एक लॉन्चर आता है जो SVG के दो प्लेयर्स एलिमिनेट कर देता है। क्रैक इज द ओनली वन लेफ्ट, कैन ही यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। GW भी एलिमिनेट हो जाएगी। स्टार्स के DZ, स्टार्स के प्लेयर यहाँ पे नेड आता है जो कि पुलिस के स्क्वाड को एलिमिनेट करने में कामयाब होता है, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करता बट काफी हद तक एलिमिनेट कर देगा। क्रैक इज द ओनली वन लेफ्ट, शॉट्स लैंड की जाएगी, सैवेजेस भी एलिमिनेट हो जाएंगे, एक प्लेयर रह चुका है, टीम पुलिस के सॉरी दो प्लेयर्स रह चुके हैं, और बाहर से टीम स्टार्स आ रही है, शॉट्स लैंड कर रही है, आखिरी प्लेयर्स को स्पॉट किया जाता है, शॉट्स लैंड की जाएगी उनकी तरफ से भी, एंड नाउ सूनर और लेटर स्टार्स को बूया मिल जाएगा, एंड देयर वी गो once again एंड अगेन वी गॉट the stars के squad को booyah मिल जाएगा, they deserve it, they were the better, and that launch into the zone, that was impressive. Demon जिस तरह उड़ के गए थे, उन्होंने रियलाइज किया ये फाइट का कोई फायदा नहीं, वो एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसके पीछे हम छुप जाएंगे। They went into that, but fortunately for them, टीम्स की फाइट सर्किल से बाहर होगी, and they started pushing. उन्हें अंदाजा था कि हमारे पास एडवांटेज है, उन्हें अंदाजा था कि टीम्स लड़ रही हैं आपस में, we can just capitalize on that, and this is exactly what they did. Exactly, Team Star actually they play like slow and steady, win the race. Of course, उनको ये चीज अंदाजा था कि यार किस तरह ये मैच को विन किया जा सकता था, और ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है these guys are already know that कि भी हमें ये बुया मिल जाएगा, और जिस तरह वो खेल रहे थे slow and steady, I'm just impressed with these guys, Stars, DZ, और no doubt आगे भी मुझे लग रहा है अगला मैच जो रहने वाला है, which is the only one in the प्ले एरिया, और मेरे ख्याल से आरजी वंस अगेन आरजी स्टार एक दफा फिर वही आपने लिए करेगी। I was sure almost कि इनका चांस कम था. I was a bit shaky on the fact कि stars DZ दोबारा बुया लेके नहीं जाएगी. I even questioned them on the broadcast as well. Stars की ये नहीं होगा. स्टार के हारिस, बस स्टार्स आपकी जो टीम रहने वाली है, they definitely shine. In the end, they proved themselves twice in a row. दो गेमों में दो बुया with good amount of kills, a huge rotation as well. That is very impressive. The way उन्होंने make sure किया था कि वो सर्कल के अंदर आए, the way they made sure दोबारा चार प्लेयर्स आए, the way they capitalized on the fact कि यहाँ पे मैप की जो अवेयरनेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, और ऊपर से डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत इंप्रेसिव रहती हैं, कब पुश करना है कब पुश नहीं करना। ये वो टीम थी जो राइट एंगल से भी इधर फाइट ले सकती थी पीक के अंदर, ये वो टीम थी जो आराम से कून से उस तरफ से आती, बट नो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिसाइडेड टू गो इनटू द जोन, द लास्ट सर्कल, व्हिच वाज मोर ऑफ अ सेफ्टी फैक्टर कि नहीं, पहले जोन को प्रेफर देते इन केस के वो टीमें सर्कल के अंदर आना चाहेंगी, देन विल टेक अ फाइट फ्रॉम बिहाइंड अ पत्थर, लाइक बिहाइंड अ रॉक। बट उसके बाद द नेक्स्ट थिंग वाज के अगला, when they realize कि फाइट हो ही बाहर रही है, अंदर आना ही नहीं है, टीम्स आर नॉट आउट बट दे आर वेरी मच डाउन,
why not push ahead that decision to go out of the zone into those compounds? और एसवीजी को, जीडब्ल्यू को, पुलिस के स्क्वाड को एलिमिनेट करने में हेल्प करनी, एंड ऑब्वियसली पुलिस के स्क्वाड को आखिर में पूरा एलिमिनेट भी करना जो दो प्लेयर्स रह चुके थे. The decision to do all of that, that was the most impressive thing about Team Star DZ. It was not about gun skills, it was not about this, it was just about the fact कि game sense बहुत बहुत impressive है. एग्जैक्टली ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके पास का एक गेम सेंस कितनी रहने वाली है। इस गेम को लेके मेरे ख्याल से जितने भी तावीज़ थे गोल के टीम स्टार्स के वो इस पी चुके हैं, और दी वे दीज गाइज आर एक्चुअली प्लेइंग लाइक अ प्रो। ऑफ कोर्स वी नो दैट इस तरह मतलब कि इतनी अच्छी एग्रेसिव लॉबी के अंदर वी कैन सी जीडब्ल्यू हैव ए स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द हायर ग्राउंड, और दूसरी साइड पे अगर बात की जाए एसवीजी हैव द लोअर कंट्रोल, और उसी बिल्डिंग के लोअर साइड के ऊपर जो एसपीजी रहती थी, पुलिस के बॉयज जहाँ पर रहने वाले थे वो यहाँ पर इतने अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे थे। जहाँ पर जीडब्ल्यू का स्टार्ट होता है, जहाँ पर आईएनएस के बॉयज बिल्कुल सामने रहते हैं, जहाँ पर नजर आ रहा था कि आईएनएस के बॉयज जीडब्ल्यू के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल बना सकेंगे, बट यहाँ पे भगा भगा के जीडब्ल्यू के बॉयज ने आईएनएस के बॉयज को यहाँ पर स्टार्ट में ही एलिमिनेट कर दिया। बट दूसरे नंबर की बात की जाए, यहाँ पर दूसरी साइड जो रहेगी वहाँ पर टीएल के बॉयज है, यहाँ पर N9 के बॉयज है, जहाँ पर एक अच्छी पोजीशन रहती है। टीएल के बॉयज यहाँ पर क्लोजनेस करते हैं, जहाँ से पहले स्टार्ट में वो थोड़ा सा कम फॉल बैक करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, दूसरे साइड पे एकदम आएंगे, वापस से टेक डाउन करेंगे। बट जहाँ पर अगर बात की जीडब्ल्यू बॉयज की, जीडब्ल्यू बॉयज है जो कि स्टार्ट में लोअर ग्राउंड पे नजर आ रहे थे, अपर ग्राउंड पे कोई और टीम रहने वाली थी, उसको यहाँ पर टेक डाउन करेगी। जीडब्ल्यू is gonna control the higher building of the मेन एरिया, जहां पर सर्कल के अंदर भी वो बिल्डिंग आ रही थी। नीचे डाउन साइड के ऊपर एसवीजी के बॉयज जहां पर भी एक एक करके पुलिस के बॉयज से यहाँ पर भी नॉक होते हुए नजर आ रहे थे। बस एसवीजी के बॉयज जैसे यहाँ पर कंट्रोल अपना बनाना चाह रहे थे, पीएल के बॉयज आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर टेक डाउन करेंगे। उसी के साथ एसवीजी को टेक डाउन जैसे ही किया, पीछे से स्टार उनको सरप्राइज करती है, और सरप्राइज करके एकदम से आरजी एक अपना इम्पैक्ट बनाती है। और वो मेरे ख्याल से चाह ये रहे थे कि वो पहले से जो उनकी फाइट इनिशिएट हुई है, पहले वो अपनी वो फिनिश करें, उसके बाद स्टार्स जो है वो अपना यहाँ पर भी ऑफ कोर्स प्लेयर्स आर डैमेज, ऑफ कोर्स प्लेयर जोन भी आ रहा है पीछे से, वो भी उनको डैमेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टार ने प्रॉपर अपना वो जो है ना एक मौके पे चौका मारा है, वो वाला सीन है। Exactly, but that is the best thing, Haris. कि figure out करना कब क्या करना, that is what makes you the best. When to push, when to play defensively, when to capitalize on the advantage that is presented to you in just in Free Fire. That are the things that we have to see. But other than the fact कि एक और चीज, GW looked very strong throughout the map, throughout the game. हमें GW को squad उस peak के घर के ऊपर बैठा हुआ नजर आया था। सारे squads को, INS का squad को उन्होंने eliminate किया था। Multiple squads आना चाहे थे। इवन जो स्क्वाड आखिर में नीचे की तरफ मौजूद था उनको भी उन्होंने ही एलिमिनेट किया था नीचे की तरफ रहते हुए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकी तरफ से एक बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली जब सर्कल छोड़ के गया था तो GW कुडंट फिगर आउट द वे कि वो आखिर सर्कल में कैसे जाएंगे। एंड इवन आफ्टर द फैक्ट जो टीम उसी घर के नीचे मौजूद थी, दे वर नॉट एबल टू टेक अ फेवरेबल फाइट विद देम। सम डैमेज भी नहीं किया था जो टीम उनके पास आई थी, जो टीम उनके घर तक पहुंच गई थी, नीचे आ गई थी और 4v4 फाइट ली थी। Obviously that was a disadvantageous fight, or maybe an equal fight as well, that can go either way. But the fact that team इतना करीब नीचे आपके आ चुकी है, that is what not should have happened on the side of GW. GW के पास एम था, GW के पास घर की छत थी, GW के पास हाई एक वो हाई ग्राउंड भी था, वो आराम से कौन से एलिमिनेट तो ना कर सकते, वो डैमेज जरूर डील कर सकते थे कि एक या दो प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देते। सो दैट वुड हैव गिवन देम एन एडवांटेज गोइंग टू द लोस्ट फाइट। लेकिन आखिरी फाइट्स के अंदर दे कुडंट डू एनीथिंग। एसवीजी और पुलिस ने पूरा का पूरा उनको आराम से कौन सा एलिमिनेट किया है। बिल्कुल आराम सुकून से, ना कि सिर्फ आराम सुकून से, बट कि मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल इजी एक फाइट के अंदर टेक मतलब कि भी इनिशिएट करते हैं और अपने लिए एक अच्छी गेम सिक्योर करके आगे बढ़ते हैं। बट लेट्स सी कि अगला जो मैप रहने वाला है उसके अंदर टीम्स कैसा परफॉर्म करती हैं आरजी। उससे पहले कुछ देर के अंदर हमारे पास एक और रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, जहां पर पता चलेगा कि कौन सी टीम कहाँ पर स्टैंड करते हुए नजर आ रही है, विच टीम इज गोना have a slow drop in the scorecard। स्कोर ड्रॉप जो है जिस टीम के ऊपर जा रहा होगा, ऑफ कोर्स उनको यहाँ पर थोड़ी सी फिक्र जरूर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वालिफाई करके उनको आगे जाना है। लेट्स सी मूविंग फॉरवर्ड टू द स्कोर बोर्ड, और देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो टेबल टॉप, ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा अंदाजा है कि टेबल टॉप पे कौन सी टीम रहने वाली है, विच इज ऑलरेडी इज अ टीम स्टार डीजी, और जो कि यहाँ पर भी 25 पॉइंट्स इन दिस मैच
बरमूदा के ऊपर जो पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं वो यहाँ पर रहने वाले। दूसरी टीम रहने वाली है ओलंपिया विद 23 पॉइंट्स, काफी डिसेंट पॉइंट इस मैच के अंदर निकालते हुए नजर आई है। ग्रेट वॉल विद 20 पॉइंट्स इन थर्ड प्लेस, शिफ्ट यहाँ पर रहेगी 16 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर के ऊपर। सैवेज यहाँ पर रहेंगे 13 पॉइंट के साथ पांचवें नंबर के ऊपर। आर्क इस मैच के अंदर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करती है, पिछले मैच से 7 पॉइंट लेके जाती है। छठे नंबर पे रहेगी ब्लैक पीबी विद 7 पॉइंट्स और 7 प्लेस है। एंड 9 विद 5 पॉइंट्स और 8वीं प्लेस के ऊपर है। इसी तरह प्रेडेटर जो है वो भी 5 पॉइंट के साथ और लेजेंड्स भी 5 पॉइंट्स के साथ 9वें और 10वें पोजीशन के ऊपर यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद 2-2 पॉइंट्स लेके यहाँ पर हमारे पास आइकन और फंटास्टिक की टीम रहती है। और जो लोअर पे टीम्स हमारे पास 3 नजर आ रही हैं, which is Rebels, INS and the X-Shooters with 1 points only। यहाँ पर सबसे एंड पे 13, 14 और 15 पे हमें दिखाई दे रही हैं। स्टार्स वंस अगेन अगर बात की जाए, डीसी बॉयज are playing very well in this match as well। पॉइंट्स उनके पास काफी अच्छे हो चुके हैं। ऑल टुगेदर अगर बात की जाए, जीडब्ल्यू को देखा जाए, जीडब्ल्यू यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन आगे जाके दे सकती है ऑफ कोर्स। और दूसरी साइड पे अगर बात की जाए, ऑफ कोर्स जो टीम को हम काफी टाइम से देख रहे थे कि यार ये टीम जो है थोड़ा सा हमें अग्रेसिव इस मैच के अंदर भी शायद देखने को मिले, विच इज एसवीजी। वो यहाँ पे 13 पॉइंट्स के साथ रहती है आज। एग्जैक्टली वो भी 13 पॉइंट्स के साथ रहेगी एसवीजी। एंड बट द मेजर थिंग हार्स जो रहने वाली है कि हमारे पास 2 टीमें हैं जो कि इस टाइम पे बहुत 3 टीमें परफॉर्म कर रही, दैट इज गोइंग टू बी शिफ्ट, सैवेजेस, ओलंपिया एंड स्टार डीजी। बट ग्रेट वॉल का स्क्वाड भी रहेगा। द लीडर्स आर टीम, इन्होंने लास्ट गेम में परफॉर्म नहीं किया था, इस गेम में परफॉर्म नहीं कर पाए एंड एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी। बट टॉप 5 हमारे पास एक थोड़ी कंसिस्टेंट नजर आ रही है, टॉप 6 भी मैं कहता हूँ जहां तक, सॉरी 7 कंसिस्टेंट नजर आ रही है, जिसमें से ओलंपिया, सैवेजेस, ग्रेट वॉल वो टीमें हैं जो इवन दे डिडंट गेट द बूया वो फिर भी परफॉर्म करते हुए नजर आ रही हैं। तो लेट्स सी एग्जैक्टली कि हाउ दे गेट अहेड, लेट्स सी एग्जैक्टली कि वो किस तरह लेके जाते हैं चीजों को। बट आई एम इम्प्रेस्ड विद स्टार डीजी, लेकिन दे आर नॉट एग्जैक्टली शाइनिंग बहुत ज्यादा। और उसके बाद जाके ओलंपिया का स्क्वाड भी यहाँ पे रहने वाला है, जहाँ पे ओलंपिया पीछे 39 पॉइंट्स के साथ मौजूद है। एग्जैक्टली ओलंपिया यहाँ पर कुछ ही 39 पॉइंट्स, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा, ओनली 7 पॉइंट्स डिफरेंट। और एक मैच स्टार डीजी अपना एक बुरा गुजारती है, तो ऑफ कोर्स द टीम ओलंपिया, सैवेज, ग्रेट वॉल वो चाहते ही हैं कि इस तरह का वो मैच टीम स्टार डीजी के लिए बने कि स्टार्ट में ही टीम स्टार डीजी के बॉयज टेक डाउन हो जाए। और ऑफ कोर्स यहाँ पर ग्रेट वॉल, सैवेज और ओलंपिया, इन तीनों टीमों को काफी फायदा होगा इस चीज से। वो यहाँ पर भी ओवरटेक कर सकती हैं स्टार डीजी को, और #1 का जो एक टाइटल है वो स्टार डीजी से छीन सकते हैं। बट ये तो वक्त ही बताने वाला है कि स्टार डीजी अपनी वो पोजीशन जो है, अपना जो एक वो रुतबा जो है वो किसी और को देना चाह रही है कि नहीं देना चाह रही। अगला मैच जैसे ही स्टार्ट होगा आरजी, उसमें पता चलेगा कि क्या सीन बनता है। सॉरी, हाँ, यू आर राइट अबाउट द फैक्ट कि आपकी जो अगला मैप है इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एल्पाइन के ऊपर आखिरी दफा ये खेला जाएगा, और सॉरी एक ही दफा खेला जाएगा दिन के अंदर, सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आपके पास ये मैप रिपीट नहीं होगा, सो वट एवर स्ट्रेटजी यू हैव, वट एवर गेम प्लान यू हैव, और इफ यू नीड टू फिगर आउट द टीम्स इन दिस मैप, you won't get another chance. So this is your chance to figure out and do something about it. वरना पिछले प्रगति में आपने कुछ सीखा, अगले में आप अप्लाई कर सकते हैं। बरमूडा में कुछ सीखा, अगले बरमूडा में अप्लाई कर सकते हैं। अल्पाइन में जो सीखा इधर ही अप्लाई करते हैं, वरना कोई फायदा नहीं। बट लुक एट दैट, हमारे पास अगर देखें तो मैं कहता हूँ हारिस कि इट वाज अ गुड साइड एज वेल, कि जहाँ पे हमारे पास ये टीमों ने खेला है। आई एम लुकिंग सुपर हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि हमारे पास स्टार डीजी ने बैक टू बैक बूया सिक्योर किया है। बट टीम ओलंपिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 बूया एक ही टीम को मिले हैं, दे स्टिल 7 पॉइंट्स बिहाइंड, दे ओनली 7 पॉइंट्स बिहाइंड। नॉट मच दैट कैन बी कवर्ड बाय 2 elimination, that can be covered in 1 game as well. So Olympia पीछे पीछे आ रही हैं, and that is the case for other teams as well, जो इनके shift का squad हो गया, savages का squad हो गया, they are trying to be consistent in their performance, and we can see that 32, 34 और 29, 39 पॉइंट, सॉरी 29 पॉइंट उनके पास मौजूद है। नहीं वेट, 39 की उर्दू क्या होती है हारिस? 29 नहीं 29, जो भी है 39 पॉइंट्स, 29 30।
You get my points. 39, 39. हाँ 39 होती है. Yes, I got it. 39 होती है. Yes, boys. So we're back to the fact. 39 पॉइंट्स उनके पास है और 7 पॉइंट्स उनको भी चाहिए अगर वो करीब आना चाहते हैं. Which is not exactly a lot. मैं कहूँ जी स्टार्स डीजी हमारे पास बहुत आगे जा चुकी है. So it is a very great competition. We don't have only one team that is going ahead. Sorry, that is performing crazily. Obviously, we have multiple teams. और सबसे अच्छी बात ये है कि टॉप हमारे पास टीमें क्वालिफाई करेंगी मंथली फाइनल्स के लिए. सो इट्स नॉट दिस stage of the qualifier is not about the champion, it's about the top teams. तो नंबर 1 होना नंबर 2 होना फर्क नहीं पड़ता. The only thing that matters आज के दिन के अंदर के क्वालिफाई करना चाहिए आपको. एग्जैक्टली आरजी क्वालिफाई इज द मेन की कि वो क्वालिफाई करके आगे किस तरह टीम्स परफॉर्म करते हुए नजर आती हैं. बट गेम 3 हमारी लाइव होने लगी है कुछ ही देर के अंदर और गेम 3 की तरफ जाने बढ़ते हैं और टीम्स को ऑफ कोर्स इस मैच के अंदर भी गुड लक कहेंगे सारी टीमों को जो कि डाउन साइड पे रहती हैं. या कम ऑन यू गाइस कैन डू दैट. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप अभी भी खेल के आगे बढ़ सकते हैं. बट लुक एट दिस मैप, सर्कल बिल्कुल सेंट्रलाइज बनता हुआ आरजी. एग्जैक्टली हमारे पास सर्कल काफी हद तक सेंट्रलाइज बनता है बट एसवीजी का स्क्वाड यहाँ पे मौजूद है और आराम सुकून से करते हैं. बट यहाँ पे फाइट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. वी गॉट द फर्स्ट ब्लड ऑन द हैंड ऑफ वेनम. पहली दफा हमें वेनम भी नजर आए हैं. आइकन के स्क्वाड को शॉट्स लैंड की जा रही है शिफ्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट रहती है और एक बहुत ही डेंजरस प्ले कैच आउट होकर बूस्ट का इस्तेमाल करें. भागना जरूर जाते हैं. इज ऑन द बैक बट आइकन के लतीफ उनको चेस करना चाहते हैं. एचपी काफी कम रहेगी. शॉट्स लैंड करने की जरूर कोशिश की जाती है. इज प्लेइंग द फैक्ट ही वाज ऑन द डाउन साइड. ही still won this fight और ये देखना था कि उनकी एचपी कम थी. मुझे लग रहा था कि ये एलिमिनेट हो जाएंगे बट ही वाज जस्ट डेंजरस मैन एंड वी कुड सी व्हाई कि उनके पास इतना हम उनसे डरते क्यों है. लास्ट गेम में 7 एलिमिनेशन एटलीस्ट उनके पास थी. प्रॉब्लम उससे ज्यादा गई होंगी और इस गेम में कम एचपी के बावजूद ही स्टिल गॉट द फैक्ट कि उन्होंने दूसरे प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया है. दैट इज वेरी इंप्रेसिव. आइकन के स्क्वाड के पास अब जवाब इतना कोई खास नहीं रहा. एग्जैक्टली आरजी यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनते हुए नजर आ रही है और किल्स पे किल्स है. जावेद यहाँ पे रहने वाले एक प्लेयर आइकन के प्लेयर लूज भी हो चुका है और सामने टीम के ऊपर जिसका अपना एक रोप जमाते हुए नजर आ रहे हैं. बट रोप जमाने से पहले पहले उन्होंने एक और टीम को भी यहाँ पर टेक डाउन करना है विच इज क्वाइट एग्रेसिव ऑन दिस टीम आइकन. वो आगे एग्रेस करते हुए नजर आ रही है, एग्रेसिव होते हुए नजर आ रही है, नॉक निकालना चाह रहे हैं, किल्स निकालना चाह रहे हैं. दूसरे पे अगर बात कीजिए टीम एक्सेस है जो कि आगे बढ़ के ये भी किल्स की तरफ जाने बढ़ती हुई नजर आ रही है विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैच. दिस मैच कैन चेंज द मैप्स के. और ऑफ कोर्स अगर बात कीजिए एक स्कोर कार्ड की बात कीजिए उसको चेंज कर सकती है आरजी. एग्जैक्टली उसको चेंज कर सकती है. उसको यहाँ पे कहानी बदल सकती है. एक्सेस का स्क्वाड यहाँ पे बहुत करीब है स्टार्स के. इट्स एन इंपॉर्टेंट फाइट. मे बी स्टार्स के यहाँ पे पहली स्क्वाड एलिमिनेट हो जाती है. किंग को स्पॉट के शॉट लैंड की जाएंगी बट किसी तो यहाँ पे उनको एलिमिनेट नहीं कर पाते कंप्लीटली. एंड नाउ इज जस्ट चेजिंग किंग के उनके पीछे जाकर उनको एलिमिनेट कर सके. स्पॉट भी किया जा सकता है बट यहाँ पे किसी को ध्यान करना. बाकी प्लेयर्स यहाँ पे रहने वाले हैं. बाकी भी ऐसा क्या आ जाते हैं. एक प्लेयर नॉकडाउन जरूर हो जाता है. एचपी कम रहती है बट किसी तो चेस करते हुए जाते हैं और अब अगली तरफ से उनको नॉकडाउन कर दिया जाता है. एक्सेस के एक प्लेयर तो नॉक हो चुके हैं बट दूसरी साइड के ऊपर स्टार्स का स्क्वाड बहुत ज्यादा यहाँ पे डैमेज ले चुका है. कैसीटो एफए पे अपने एचपी अप्लाई करते हैं. स्कूल को भी नॉकडाउन किया जाता है. स्टार्स भी रिटेलिएट अच्छे तरीके से कर रही है. यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाए. हम गार आगे तरफ बढ़ना चाहते हैं. स्टार्स के प्लेयर को कंप्लीटली वाइप आउट करना चाहेंगे बट स्टार के प्लेयर यहाँ पे आ चुके हैं. इनिट्स टू बी केयरफुल. ऊपर ही रहने वाले हैं और वो नीचे बैठ के अपने प्लेयर को रिवाइव कर दिया जाए कर भी दिया जाएगा. एंड नाउ दे आर अप एंड दे आर आउटसाइड. व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. स्टार्स ने भी अपने प्लेयर को रिवाइव कर दिया है और लेट्स सी कि क्या बनता है. स्टार्स के प्लेयर यहाँ पे एचपी कम कर दी जाएगी. दोबारा यहाँ पे एक और प्लेयर को नॉकडाउन करके किल कंफर्म. एक्सेस के और प्लेयर को किल कंफर्म कर दी जाएगी. एंड नाउ एक्सेस इज डाउन टू 2 प्लेयर. किसीटो के एचपी काफी कम रहने वाली. वन मोर शॉट एंड ही इज डाउन. टीम स्टार्स दोबारा फाइनल ऑलमोस्ट जीतते हुए नजर आती है. अमगार को भी नॉकडाउन कर दिया. किसीटो व्हाट आर यू गोना डू. भागने की कोशिश की जा रही है बट स्टार्स दे वर ऑलमोस्ट डाउन बट दे केम बैक और अब वो ये फाइट जीतते हुए हमें नजर आ रहे हैं. एग्जैक्टली आरजी. और अब अगली जो फाइट है वो आपके साथ जरूर कंटिन्यू करेंगे टोरिक्स. और मुझे दें इजाजत, अब आगे से कंटिन्यू करेगा एग्रेसिव गेम प्ले के ऊपर कास्ट करते हुए नजर आएंगे आरजी एंड टोरिक्स. सी यू गाइस.
एग्जैक्टली उन्होंने कभी पूरी नहीं होने दी, बट एसवीजी का स्क्वाड दे आर सेफ राइट नाउ, आराम से कून से मौजूद है और यहाँ पे बिल्कुल भी इनको टेंशन की बात नहीं, जहाँ पे उतरे थे वहीं पे मौजूद रहने वाले, लूट करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी एलिमिनेशन नहीं ली, कोई भी यहाँ पे डैमेज डील नहीं ना लिया है ना दिया है, और इनके लिए कंसर्न की कोई बात नहीं, बट सैवेजेस का स्क्वाड रहने वाला है एंड दिस इज ऑलवेज अ स्क्वाड दैट इज वर्थ वॉचिंग। तो लेट्स एग्जैक्टली के व्हाट दे अचीव इन दिस गेम एज वेल, मे बी दे गेट द बूया, बट साथ साथ देखें तो एसवीजी दे लास्ट गेम के अंदर और सेकंड लास्ट गेम दोनों में एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बट टीएल का स्क्वाड आगे बढ़ता नजर आ रहा है, यहाँ पे एक स्क्वाड के प्ले को एलिमिनेट कर दिया है, दे ट्राइंग टू गो फॉर द किल एज वेल, बट लियो के यहाँ पे राइट साइड से शॉट आते हैं, ब्लू वॉल का इस्तेमाल किया जाता है, लेफ्ट साइड भी कंसर्निंग बात आती है, किंग आगे तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्ले को एलिमिनेट करना चाहेंगे, यहाँ पे स्पॉट करना चाहते हैं, डैमेज जरूर डील किया गया, बट टीएल के वेनम यहाँ पे डैमेज डील करके किल कंफर्म कर जाएंगे, टीएल के बाद 6 किल्स हो चुकी है, आखिर में स्पॉट के शॉट साइन की जाएंगी, नॉक डाउन कर दिया जाएगा, और नाउ ही विल टेक हिम डाउन एज वेल, एंड लुक एट दैट, टीएल यहाँ पे के न्यू किल लीडर्स भी आ जाते हैं, 4 किल्स वेनम के पास हो जाएंगी, इनके पास फर्स्ट प्लेयर था, इन्हीं के पास 3 और किल्स भी आ चुकी है। कुछ लाइक कोशिशें उनकी ज़रूर रहने वाली हैं, बट स्टिल अभी के लिए अगर बात की जाए, टीम पुलिस इज़ हेयर, पुलिस फाइट्स करना चाह रहे हैं, बट इस फाइट का जो कि इत्तेहाद है वो 4 एलिमिनेशन अपने नाम लेके जाने में कामयाब हो चुके हैं, बट राइट नाउ टीम पुलिस एक भी प्लेयर लूज़ नहीं करवाया, नैप नैप काफ़ी लो एचपी हील अपने आप को करेंगे, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्लो पेस पे जो कि स्टार्ट थी टीम पुलिस की तरफ से आरसी, वो अब एक एग्रेसिव स्टांस में ख़त्म हुई, और उस एग्रेशन में इनके पास एलिमिनेशंस भी आए, बट आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड देखें, नियर द स्नोफॉल आईएनएस की टीम भी हमें वहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है, सिमिलर साइड रिवर माउथ के पास हमें 2 टीम स्टार जो कि है वन ऑफ देम, वो भी फाइट करने में ज़रूर मुब्तला हो रहे हैं। डेफिनेटली मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल फाइट्स एंड इट इज गेटिंग डिफिकल्ट, लेकिन पहला सर्कल क्लोज होने वाला है, जहां पे हमारे पास मिलिशिया सनसेट के दरमियान सर्कल बनता है, सर्कल ले जाता है शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड, और अब देखें कि ये सनसाइड एंड कैसल का इलाका सारा का सारा खाली है, और जो भी टीम इस इलाके में जल्दी आ जाएगी दे विल डेफिनेटली बी हैप्पी। जीडब्ल्यू की फाइट चल रही है, यहाँ पे शिपो को यहाँ पे नॉकडाउन किया जाता है, एलिमिनेट भी कर दिया जाएगा, जीडब्ल्यू दोबारा किल्स कंफर्म करते नजर आते हैं, एक प्लेन के नॉकडाउन हो जाता है, कंसर्न की कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक्सेल की एचपी कम की जाएगी, बट जीडब्ल्यू फाइट लेना चाहते हैं, लेफ्ट एंड राइट जाएंगे, बट शॉट्स मिस होने की वजह से ही विल गो डाउन एज वेल, पीएक्सएल यही टाइम निकाल के अपने प्ले को रिवाइव कर लेती है, एंड नाउ टीम स्टार्स के प्ले भी यही वाले, जीडब्ल्यू के पीएक्सएल को भी नॉकडाउन कर दिया, मैटर रह चुके हैं, मैटर क्या बच पाएंगे, 1v2 पुल ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यहाँ से यहाँ यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, स्टार्स यहाँ पे किल कंफर्म करना चाहेंगे, मैटर को भी यहाँ पे मैटर नॉकडाउन कर देंगे, और लेकिन किंग एचपी रहने वाली, किंग कम हो जाएंगे, लॉस और यहाँ पे यहाँ से रहेंगे, मैटर भी सर्वाइव करें, कम एचपी ऊपर मौजूद है, प्ले राइट साइड से आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्लू वॉल के तरफ से बच नहीं पाते, यहाँ पे दखत की वजह से राइट साइड के ऊपर ख्याल नहीं कर पाते, जीडब्ल्यू विल गेट एलिमिनेटेड एट द हैंड ऑफ टीम स्टार्स। टीम स्टार्स 2 दफा यहाँ पे 2 स्कोर्स को, मेजर स्कोर्स को गेम से एलिमिनेट करके जाती है, एंड दे आर स्टिल सर्वाइविंग। They're still surviving, 3 मैन जो कि है वो अभी भी जिंदा सलामत रहने वाला है, लेकिन सिमिलर साइड टीम आईएनएस का नाम भी हमें देखने को मिल रहा है कि वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, 10 एलिमिनेशंस उनके पास भी हैं। टीम आरएल इनकी अगर बात की जाए इस कंप्लीटली सिनेरियो के दौरान, तो कॉरलसेल के एरिया में अपनी लूट एक्वायर अभी के लिए कर रहे हैं, अल्पाइन का ये मैप इनफैक्ट तीसरा था, और कहीं ना कहीं इस वेंडिंग मशीन से थोड़े से उड़ॉन नूडल्स जो कि हैं वो लेके खा ज़रूर सकते हैं प्लेयर है, डीमन स्लेयर का ये एक ज़रूर रहता है, वन ऑफ माई फेवरेट एंड मैं आरजी, बट आरएल सो फार देयर इन द सेफ, कोई भी इनके आसपास में नहीं रहने वाला। स्टार्स 3 खिलाड़ियों के साथ सर्कल में जाना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप मिनी मैप देखें, 1 नहीं 2 नहीं 3 टीमों का और नाम मे बी इन द क्लोजेस्ट विसिनिटी इनके साथ में देखने को मिल रहा है। स्टार आरसी के साथ वहां पर से फाइट के अंदर जाएगी, और उसके बाद सर्कल की जो कि एंट्री है उसमें उनको शुमार जरूर होना पड़ेगा। साउथ एंगल से हमें टीम चैंप जो कि है वो भी एंटर अपने सर्कल के अंदर एंट्री जरूर लेके जाने वाली है, लेकिन राइट नाउ टीम स्टार की दफा फिर से बात की जाए तो एसी आरसी के साथ फाइट के अंदर जाना में कामयाबी तो हासिल कर ली, डैमेज दिया, लेकिन आर्कम मॉक्स को नॉक मिलता है, कंफर्मेशन आएगी, क्वाड्रा एलिमिनेशन किंग का बनते हुए सो फार बहुत खूबसूरती के साथ ना तो सिर्फ टीम स्टार अपने नाम 9 एलिमिनेशन लेके गए हैं, बल्कि अपना चौथा खिलाड़ी उसको भी वापस से जिंदा कर लिया जाता है। एग्जैक्टली आईएनएस का स्क्वाड यहाँ पे अब रोटेट करना चाहता है, नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड से आ रहा है, एग्जैक्टली सामने इनके सामने कोई इतने खास मसले की बात नहीं है, सन साइड तक यहाँ पे इनके पास कोई भी बीच में टीम मौजूद नहीं रहने वाली, दे हैव द 4 प्लेयर्स, दे हैव द एडवांटेज एज वेल, एंड सिर्फ इनको आगे बढ़ के जाना है, सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या बनता है, बट ऑन द अदर साइड दे आर जस्ट गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि ये वो टीम है जो कि आगे
कोई भी इनको मसला नहीं है, बट आईएनएस नाउ दे आर लूटिंग एज वेल ऑन द वे। और साथ साथ अगर देखा जाए तो फाइट भी चल रही है, नो स्क्वाड पीछे रह चुके हैं। आर्क का स्क्वाड टीम स्टार के किंग को नॉकडाउन कर चुके, किंग का स्क्वाड मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टार से लेके अभी तक फाइट में आया है, एंड नाउ दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अनदर फाइट। शार्क से बदला लिया जाता है, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टीम स्टार्स did they take a damage to the body or not, that we still have to see, but other than that fact they are still doing really good। कैरसोल के एरिया के अंदर टीम आरएल का स्क्वाड मुझे सनसाइड खाली और यहाँ पे सर्कल शिफ्ट लेता है दोबारा और कैरसोल की तरफ चला जाएगा, एंड नाउ आरएल विल बी इन द सेंटर। ऑन द साइड टीम F4 का स्क्वाड यहाँ से शॉट्स लैंड करने जाते हैं, दे आर कंफर्टेबल इन अ गुड पोजीशन, और यहाँ पे यूएवी भी डिप्लॉय हो चुकी है, एंड नाउ दे वांट टू जस्ट फॉरगेट कि यहाँ पे इनके दूर के हम स्क्वाड मुझे सर्कल के शिफ्ट के बाद अंदर की तरफ जाना चाहेंगे वो लोग। डेफिनेट, बट राइट नाउ सर्कल जो कि है वो काफ़ी छोटा हो चुका हुआ है आरजी, और आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा मरहला है कि इतनी ज़्यादा टीम्स उसमें सर्वाइव कर पाएँ। 9 टीम्स हैं, 34 खिलाड़ी हैं जो कि अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। सामने टीम एसओजी सैवेजेस की जो कि टीम है, वो टीम जोजो के साथ फाइट जो कि है वो लेना ज़रूर चाह रहे हैं। फाइट्स देने की कोशिश, फाइट्स देने की इनफैक्ट जो कि कोशिश है, लगते तो हैं लेकिन नॉक नहीं निकल रहे हैं। दैट इज़ अ बिग थिंग। अगर एक भी नॉक निकलता है, प्लेयर्स के पास एक अच्छी एबिलिटी होगी, एक चांस होगा कि वो आगे जाके रशन कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट की तरफ से कोई भी एक नॉक जो कि है वो अभी तक के लिए नहीं निकाला जा रहा। प्लेयर का रास्ता तो रोका जा रहा है, पीछे से सर्कल आ रहा है, सर्कल ने अलग एक डैमेज जो कि है वो देना ज़रूर है। प्लेयर्स को मजबूर करना है कि वो इस ओपन एरिया में आगे की जानिब जो कि है अपना रुख मोड़े, आगे की जानिब जो कि है वो आए ज़रूर, बट नेक्स्ट वो इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ से टीम नंबर 6 वो इंतजार में यहाँ पर से बैठी जरूर नहीं है, लेकिन सैवेजेस मेक श्योर करेगी कि एक खिलाड़ी 2 खिलाड़ी को एलिमिनेट जरूर करें, और देखते ही देखते एक और नाम जो कि है उनको लॉबी की तरफ वापस जरूर भेज दिया जाता है। सैवेजेस कॉन्स्टेंटली फाइट की तरफ जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि वो फाइट में ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट लेके जाएं, बिकॉज एलिमिनेशंस पे बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि एक आपके पॉइंट्स जो कि अभी के लिए मैटर करने वाले हैं। सिर्फ 3 ही और मैचेस हैं। डेफिनेटली सिर्फ 3 मैचेस हो चुके हैं, इस मैच के बाद सिर्फ 2 मैचेस रहने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट जहां पे सनसाइड के ऊपर सर्कल बन रही है, ये फाइट बहुत दूर जाते हुए नजर आ रही है। टीम एसवीजी एक प्लेयर उन्होंने लूज किया है, बट बाकी 3 प्लेयर के साथ दे आर स्टिल ट्राइंग टू मूव अहेड। किल्स के एलिमिनेशन के पास कोई खास रहने वाली नहीं है, बट वहीं पे शूट यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, वो प्लेयर को एलिमिनेट नहीं कर पाते। प्ले जोन भी यहाँ पे प्लेयर्स को नॉकडाउन करते हुए नजर आ रहा है। टीम स्काई के प्लेयर्स यहाँ पे एक प्लेयर रह चुका है, और दैट इज गोइंग टू बी एरन। क्या वो अपनी टीम को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? पीछे भी टीम मौजूद, आगे प्लेयर्स रहने वाले, ब्लू जोन भी काफी डैमेज दे रहा है, और साथ साथ यहाँ पे उनके पास कोई फर्स्ट एड किट नहीं मौजूद है। F4 ऑन द अदर साइड दे आर इनटू द ऑलमोस्ट इनटू द सर्कल, बट F4 के प्लेयर्स के सामने एक और स्क्वाड मौजूद है। एक प्लेयर को नॉक डाउन किया जाता है, दूसरे प्लेयर भी काफी हद डैमेज लेते हैं। दे नीड टू मेक श्योर कि समवट कम बैक करना, बट किया यहाँ पे नॉक डाउन हो जाएंगे, एंड अब लीविंग ओनली 2 प्लेयर्स बिहाइंड। स्टिल द शॉट्स आर बीइंग ट्रेडेड लेफ्ट एंड राइट, बट F4 नाउ इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। पुलिस के पास ये फाइट बहुत अच्छे तरीके से जीतते हुए नजर आती है, बट फाइनली थोड़ा सा हमें टीम की तरफ से कोई यहाँ पे कम बैक नजर आता है। एक नॉकडाउन निकाला था पुलिस के ऊपर, बट कैन दे कीप इट ऑल द वे गोइंग। एसवीजी स्टार सिंह को यहाँ पे बचाना चाहते हैं, बट कहीं और से शॉट आते हैं, एसवीजी के प्लेयर को नॉक करते, एंड ही विल डेफिनेटली बी आउट ऑफ द गेम। डेफिनेट बी आउट ऑफ द गेम सो फार। साथ ही और टीमें बचने में भी के लिए कामयाबी हासिल करती हैं। सैवेजेस अपने 3 खिलाड़ियों पे क्लोज लाइन पे टीम स्टार रहने वाली है। सर्कल से दोनों टीम्स इनफैक्ट अभी के लिए बाहर रहती हैं। सर्कल सबसे पहले पकड़ना है। दिस स्टेज इज सुपर स्मॉल, बट राइट नाउ की फॉर किल इनकी अगर बात की जाए तो वो क्लोज लाइन के एक खिलाड़ी को गिराया गया। ट्रिपल एलिमिनेशन अपना सिक्योर जरूर करते हैं, लेकिन अकेले खिलाड़ी हैं टीम स्टार्स के साथ। ये एक 1v1 की फाइट जो कि है उसमें मुब्तला कर दिया जाएगा। ग्लू वॉल्स का बेहतरीन इस्तेमाल, सर्कल के अंदर एंट्री अपनी लेके गए, एक और नॉक निकाला, और देखते ही देखते इट्स ओवर फॉर द टीम स्टार डीसी। स्टार डीसी का नाम यहां पर खत्म किया जाता है। सैवेजेस अभी भी 3 एलिमिनेशन के साथ सर्वाइव करें। सर्कल के अंदर एंट्री जरूर लेके जानी है। पीछे बच चुकी हैं सिर्फ और सिर्फ 4 टीमें और 13 खिलाड़ी। 3 खिलाड़ी जिसमें से सैवेजेस के रहने वाले हैं। सिमिलर साइड देयर आर अ लॉट ऑफ मोर टीम्स, जो कि आईएनएस का भी एक नाम रहता है, टीम आरएल का भी नाम हमें देखने को मिल रहा है। इवन टीम पुलिस जो कि है वो भी सर्वाइव करी है, लेकिन आरएल उनका नाम यहाँ पर से एक अच्छे एलिमिनेशंस पे आते हुए कुछ एलिमिनेशन उनकी तरफ से निकाले जरूर जाते हैं, लेकिन डोमिक्स की तरफ से फायर देने की कोशिश, डैमेज जरूर लगता है, लेकिन प्लेयर नॉकआउट यहाँ एलिमिनेट नहीं किए जाते। यूरी के पास आगे बढ़ने की इरून्स की तरफ से कोशिश जरूर रहती है, लेकिन राइट ऑन द हेड शॉट नूरेक्स फिल्मा के ऊपर ये फायर जो कि है वो दागा किया, नॉक निकालते हैं। राइट आफ्टर दैट सर्कल से बाहर अब जो कि फाइट है उसमें अपने आप को मुब्तला करने की कोशिश, जिसमें नॉक्स
निकाले जा सकते हैं, बट सर्कल का सबसे पहले आर्जीन को ध्यान रखना है, क्योंकि सर्कल किसी का सगा नहीं रहने वाला। देयर वी गो। आईएनएस के एक प्लेयर मौजूद है सर्कल के अंदर, एसवीजी के 2 प्लेयर्स रहने वाले, एक ही प्लेयर आरएल का रहता है जो इस सारी फाइट से बहुत दूर रहने वाला है। सर्कल भी उसके आगे काफी दूर रह चुकी है। दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द फैक्ट कि आरएल को अंदर जाना है, बट एसवीजी दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक श्योर कि आईएनएस को पनिश किया जाए। घर के एक छोटे से कॉर्नर के ऊपर ये सर्कल का एज, बहुत एज बनता है, वहां पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दे स्टिल हैव अ गुड कवर। आईएनएस के पास ऑल्दो नंबर्स एडवांटेज रहता है, इट्स अ 3v2v1 एंड दे हैव टू कैपिटलाइज ऑन द फैक्ट। लेकिन ज्यादा मसला है कि सर्कल के अंदर जगह कैसे बनाते हैं एसवीजी। दे डोंट हैव अ क्लियर लाइन ऑफ साइट के सामने रहने वाली, बिकॉज सर्कल से डैमेज ना लेने की वजह से वो लोग एक स्टेप रहते हैं। आरएल ऑन द अदर साइड वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी सर्कल से बाहर, leaving only 2 teams behind Torres. It's a 3v2. Can SVG pull it off? They have come very close to Booyah multiple times. They definitely deserve it. But INS जिस तरह खेली है, जिस तरह प्रेडिक्ट किया, बहुत अच्छी बात है। डोमिनो को शॉर्ट लाइन कहते हैं, लेकिन वो घर से बाहर आ चुका है। आगे तक बढ़ना चाहता है, ब्लू वॉल को यहाँ पे लगाया जाएगा, फिर तोड़ दिया जाएगा, Oh, बुश का इस्तेमाल nice. करके फिर दोबारा ब्लू वॉल की तरफ इस्तेमाल किया जाता है। राइट साइड से INS के हार्ड यहाँ पे नेट वगैरह फेंकते हैं, कनेक्ट करेगा नहीं करेगा देखना पड़ेगा। एसवीजी के प्लेयर फिर आगे बढ़ने में जाते हैं, लेफ्ट के ऊपर प्लेयर भी रहते हैं, राइट के ऊपर प्लेयर भी रहते हैं। एसवीजी के दूसरे प्लेयर भी सर्वाइव करते हुए नजर, प्लेयर को स्पॉट के शॉट लैंड की जाएंगी, ऑलमोस्ट ही वाज डाउन, बट नीड्स टू बी केयरफुल कि ब्लू वॉल किसी भी टाइम तोड़ी जा सकती है। अकेले प्लेयर बाहर रहने वाले हैं, no. इनके प्लेयर अब फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, उनको बचाने के लिए ब्लू वॉल पुट कर दी जाती है, बट आईएनएस दे आर वेरी क्लोज। ब्लू वॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, शॉट लैंड की जाएंगी, आईएनएस के प्लेयर को ऑलमोस्ट डाउन किया गया था, लेकिन नहीं, आईएनएस के प्लेयर जो दूर रहने वाले थे वो स्पॉट कर लेते हैं एसवीजी को, एंड दे विल टेक हिम अवे एंड आउट ऑफ द गेम, एंड आईएनएस ये बूया सिक्योर कर जाती है। द ओनली कंसर्न वाज कि एसवीजी ने जो आखिरी सारी फाइट ली है वो एक मेंबर के साथ ली है, और उसका एक ही प्लेयर बाहर से वॉल्स लगाई जा रहा था। The second player should have been there in order to provide more walls, और सादा यहाँ पे यूटिलिटी का इस्तेमाल कर सकता था। बिल्कुल, एक यूटिलिटीज एंड ग्लू वॉल्स के साथ साथ एक कवर जो कि था वो प्रोवाइड हो सकता था प्लेयर की तरफ से, लेकिन नॉनदलेस आईएनएस खूबसूरती के साथ इस मैच का अपने लिए बूया जरूर सिक्योर कर जाते हैं। और जहां पर बूया की इधर बात भी की जा रही है, सिमिलर साइड और टीम्स ने भी काफ़ी एक अच्छे अहदाद के साथ काफ़ी एक अच्छे पॉइंट्स के साथ जो कि इस मैच का इख्तिताम अपने नाम ज़रूर किया, बट वो कितने पॉइंट्स टोटल रहने वाले हैं, किस तरह से वो गेम प्ले जो कि है वो थ्रू आउट खेला जाएगा, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर सैवेजेस थ्रू आउट बहुत अच्छा खेलती रही, टीम स्टार जो कि है वो बहुत अच्छा खेलती रहती हैं थ्रू आउट द गेम। उनके पास भी कुछ एलिमिनेशंस जो कि थे वो हमें लाजमी देखने को मिल रहे थे। द लीडर्स टीएल का नाम जो कि था वो अर्ली स्टेज पे हमें काफ़ी ज़्यादा फाइट्स लेके जाते हुए नज़र आया था, और विद दोज अर्ली फ्रैग्स जो कि उनके पास आई बिलीव सो 8 या 9 रहने वाले थे, उसमें कहीं ना कहीं और भी उन्होंने एंगेजमेंट अपनी ली थी, पॉइंट्स और सिक्योर किए थे। एंड देखते ही देखते जहाँ पर वो जो कि था एक बूया का सिलसिला वो चलते चलते आईएनएस अपने नाम थ्रू आउट द गेम लेके जाती है, अपना मेजॉरिटी प्लेयर्स को जिंदा सलामत रखते हैं। बट ये था तीसरे मैच का सारा मरहला, अभी चौथा मैच और पांचवा मैच आज ही रहता है बाकी। डेफिनेटली चौथा और पांचवा मैच रहता है, बट उससे पहले लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, विल डेफिनेटली राइट बैक।
यार बेहतरीन चल रहा है, बैक टू बैक मैचेस चलते हैं, टाइम से खत्म हो रहा है, 10 साढ़े 10 बजे, 10 सवा 10 बजे तक वी विल बी डन एंड हम हाँ हाँ वेलकम बैक एवरीबॉडी अरीना स्पोर्ट्स के अंदर पावर्ड बाय एतिसलात ईएन, जहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर एडी गेमिंग एंड पॉडकास्ट पार्टनर हमारे पास प्लूटोनिया रहने वाले हैं. वी हैव अ वंडरफुल टूर्नामेंट शेपिंग अप टू बी एंड वी आर ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ दिस टूर्नामेंट इन ऑलमोस्ट एवरी गेम. लेकिन आज के दिन हमें गेम नंबर 4 जो चल रही फ्री फायर के अंदर दोबारा ज्वाइन किया टॉरेक्स ने. टॉरेक्स, हाउ डू यू फील जनरली अबाउट एरिना स्पोर्ट्स, और दूसरा आज के दिन के ऊपर क्या क्या तासुरात है, क्या तबादला ख्याल करेंगे हम आज? ओह माय गॉड, सबसे पहले तो आरजी थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम. और आपने एरिना ई स्पोर्ट्स का मेरे से तासुरात ज़रूर पूछे और काफ़ी मुझे एक सोच विचार में डाल दिया कि व्हाट शुड आई से, किस तरह से मैं इस सारे एक्सपीरियंस को जो कि है वो मैं एक बयान कर सकता हूँ. बट यस, थ्रू आउट द जर्नी एक काफ़ी अच्छी जर्नी सो फार गई है एंड एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इनकी तरफ से थ्रू आउट डिफरेंट गेम्स का, जो कि है एक सिंगल गेम का नहीं. सबसे अच्छी चीज़ अरीना ई स्पोर्ट्स की ये रहती है कि वो एक गेम के ऊपर बाउंड नहीं है. दे आर डूइंग मल्टीपल गेम्स, चाहे वो फ्री फायर हो, चाहे वो कोई और गेम हो. दे आर डूइंग एवरीथिंग एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो कि है वो सबसे अच्छी चीज़ है. हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है जिसमें चांसेस एंड एंगेजमेंट ऑडियंस की जो कि है थ्रू आउट डिफरेंट लैंग्वेजेस कर दी जाती हैं. आपने आज के दिन के भी तासुरात पूछे. अभी के लिए तो INS बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल के गई है और इस मैच का जो कि बूया उनकी तरफ से निकाला गया है. वंस अगेन टॉप पे में भी जो कि टीम्स हैं उन्होंने इन 5 मैचेस के अंदर ही आना है. ये 5 मैचेस जो कि आज के दिन पे पूरा मरहला चलना है उसके अंदर अंदर उनको रखना पड़ेगा, क्योंकि टॉप ने डायरेक्ट ग्रैंड फाइनल में जाना है और उनके बाद नंबर 2 से ऑनवर्ड जो कि 5 रहेंगी वो आगे के मरहले में अपने आप को क्वालिफाई करवाने वाली हैं. एग्जैक्टली आगे मरहले में क्वालिफाई करेंगी और हमारे पास टोटल 15 टीम्स, हमारे पास आधी टीम्स आएंगी, ऑलमोस्ट आधी टीम्स आएंगी एक क्वालिफिकेशन क्वालिफायर से एंड द रेस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द टीम्स विल कम फ्रॉम हमारे पास ओपन क्वालिफायर से. तो हमारे पास मंथली इनविटेशन क्वालिफायर 2 चल रहा है, देन विल हैव द मंथली हमारे पास ओपन क्वालिफायर्स होंगे, देन विल हैव द मंथली फाइनल्स टू एंड जस्ट लाइक दैट टॉरेस हमारे पास 3-4 होंगे एंड लास्टली वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स. हमारे पास लास्ट जो चीज़ होने वाली है वो होगी लास्ट चांस क्वालिफायर्स. So technically we have 5 qualifiers, then we have playoffs, then we have the grand champions, sorry not grand champion, we have the grand finals which will be the afterwards हमारे पास grand champions आएंगे. So it is a long road
roadmap. So I hope the teams are ready, and especially it's a longer roadmap because open qualifiers का मतलब ये नहीं कि that is just one stage. Open qualifier में there can be huge number of teams participating. That makes it a much longer tournament. So you might not see what exactly is going on ahead, but पीछे से एक बहुत बड़ा हमारे पास एक होता है ना filter लगा हुआ है जो कि open qualifiers में से हमारे पास teams को लेके आता है. So it can be one round, it can be two round, it can be three rounds. We don't know, but it certainly depends on the number of the teams participating. बट एक फैक्टर होता है कि जो ओपन क्वालिफायर से आए हैं उन्होंने काफ़ी एक हार्श जो कि जर्नी होती है वो ज़रूर खेली जाती है, और उस हार्श जर्नी के ऊपर ही जो कि उन्होंने फाइनल्स के अंदर अपनी एंट्री ज़रूर देनी है. लेकिन ये सारी बातें थोड़ी देर के बाद करते हैं. अभी चलते हैं हम पिछले मैच की हाईलाइट्स की तरफ, और वो कुछ खूबसूरत मूवमेंट्स जो कि थ्रू आउट द जर्नी चले थे उनके ऊपर एक दफ़ा दोबारा से नज़र ज़रूर मारेंगे. स्टार्टिंग के अंदर ही टीम एनबी को एलिमिनेशन मिलता है. ज़्योज़ो किंग बहुत खूबसूरती के साथ एक 1v3 जो कि था वो पुल ऑफ करने में कामयाब हुए थे, एंड स्लोली एंड स्टेडली पुलिस ने भी अपना एक कमबैक जो कि था एक अच्छे एहदाद अच्छे एलिमिनेशंस के साथ निकालना शुरू तो किया था. बट जब 6 मिनट गुजरते हैं आरजी, 5 टीमों का पूरा मरहला पूरा जो कि सफ़र था वो ख़त्म भी कर दिया जाता है. एग्जैक्टली खत्म ही करते हैं. एसवीजी की तरफ से भी एक अच्छी एक आविश दी गई थी, एंड दे वर ट्राइंग टू गेट इनटू द सर्कल एज वेल, और हर तरफ से पुश करने की, बट एसवीजी ने भी काफी तक लॉसेस लिए थे अंदर मूव करते हैं. F4 अनफॉर्चुनेटली ये फाइट नहीं जीत सके जो सर्कल के बाहर बड़े एसवीजी. दे वर ट्राइंग टू बी द की फैक्टर इन द एंड. टीएल का स्क्वाड की तरफ से भी यहाँ पे जो टीम के प्लेयर्स को एलिमिनेट किया गया था वो भी एक अच्छी बात थी. इनके एक प्लेयर आई थिंक की हुए थे, मे बी इट वाज वेनम. आई थिंक दैट ही वाज वेरी इंप्रेसिव थ्रू आउट, बट आईएनएस आई थिंक उन्होंने एक बहुत अच्छी के तरीके से आई वुड से कि एक अच्छे तरीके से उन्होंने प्रिडिक्ट किया था सर्कल को. दे वर वन ऑफ Oh द फ्यू yes. टीम्स और द फर्स्ट टीम दैट वाज एंटर्ड इनटू द सर्कल बहुत जल्दी, एंड दे वर रेडी टू प्रिडिक्ट इट आउट एज वेल, और उन्होंने अपने 4 प्लेयर सर्वाइव किए. अनफॉर्चुनेट लास्ट सर्कल के अंदर दे वर प्लेइंग विद ओनली 3 प्लेयर्स, बट दे नीड उनको 4 प्लेयर्स की जरूरत फिर भी नहीं थी बिकॉज कोई और टीम नहीं मौजूद थी 4 प्लेयर्स के साथ या 4 नंबर के साथ. सो ऑल इन ऑल दे वर एबल टू मैप द सर्कल, अर्ली रोटेशन, एलिमिनेटिंग एनी टीम जो उनके लेफ्ट एंड राइट आते, डिफेंसिव खेल रहे थे, पोजीशन होल्ड कर रहे थे, एंड बार और बार सर्कल को प्रिडिक्ट भी कर रहे थे. एसवीजी अनफॉर्चुनेटली वो 3 प्लेयर्स के साथ लास्ट सर्कल में एंटर नहीं हुई थी. उनके 2 प्लेयर्स एंटर हुए थे, तीसरा प्लेयर काफी दूर रहने वाला था, हु गॉट एलिमिनेटेड आउट ऑफ नोवेयर, एंड द लास्ट 2 प्लेयर्स हैड टू टेक दिस फाइट. आखिरी एक तो मैं कहता हूं कि against 3 players, and not just that, they were definitely pinned down on the edge of the circle. एक edge के ऊपर मौजूद थे, और जब वो बाहर निकले तो 3 मुख्तलिफ तरफ से आईएनएस के प्लेयर्स ने एक मैं कहता हूं उनके ऊपर Oh. वो गोलियों की भरमार कर दी, and they made sure they didn't survive. But it was a good game for INS. But let's see के scorecard how does it look, because Savages despite the fact वो Booyah लेके नहीं गए, they definitely had a very good game. डेफिनेट उनकी गेम जो कि थी थ्रू आउट द जर्नी बहुत एक अच्छी जाती है. लेकिन इस मैच के स्कोर बोर्ड कुछ ऐसे रहने वाले हैं कि टीम आईएनएस 25 टोटल पॉइंट्स के साथ ऑन द हैशटैग नंबर 1 रहती है द लीडर्स. बिल्कुल उनके पीछे 18 पॉइंट्स लेके जाएंगे स्टार्स जी. 18 पॉइंट्स ही उनके पास भी रहते हैं सैवेजेस. 15 पॉइंट्स इस मैच के अंदर सिक्योर करने में कामयाबी हासिल करते हैं. ओलंपिया के पास 13 पॉइंट्स, रेबल के पास 12, फैंटास्टिक 4 9 पॉइंट्स, ग्रेट वॉल 6 पॉइंट्स, ब्लैक पीपी 4, आर्क टीम 3 2 पे एक्स शॉर्ट्स रहने वाले हैं. साथ ही साथ प्रीडेटर शिफ्ट ये एक पॉइंट लेके गए. लेकिन आइकन और नाबा ई स्पोर्ट्स जो कि रहते हैं वो एक भी पॉइंट अपने नाम इस मैच का सिक्योर नहीं कर पाते. एंड ये कुछ ऐसे मरहले थे, ये कुछ ऐसे लाइक पॉइंट्स थे जहाँ पर आरजी एक कमबैक जो कि था वो बन सकता था. क्योंकि अल्पाइन का एक ऐसा मैप होता है कि आपने सिर्फ एक ही दिन पे खेलना है. आप इसको एग्रेसिव भी खेल सकते हैं, आप इस पर ट्राई कर सकते हैं अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, अपने डिफरेंट गेम प्ले स्टाइल्स, और कोशिश कर सकते हैं कि एक अच्छे ना तो सिर्फ एलिमिनेशन पे आपको एक बूया मिले, बल्कि सिमिलर साइड अगर आप बूया सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो एक बोनस पॉइंट्स आपका इंतजार उसमें कर रहे होते हैं. Exactly, आपका एक बोनस पॉइंट्स इंतजार कर रहे होते हैं, दैट इज अ गुड थिंग. बट वन थिंग दैट इज डिफरेंट, ऑब्वियसली स्टार डिजू को हमने नंबर 1 पे नहीं देखा. दे गॉट फर्स्ट 2 बूयास एज वेल, बट in the third game उन्हें बुया तो नहीं मिला. they still made their way in the top 3, so that is something जो कि एक difficult बात है. ओलंपिया they are still performing. हमें consistency इन 3 टीम्स की तरफ से multiple times नजर आई है, इन 3 गेम्स में नजर आई है. the only thing that is different कि हमारे पास 2 टीमें push down हो गई, but looking at the overall scorecard we'll definitely have these 3 teams जिनका हमने नाम लिया, Savages, Olympia and Star DZ at number 1. INS की जब हमें नजर आई है after getting the Booyah, Great Wall की ये गेम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी
मैं कहता हूँ कम रहनी थी, लेकिन ग्रेट वॉल ने दोबारा एक अच्छी 3 गेमों के बाद दे आर स्टिल एट 29 पॉइंट्स। उसके बाद मैं कहता हूँ कि द लीडर्स दे हैव अ गुड जंप एज वेल, फैंटास्टिक फोर भी एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ते नजर आई, बट फॉर नाउ द ओनली डिफिकल्ट थिंग इज जो बॉटम पे रहने वाली है टीम टॉरिक्स, दे आर नॉट ओह लुकिंग माय गुड गॉड, एट ऑल। 60 पॉइंट्स प्लस से आप डायरेक्ट एक सिंगुलर डिजिट पॉइंट पे जो कि जा रहे हैं 5 6 इवन 11 15, एंड सेकंड पेज की कंप्लीट ओवरऑल की अगर बात की जाए हैशटैग नंबर 9 से ऑनवर्ड, चांस ही नहीं है इन 2 मैचेस के अंदर अपने लाइक टोटल पॉइंट सिक्योर करने का इतने कि आप 64 को बीट अप कर जाएं। अगर आप करना भी चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि टीम स्टारडीजी, ओलंपिया और सैवेजेस का नाम जो कि लॉबी से सबसे पहले खत्म हो, वो एक भी पॉइंट अपने नाम ना लेके जा पाए। तब आपको एक आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस जो कि है वो दिखानी है, 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स एक ही मैच के अंदर, और उन 30 पॉइंट्स के मरहले पे आप अगले 2 मैचेस जो कि हैं वो सिक्योर करके अपने आप को हैशटैग नंबर 1 पे जरूर लेके आ सकते हैं। लेकिन टॉप 5 के अंदर आना है, 29 to 22 की ये रेशियो जरूर है, तो 1 मैच इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, वो एक पॉसिबिलिटी जो कि है वो रहती है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप टॉप 1 की जो कि फाइट है उसमें नहीं जंग में दौड़ ले रहे हो, तो बकाया फाइट वो एक आसानी में आ सकती है आरजी स्टिल, क्योंकि जो कि बॉटम पे अभी रहने वाली है क्वालिफाइड टीम्स में से, वो हैशटैग नंबर 5 आईएनएस का नाम है, 29 उनके पॉइंट्स है। आइकन वो अगर दोनों मैचेस के अंदर अच्छे अच्छे दाद लेके जाते हैं, 12 13 एंड इवन 14 पॉइंट्स, तो आसानी से अपने आप को वो 14 पॉइंट्स पे 28 और 28 5 33 जो की है वो पॉइंट्स लेके क्वालिफाई कर सकते हैं। देयर इज अ चांस, लेकिन इस चांस में ये भी ध्यान रखना है कि आईएनएस, सिमिलर साइड द लीडर, फैंटास्टिक फोर और बकाया जो कि ऑनवर्ड हैशटैग नंबर 5 पे भी टीम्स रहती हैं, उन्होंने भी सेम ट्राई ही करनी है चीज की। डेफिनेटली, बट 2 गेम्स आपकी बात दुरुस्त रहती है हमारे पास। वी हैव 2 games left. That means one thing, Torix, कि हमारे पास it is still not over. हम ये नहीं कह सकते हो ये It is टॉप not 7 over. क्वालिफाई कर रही है। डेफिनेटली टॉप 3 तो क्वालिफाई कर ही रही है, मे बी ग्रेट वॉल भी Oh, कर yeah. रही है, बट आईएनएस, द लीडर्स, फैंटास्टिक फोर, ब्लैक पीपी, दे आर स्टिल इन अ शेकी स्पॉट। कोई भी टीम इवन राइट नाउ आइकन उठ के लास्ट 2 गेम्स में अगर भूया लेके जाती है, दे कैन क्वालिफाई। सो it can come down to the last 2 games. आपके पास more than half of the day is done. 3 गेम्स हो चुकी हैं, आपने परगेटिव और बरमूदा खेला दिया, आपने दोबारा परगेटिव और बरमूदा खेलना है। सो यू नो देयर इज नथिंग जो कि आपको मैं कहता हूँ सरप्राइज फैक्टर रहता है। सो ऑल इन ऑल स्टिल अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू अगर आप आगे बढ़ के क्वालिफाई कर जाते हैं। सो लेट्स सी एग्जैक्टली कि ये जो बॉटम पे रहने वाली है 7 टीम है, स्पेशली जो टीमें डबल डिजिट पे नहीं पहुंची या 20 से कम पॉइंट्स रहने वाली हैं, व्हाट विल दे डू डिफरेंटली? शूटर्स एंड 9, दे डोंट हैव टू डू मच। जो इस टीम पे क्वालिफाई कर रही है उनके 23 पॉइंट्स है टोटल, तो 5 पॉइंट्स लेके जाने हैं, बट इफ यू गेट अ बूया यू डेफिनेटली इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पॉट। तो ऑल इन ऑल ये जो 4 से लेके हमारे पास 15 तक है, इट हैज स्टिल हैज अ चांस टॉरिक्स के ये बदल सकता है। सो आई एम नॉट बिल्कुल। श्योर कि कौन जाएगा, एवरीबडी हैज द कैपेसिटी सिंस वो यहाँ तक आए हैं, they have been invited for a reason. So let's देखते हैं Oh, कि ये yeah. वो कौन सी टीम है जो आगे जाएगी। Obviously in the end personally मैं चाहूंगा कि बेहतरीन टीम आगे जाए या बेहतर टीम आगे जाए, Oh, बेहतरीन yes. नहीं भी जाती, the one who deserves to play the monthly finals. So I Hmm. hope those teams qualify, otherwise it will be a bit sad personally, क्योंकि हम सब क्या करने हैं यहाँ पे टॉक्स, हम चाहते हैं ई स्पोर्ट्स का भला। यस, हम यस, चाहते हैं ई स्पोर्ट्स का भला, और हम चाहते हैं कि जो टीम डिजर्विंग है, जो टीम एक अच्छी ग्राइंड कर रही है और वो ग्राइंड शो भी करा रहे हैं, वही आगे जाए। तो आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने अपनी ग्राइंड शो करनी है इन द गेम। गो हे वायर, मेक श्योर कि आप एवरी स्ट्रेटजी जो कि अभी तक के लिए आपने लर्न की है, आपके पास एक अच्छा हाथ उस पर रवा है, आप वो प्ले ऑफ करें। मे बी इट विल वर्क, मे बी इट विल नॉट, इट डिपेंड्स, लेकिन इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। आपको मेक श्योर करना है आप खेल के ही सीखें, आप सीख के नहीं खेलें, आपको खेल के ही सीखने में ज्यादा बेहतरी जो कि एक ज्यादा आपकी जो कि ग्रोथ है वो जरूर होती है। और अगर नहीं कोई क्वालिफाई करता है, इट्स ओके, इट्स ओके, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस जो कि आपको मिलता है। बट 7 टीमों ने टोटल जाना है, और अर्जी जिस तरह आपने बोल दिया है कि 23 पॉइंट्स इज द मिनिमम रेशियो राइट नाउ, इन 2 पॉइंट्स, इन 2 मैचेस के अंदर 23 पॉइंट्स तो आसानी से बन सकते हैं हर टीम के लिए। एंड अगर अगर का वर्ड इसमें ज़रूर मैं डालना चाहूँगा, अगर टॉप 3 टॉप 4 की टीम्स दोबारा से वही एग्रेशन ना शुरू कर दें जो कि अभी पिछले मैच में उन्होंने की है, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट
कि वो टॉप 4 की टीम्स और ऊपर पॉइंट्स जाने में कितनी और कोशिशें करती हैं, कितना ज़्यादा एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहती हैं। और सिमिलर साइड हैशटैग नंबर 2 से ऑनवर्ड जो कि टीम्स रहती हैं 3 to 4, उन्होंने हैशटैग नंबर 1 की भी जंग लेनी है, तो उनको भी पॉइंट्स की यहाँ पर से जो कि है वो दरकार लाजमी रहते हैं। इट ऑल कम्स डाउन कि आपने टिल द वेरिएंट एक अच्छा सर्वाइवल देना है, आपने मेक श्योर करना है आप यूटिलिटीज़ का एक बेहतरीन इस्तेमाल करें, आपके सामने जो कि टीम आती है उससे आप एक ऐसे एंगल पे, या मैं कहता हूँ कि ऐसे एक मरहले पे फाइट आप लें जहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस जो कि है उस टीम के खिलाफ फील हो रहा हो, एंड दैट विल बी द टाइम जहाँ पर आप उस टीम को बीट अप कर सकते हैं और अपना नाम जो कि है उस पोजीशन के ऊपर लेके आ सकते हैं। डेफिनेटली आप उसके ऊपर नाम लेके आ सकते हैं. दैट इज द केस ऑफ द डे. वी स्टिल हैव टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इट्स द 2 games left, Oryx. I am getting very excited for it. इंतजार नहीं हो रहा मेरा. मेरे तो बस ना चले, मैं इनको चुप पतीसी लॉबी से निकालता, चौथी लॉबी में फौरन भेजता कि गेट लेट्स स्टार्ट द गेम. हाइलाइट्स मिस कर, स्कोर कार्ड मिस कर, वो स्कोर कार्ड मिस कर रहे हैं. यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. वो एंड द पे बेस्ट देख टीम विल लेंगे। विन. तो वो सब सब खत्म करें, मेरे से इंतजार नहीं हो रहा. पर्सनली आई वांट टू सी दीस टीम्स इन एक्शन कि क्या बनता है. And the way they have been playing, Stars Zika back to back Booyah didn't turn the lobby on one side. That is the most impressive factor. कि 2 Booyah कोई निकाले 4-3 मैप्स के अंदर, that means कि यार वो बिल्कुल। पॉइंट्स में ऊपर जा चुके हैं. नहीं, with the Olympia performing, with the other team, I'm sorry, the Savages performing, they are right behind Star DZ. And the special fact is कि जो 5वें 66 नंबर पे जो टीम मौजूद है, they are also really close to the team जो इस टाइम पे सेकंड पेज पे मौजूद है. But here the wait is over. The finally जिसका इंतजार था, गेम 4 हमारे पास लाइव हो चुकी है जो पर्गेटरी के ऊपर खेली जाएगी. And let's dive into the action. प्लेन पाथ को देखें तो लंबर मिल की तरफ जाता हुआ नजर है मार्बल वर्क से, एंड बॉटम साइड काफी फेवर्ड है. बॉटम साइड अभी के लिए काफ़ी फेवरेट सदर्न साइड जो कि है वो रहती है, बट स्टिल स्टिल मॉड हाउस वहाँ पर जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है. अर्ली फाइट्स जो कि हैं वो भी हमें राइट ऑफ द बैट ही बनते हुए देखने को मिलती हैं. आँख वर्सेस टीम पुलिस एक काफ़ी क्लोज लाइन पे वो ड्रॉप इन ज़रूर करेंगी, पहले गन्स ढूंढेंगे, उसके बाद फाइट की तरफ जाना वो जो कि है पसंद ज़रूर करने वाली है. लेकिन सैवेजेस की अगर बात की जाए, सैवेजेस क्रैक अकेले खिलाड़ी, इज ही द लास्ट लोन गाय सर्वाइविंग जो कि इस मैच के अंदर ज्वाइन करते हैं. लेकिन नाप नाप एपीके आई थिंक ये नाम रहने वाला. आई एम नॉट इवन श्योर द नेम व्हाट इट इज, बट स्टिल शॉट्स दागने की कोशिश, डैमेज दे पाते हैं, लेकिन नॉक जो कि वो नहीं निकाल पाए. टीम पुलिस के साथ अपनी वापस एक रीग्रुपिंग ज़रूर की जाएगी. हीलिंग नहीं है, सो इस हीलिंग को भी मद्देनज़र रखते हुए सेफर एंगल जो कि एक मैं कहता हूँ डॉज करते हुए सारी बुलेट्स को आपको निकलना पड़ेगा. आपको एक मेक श्योर करना है कि आप अपने लिए पहले लूट का सिनेरियो वो कंप्लीट करें, उसके बाद फाइट की तरफ जो कि अपना रुख ज़रूर मोड़ते हुए नजर आए. लेकिन लतीफ़ जो कि टीम आइकन रहने वाली है, वो भी हमें अभी के लिए सर्कल से बाहर ज़रूर देखने को मिलती है. वो हार्ड एक ईस्टर्न एंगल पे ज़रूर जाते हैं, साउथ ईस्टर्न एंगल वाले आइलैंड के ऊपर, लेकिन उनके क्लोज में थी टीम स्टार का नाम जो कि था वो क्लोज लाइन पे था. और स्टार की तरफ जहाँ पर हम मूव करते ही हैं, आइकन के साथ वो फाइट ली भी जा रही है. नॉक एक निकाला भी जाता है आइकन की तरफ से, वो कंफर्मेशन में जाएगा एंड मेक श्योर करते हैं कि फर्स्ट ब्लड लतीफ़ के पास ही वो आए. एग्जैक्टली, फर्स्ट ब्लड उन्हीं के पास आए. टीम पीएल दोबारा फाइट के अंदर आ चुकी है. साथ साथ देखा जाए तो किल यहाँ पे नॉक भी कंफर्म कर लीजिए. किल कंफर्म करने में आगे नजर नहीं आते. पुलिस का स्क्वाड लेफ्ट एंड राइट मूव करता हुआ नजर आता है. विजेता को यहाँ पे स्पॉट किया जाता है, उनको नॉक कर दिया जाएगा. टीम पीएल दे हैव द एब्सोल्यूट एडवांटेज इन दिस फाइट विदाउट लूजिंग अ सिंगल प्लेयर. और यहाँ पे इनके पास कंफर्म टीम वाइप हो सकता है. वो अपनी किल कंफर्म करना चाहते हैं. शान की भी काफी कम रहने वाली है. इस लाबी पीछे से आ चुके हैं. एक प्लेयर नॉक होते हैं बट कंफर्म मसले की कोई बात नहीं, स्किल्स एलिमिनेट हो जाएंगे. वहीं पे आर के प्लेयर की भी एचपी काफी कम कर दी जाएगी. पुलिस के यहाँ पे क्लॉ उनको ढूंढना चाह रहे हैं ना. पपाक जो भी उनके पीछे आ चुके हैं. एंड फाइनली जहां पे फराज जो भी उनका नाम रहने वाला 5 राज, उनको भी नॉक डाउन कर दिया जाएगा. एंड नाउ दे हैव द 3 एलिमिनेशंस इन देयर बैकपैक. 1 प्लेयर इज लेफ्ट, उसको ढूंढने के लिए टीम जाएगी. बट ऑन द अदर साइड ऑफ द मैप, सॉरी, उसको भी ढूंढ लेंगे. एंड द टीम हैज बीन एलिमिनेटेड एट नंबर 15. कमिंग टू द अदर साइड, जीडब्ल्यू के साथ भी स्क्वाड मौजूद रहने वाला है. जीडब्ल्यू की लास्ट गेम अच्छी नहीं गई थी, दे गॉट एलिमिनेटेड. एंड नाउ दे आर द फाइट विद वन ऑफ द मोस्ट important team, the best team in the lobby up तक, Team Stars. It's not going to be an easy fight. They are 2-pack रहने वाले हैं. और look at that, आधे on the, अच्छा they are on the same. मुझे लगा था दोनों मुख्तलिफ टीम है, but Stars और 2-pack मुझे हमेशा कंफ्यूज कर जाता है. लास्ट टाइम भी मैं कंफ्यूज हुआ था कि Stars के वो प्लेयर मौजूद है, बट ये थोड़ा सा हमारे साथ लॉर मोमेंट करते हैं.
डेफिनेटली डेफिनेटली आज ही। बट राइट नाउ अगर बात की जाए टीम आइकन की, वो दोबारा से फाइट की तरफ जाना चाहते हैं। 9 है ABA के साथ, एक अच्छा नॉक जरूर निकाला जाएगा राइट ऑफ द बैट। वो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन जहां पर P90 का ये फाइट देने की कोशिश की जाती है, उनको टेक डाउन शट डाउन जरूर कर दिया जाएगा। सिमिलर साइड जावेद भी द नॉकडाउन जरूर होते हैं विद द फिनिशर। अब ZBL बॉला को जरूर आगे जाना पड़ेगा, लेकिन देखें आप एक अच्छा उजी का फायर नॉक निकालने में तो कामयाबी, रिवाइवल का हाथ वो भी लगा दिया जाता है अपने प्लेयर के पास। वापस टीम एक्सेस जो कि है वो अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हुई है। एलिमिनेशंस वो भी आ रहे हैं, एलिमिनेशंस पे एलिमिनेशंस जहाँ पर टीम एक्सेस इस वक्त के लिए सिक्योर करी है। सो फार दो कंफर्मेशन सिक्योर किए गए हैं। एक्सेस जिस एंगल पे रहती है ब्रासिला के एरिया में, वहाँ पर एक नहीं, इनके अलावा और भी कुछ टीमें क्लोज लाइन पे हमें देखने को मिल सकती हैं। जिस एंगल पे अमगर जा रहे हैं इस वक्त के लिए, डेफिनेटली टीम PL के आखिरी खिलाड़ी जो कि थे वो उसी एंगल पे हमें मूव भी करते हुए नजर आए थे। बट स्टिल देयर आर 14 डिफरेंट टीम्स। प्लेयर को गाड़ी से उतारा गया, काफी लो HP करते हैं, बिल्कुल शील्ड इनकी जरूर खड़ी होती है, लेकिन गिरा दिया जाएगा राइट विद दैट फायर। सीमो मेक श्योर करते हैं कि एक नॉक जरूर निकले, दूसरा नॉक एक डिफरेंट एंगल पे हमें NA9 ABA का जरूर निकलते हुए देखने को मिलता है, जो कि टीम स्टार्स की तरफ से निकाला जाता है। स्टार 2 पैक कोशिश कर रहे हैं कि टीम PTR के यहाँ पर प्लेयर को और मुश्किलात से 2-4 किया जाए। नॉक मिलता है, प्रेडेटर गेट्स एलिमिनेटेड एज वेल। देखते ही देखते एलिमिनेशंस टीम स्टार के भी 2 होते हुए। लास्ट मैच में भी टीम स्टार बहुत खूबसूरती के साथ अपने लिए अर्ली फ्लैग्स जनरेट करते हैं। इस दफा भी अर्ली फ्लैग्स के लिए टीम स्टार जो कि है वो आगे मूव कर रही है। बट नॉट जस्ट दैट, उनके आगे मूव करते हुए लेफ्ट राइट के अंदर भी बहुत ज़्यादा टीमें रहती हैं। पीछे INS, सामने N9, लेफ्ट साइड पे SVG का स्क्वाड रहता है। और देखते ही देखते इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। शॉट्स आ रही लेफ्ट एंड राइट, टीम स्टार नीड टू बी केयरफुल, GW नीड्स टू बी केयरफुल। उनको यहाँ पे बचना मुश्किल है। फिर ये ना स्टार्स के 2 पैक, आई एम गोइंग टू पर्सनली स्पॉन लाइक इनको लॉबी से मैं बाहर निकालूं, उन्हें कहूंगा अपना नाम चेंज करके आए। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है, बट जहां पे मैंने बातें टीम स्टार के लिए की थी जवानों, वो टीम GW के लिए देखें आप लोग। Yes. GW इज द वन इन ट्रबल, दे हैव 2 प्लेयर्स डाउन और आगे बढ़ना भी मुश्किल हो चुका है। दे इन द सेंटर, प्लेयर को स्पॉट करके शॉट सेंड करते हैं, लेकिन उनको नॉकडाउन नहीं कर पाते। स्किल का इस्तेमाल दोबारा किया जाएगा, बट 2 पैक के पीछे से शॉट्स आती हैं। ही वाज ऑलमोस्ट डाउन एंड आउट, एंड कंफर्म आता है यहाँ पे बाकी प्लेयर्स की तरफ से। बट ऑन द अदर साइड मेटा इन द मीनवाइल GW के बाकी प्लेयर्स को रिवाइव कर लेंगे, एंड दे कैन अवॉइड दिस फाइट एट ऑल टाइम। वो कहीं और आराम से जा सकते हैं। SVG दे आर लुकिंग सुपर गुड राइट नाउ। इनके सामने एक प्लेयर मौजूद है, 9 को नॉकडाउन कर दिया। ऑल किन कंफर्म कर ली जाएगी, 3 एलिमिनेशन उनके पास होगी, एंड यू आर राइट, दे मेक इट लुक वेरी वेरी इजी। Oh yeah, definitely. जिस तरह से ये फायर स्पीक पे दे रहे हैं, दे मेड इट लुक वेरी इजी कि कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, ख़वातीन हज़रात, ऐसा है नहीं। आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, एंड दीज गाइस आर अ मास्टर एट व्हाट दे शो। वो मास्टर रहने वाले हैं। लेकिन टीम RL इनकी बात अगर की जाए तो एक खिलाड़ी को गिरा ज़रूर दिया जाएगा। पीपो, एदर और समोसा के ऊपर सारे का सारा इस वक्त के लिए दारोमदार रहता है। ये 3 प्लेयर्स आगे जाना पड़ेगा इनको, बट PXL वो एलिमिनेशन की कगार पे थे, डैमेज उनको मिला। टीम GW भी देखते ही देखते वो फाइट के ऊपर रिवेंज लेने के लिए आते हैं, लेकिन देखते ही देखते 3 खिलाड़ियों को ख़त्म कर दिया जाता है। बट नाउ जहाँ पर आखिरी खिलाड़ी अब बच चुके हुए हैं, साइमॉक्स, इनकी अगर बात की जाए तो टीम SFT की तरफ से खेल रहे हैं। सर्कल के अंदर अभी भी इन्होंने एंट्री नहीं ली है, अंदर जाना है, सर्कल को पकड़ना पड़ेगा। सिमिलर साइड अगर प्लेयर्स की बात की जाए टीम स्टार्स की, 3 एलिमिनेशन इनके पास रहते हैं। सर्कल की एंट्री वो भी नहीं रहने वाली। NA9 की टीम इनके क्लोज लाइन पे थी, थोड़ा सा आगे की तरफ निकल जरूर जाते हैं, सेफर एंगल पे पहुंचे। किल फीड चलती है एरन की वर्सेस द टीम पुलिस का भी यहाँ पर से नाम जो किया वो किल फीड के अंदर हमें दर्ज होते हुए देखने को मिलता है। स्टार्स जहाँ पर 3 खिलाड़ियों के साथ अभी जिंदा सलामत है। चौथे प्लेयर यासर को इनको जाके रिवाइव देना पड़ेगा किसी ना किसी तरह से, एक वापस जो कि है प्लेयर को वो बुलाना है। बट मेटा GW के आखिरी खिलाड़ी वो बाहर निकलेंगे, हाथ में तवा पकड़ा हुआ है, पैन के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, गन निकालेंगे एंड फाइट के साथ एक अच्छा डैमेज देके आइकन का नाम इस लॉबी से खत्म करते हैं। और अब ये टीम अपना नाम शुमार कर लेती है टॉप 11 के प्लेयर्स में। GW अपने प्लेयर्स को इस दौरान रिवाइव भी प्रोवाइड कर जाएंगे, एंड दोबारा से कम बैक टीम GW के प्लेयर्स का जो कि अब हमें देखने को मिलने वाला है। एंट्री पहले सर्कल में जाएगी, उसके बाद कुछ और फाइट्स में भी हमें देखने को मिले।
डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। लुक एट द फाइट राइट नाउ, लुक एट द प्ले, यहाँ पे सिचुएशन टीम पुलिस के सामने आ चुकी टीम स्काई, दोनों के दोनों एक ब्रिज के साथ में डिवाइडेड यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या डैमेज होगा? बिल्कुल भी थोड़ा सा डैमेज नहीं डील कर पाते एक तरफ से, बट नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी फाइट। एरन राइट साइड से जाना जाता है, ब्लू वॉल टूट जाएगी, पुलिस के ऊपर यहाँ पे ग्रेनेड्स लॉन्चर्स भी यहाँ पे शॉट किए जाते हैं, क्लॉज के सामने आते हैं, ब्लू वॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, स्काई को स्पॉट किया जाता है, शॉट लैंड की जाएगी, स्काई को काफी एचपी खत्म करने की कोशिश की जाती है, एबिलिटी का इस्तेमाल करके भागना चाहते हैं, बट क्लॉ गोज डाउन। टीम पीएल आगे बढ़ना चाहिए, स्काई के प्ले को रॉक किया था, किल भी कंफर्म कर ली जाएगी। ही नीड्स टू बी केयरफुल कि दूसरे प्लेयर को स्पॉट कर सकते हैं, पुलिस के प्लेयर यहाँ पे भी स्पॉट कर लिए जाएंगे। दो प्लेयर्स पुलिस के नॉकडाउन हो चुके हैं, नापापक यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे किल कंफर्म करने की, बट वहीं पे काफी तक शॉट्स लैंड की जाएंगी। प्लेयर थोड़ा सा एम से बाहर चले जाते हैं, ब्लू वॉल का इस्तेमाल आता है, कैन ही टेक द वन लास्ट शॉट? ऑब्वियसली ही कैन टेक द वन लास्ट शॉट, एंड देखते ही देखते ब्लैक स्काई गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द गेम। टीम पुलिस काफी हद तक एलिमिनेशन के करीब आ चुकी थी, बट वो 1v1 जहां पे नापापाक जो भी इनका नाम रहने वाला है, तो कोई मुश्किल ही नाम ही रखा है, बट ही गॉट दैट 1v1 और अपनी टीम को डेफिनेटली बचाया है। सो ग्रेट कमबैक फ्रॉम द पुलिस साइड एज वेल, एंड अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस के जहां पे मुखालिफ टीम एलिमिनेट हो चुकी है, एंड दे हैव टू पुट देयर होप्स इन द लास्ट मैच। They have to put their hopes in the last match. So far, हमें 4 टीमों का नाम जो कि इस लॉबी से ख़त्म होते हुए देखने को मिल चुका है, लेकिन सर्कल की अगर बात की जाए, सर्कल जा रहा है टूवर्ड द ब्रसीला साइड, एंड दिस वन, ये सर्कल का जो कि शिफ्ट होगा, वो मुझे फील आ रही है, गट फीलिंग आ रही है कि ईस्टर्न साइड पे जाने वाला है। ब्रसीला के एरिया में हमें टीम CA और टीम सैवेजेस का नाम जो कि है वो ज़रूर देखने को मिलता है। सैवेजेस सो फार 3 एलिमिनेशन इनके पास रहते हैं, चारों के चारों खिलाड़ी जिंदा सलामत रहेंगे। जिस घर के पास जा रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी प्लेयर्स ने अपना बसेरा बनाया हुआ है, ग्रेनेड थ्रोएबल्स का इस्तेमाल वो ज़रूर रहने वाला है। क्रैक एक अगर नॉक निकाल लें तो काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मरहले को क्रैक अपने फेवर में ज़रूर किया जा सकता है। योर कोशिश कर रहे हैं कुछ शॉट्स दागने की, एंड देयर वी गो विद द स्नाइपर, ही गेट्स वन डाउन, एक गिराया जाता है दूसरे खिलाड़ी को वहाँ पर, इससे पहले कि वो शॉट दागें प्लेयर वापस से खड़े होते हैं, वापस से जिंदा सलामत होते हैं। पुलिस इन द मीनवाइल इस्लाम नीमो को रिवाइव जरूर दे जाएंगे। डोमिनिक्स वो आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट भी यहाँ पर रहेंगे। एबिलिटीज़ का इस्तेमाल, प्लेयर की पोजीशन वो रिवील आउट कर दी जा चुकी है। क्लोज लाइन पे अब इकट्ठा जाना है, इकट्ठे आगे पुश करना है, अकेले जाएंगे एलिमिनेशन का चांस ज़्यादा रहेगा। स्टार्स अहमद इन द मीनवाइल किल फीड के अंदर अपना नाम जुड़ते हुए टीम पुलिस के लिए मुश्किलात इधर खड़ी की जा रही है। नॉक एंड फिनिशर्स डायरेक्टली बैक टू बैक किए जा रहे हैं, आ रही हैं। इरियर वो भी बाहर अभी रहेंगे, हाथ में स्नाइपर अभी भी है, कवर देने के लिए स्नाइपर इस्तेमाल करें। एक अगर अच्छा नॉक निकल आया, बकाया टीम सैवेजेस आसानी से मैं कहता हूँ कि एक एग्रेशन दिखा सकती है, आराम से दिखा सकती है, बट इट इज नॉट एन इजी जॉब। वी स्टिल हैव 10 टीम्स अलाइव। सर्कल के अंदर अभी भी बहुत बड़ा क्लस्टर मौजूद है, तो वो देखना पड़ेगा ये कौन सी टीम लेके जाएगी। ब्रासीलिया इज गोइंग टू बी द मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द टीम जो कि ईस्ट से, वेस्ट से और साउथ से आ रही हैं। टीम स्टार्स, टीम हमारे पास INS, टीम एरिन का स्क्वाड, पुलिस का स्क्वाड बात है, टीम स्काई। जो ये स्क्वाड्स है इन्होंने ब्रासीलिया की तरफ ही आना है। दे थिंक ब्रासीलिया के ऊपर क्लोज होगा, एंड देयर वी गो। GW के स्क्वाड भी उड़ता उड़ता वहीं की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी दैट SUG दे हैव टू डिफेंड दिस पोजीशन। सामने प्लेयर्स रहने वाले हैं, शॉट्स लैंड की जा रही लेफ्ट एंड राइट। It will matter how good of a defensive team they are, कितना डिफेंड कर पाएंगे। यहाँ पे इनका बचना भी मुश्किल हो सकता है। टीम है निचले वाले फ्लोर पे भी आराम से आ सकती है। एट द सेम टाइम ग्रेट वॉल का स्क्वाड ज़्यादा ग्रेट वॉल नहीं रह सकता और एलिमिनेट हो जाएगी। क्रैक भी यहाँ पे पीक लेना चाहते हैं, शॉट लैंड करते हैं, कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते और वापस कवर के अंदर चले जाएंगे। इनके राइट पे भी टीम, इनके लेफ्ट पे भी टीम, इनके सामने पीछे ऊपर नीचे सब कोई ना कोई मौजूद है। सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट SUG, but they are definitely a team who can defend this position. All they have to do is defend, and it's a team that can definitely defend. तो I think ये बुया लेके जा सकते हैं, and जो बुया ये डिजर्व भी करते हैं, because इससे ज्यादा करीब बुया की कोई टीम इतनी दफा नहीं आई। आप डिफिकल्ट की बात कर रहे हैं आरजी, जिस तरह आपने समा बताया, मैं तो कहता हूँ एक डिजास्टरस सिचुएशन ये डेफिनेटली रहने वाली है। हर जगह प्लेयर्स, हर कोने पे आपको एक जो कि नाम है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन चैम्प लियो, उनके हाथ में एक खूबसूरत गन्स जो कि हमें देखने को मिलती हैं, अपग्रेडेड इनफैक्ट ये गन्स रहती हैं। कुछ एक्स्ट्रा डैमेज उसमें ज़रूर आएगा, बट वैन वो आगे जाना चाहते हैं प्लेयर को दोबारा से एक पीक फायर के साथ में भी नॉक करते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन नहीं, कटाना निकालेंगे,
स्पीड अपनी तेज़ की जाएगी सर्कल के अंदर, जो कि एक सेफर एंगल अभी के लिए तो बनाया हुआ है, लेकिन टीम स्टार वो आगे बढ़ना चाहती है। सर्कल से बाहर है, डैमेज इनटेक अपने लिए कर रहे हैं, बाहर जाएंगे, ग्लू वॉल का इस्तेमाल, हील पहले करना है पुलिस के साथ एक फाइट के अंदर, उसके बाद जाना है। हील कर ली गई है, गन निकालनी पड़ेगी, लेकिन एक अच्छा कवर ग्लू वॉल का बनते हुए गन चेंज करेंगे, प्लेयर को नॉक किया जाएगा और नीमो को यहाँ पर से निकलने भी नहीं अब दिया जाने वाला। रिवाइवल का हाथ वो लगाया जाता है, लेकिन इस दौरान स्टार के यासिर उनको नॉकआउट विद द ग्रेनेड जरूर मिलेगा। सिमिलर साइड टीम स्टार के किंग, उनको भी खात्मा यहाँ पर से कर दिया जाता है। देखते ही देखते आई थिंक इट्स ओवर फॉर द टीम स्टार एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। टीम पुलिस अपने नाम यहाँ पर 12 एलिमिनेशंस लेके जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। स्टार्स का भी नाम इस जगह से खत्म हो चुका है, नीमो को भी वापस से बुला जरूर लिया जाएगा। सिमिलर साइड इस्लाम, क्या वो उस जगह पर रिवाइव किए जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। सिमिलर साइड टीम स्टार के एक अकेले प्लेयर एक अलाइव रहते हैं, दे आर स्टिल अलाइव एंड आई डोंट नो इफ दैट्स जीडब्ल्यू यहाँ पे टीम स्टार, क्योंकि टीम स्टार हमें जीडब्ल्यू में भी देखने को मिल रही थी, जीडब्ल्यू में भी हमें टीम स्टार का जो कि झलकी थी वो ज़रूर आती है, लेकिन रोज़ की तरफ से स्नाइपर्स के शॉट्स दागने की कोशिश, लगता कोई भी शॉट नहीं है। प्लेयर वापस घर के अंदर जाएंगे, एक लोअर बॉटम कंपाउंड जो कि वो पकड़ने की कोशिश, लेकिन किल फीड चलेगी। स्टार डीजी एलिमिनेट कर दिए गए हैं। नाउ जहां पर 8 और टीमें, आप सिर्फ क्लस्टर देखें, आप मिनी मैप देखें आरजी के, किस तरह से ये 8 की 8 टीमें एक दूसरे के आसपास समाई हैं। डेफिनेटली एक बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पे टीम्स यहाँ पे संभाला जाती है, बट लुक एट दैट, पुलिस के स्क्वाड के सामने यहाँ पे प्लेयर्स आ चुके हैं, शॉट्स एंड की जा रही हैं, लेकिन वहीं पे एक यहाँ पे लॉन्चर आता है जो पुलिस के नीमो को भी नॉकडाउन किया। अब यहाँ पे नापाक मौजूद रह चुके, किले पे सर्वाइव करते आगे बढ़ना पड़ेगा, देखते हुए कैसे कर पाते हैं। सामने बहुत बड़ी दीवार खड़ी है और वहां पे और प्लेयर का नाम स्पॉट शॉट एंड की जाएंगी, Oh my लेकिन नहीं God. बच पाते। जंप शॉट मारना चाहते हैं बट हवा में ही क्रैक उनको एलिमिनेट कर देंगे। एंड एसवीजी दे आर द विनर्स इन दिस फाइट। हमने पहले भी कहा था एसवीजी के साथ मुश्किल हो जाएगा, आराम से फाइट नहीं ले सकते, आईएनएस का स्क्वाड भी एलिमिनेट हो जाएगा। सामने के सामने टीम शिफ्ट का स्क्वाड मौजूद है। अब एसवीजी के लिए मसला है ये जगह से निकल के सर्कल के अंदर जाना, एंड दे हैव टू क्रॉस मल्टीपल कॉम्पाउंड्स। 2 टीमें लेफ्ट में मौजूद हैं, उनसे फाइट लेनी पड़ेगी, बट एसवीजी they need to move really quickly because circle will be pushing in a really short span of time and they will be the second one to get hit. इनके जो लेफ्ट साइड पे टीम रहने वाली है वो पहले हिट होगी, they can get eliminated from that। वो इसके सामने प्लेयर्स बाहर निकले, शॉट्स लैंड की जा रही है, can they get eliminated, लेकिन नहीं, शॉट्स नहीं लैंड कर पाएंगे। फर्स्ट एड किट लगाएंगे and now they have to move into the circle by themselves और अब ये जगह इनको छोड़नी पड़ेगी। ब्रासीलिया के मैप के वो सर्कल के अंदर यहाँ पे एक स्क्वाड ऑलरेडी मौजूद है एंड दिस स्क्वाड, इसका सबसे ज्यादा चांस रहता है बूया लेने का। दैट्स गोइंग टू बी आरएल। एक प्लेयर बाहर की तरफ आते हैं, शॉट्स लैंड करना चाहते हैं, नेक्स्ट एचपी कम होती है, स्किल का इस्तेमाल करके वहां से बाहर निकल। डोमिनिक्स भी आगे तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक छोटा सा कंपाउंड ऑक्यूपाई कर लिया बट ही इज ट्राइंग टू गो ऑन द अपर फ्लोर ताकि वहां से क्लियर एम ले ले। नीड्स टू बी केयरफुल, अगर यहां से एलिमिनेट हो गए इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 ही टीमें बच चुकी हुई हैं। कॉन्स्टेंटली फाइट यहाँ पर तो चलते हुए देखने को मिलेंगी। साइमन अपने लिए एक और एलिमिनेशन निकालते हुए किल के एहदाद पे एहदाद जरूर लेके जा रहे हैं। टीम सैवेजेस, उनको भी आगे जाना है, सर्कल से बाहर जो कि टीम रहती है उनके साथ फाइट की जा सकती है। ट्रिपल किल आरएल के हैदर अपने नाम लेके जाएंगे। टीम द लीडर वो भी कुछ एलिमिनेशंस लेके जा रहे हैं, बट सो फार सिर्फ और सिर्फ 2 ही टीमों के ऊपर सारा का सारा मरहला यहाँ पर से बन चुका है। वन इस टीम सैवेज, दूसरी जो कि रहने वाली है वो टीम, हमें टीम आरएल का नाम जो कि है वो ज़रूर देखने को मिलता है। साइमॉक्स, उनकी तरफ से एक अच्छा नॉक जरूर निकाला जाएगा एरोज के ऊपर। एरोज फॉरन रिवाइव अपने आप को जरूर कर लेंगे। डोमिनिक्स वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एरोज दोबारा से नॉकआउट जरूर रहने वाले हैं। एंड बैक टू बैक आरएल टीम सैवेजेस के ऊपर बेहतरीन कहर जो कि है वो तारीख कर रहे हैं। फाइट इस वक्त के लिए 2v2 रहती है, कंप्लीट दोनों साइड से एक इक्विलिब्रियम है। क्वाड्रा किल टीम आरएल के खिलाड़ी के ऊपर आते हुए कुछ डैमेज शॉट्स ताके गए हैं विद द यूटिलिटीज का एक और जो कि मरहला था वो गया, प्लेयर को लो ने एचपी किया और ये आगे जाके ये एलिमिनेशन आ चुका हुआ है, नॉक मिल चुका हुआ है प्लेयर को। तवे से एलिमिनेशन करेंगे, नेक्स्ट के पास ये एलिमिनेशन आएगा राइट नाउ विद द फाइनल एलिमिनेशन। किल किया जाता है, इट्स अ किलिंग स्प्रे। टीम बहुत खूबसूरती से सैवेजेस इस मैच का बूया अपने नाम जोड़ते हुए। He had it coming. I would say कि कोई it sounds like a bad thing, but it's definitely a good thing. Savages, they were a team that definitely deserved it. I cannot think of a team जो इनसे ज़्यादा deserve करती है। Back to back बूया जब निकाला था Star Easy, they were right behind them. तीसरे मैप पे भी आए न से जब बूया निकाला, they were the second last team to get eliminated, and they were like right next to Booyah, and it felt like it was in their reach. It was just an extra step, और Savage ने वो ही किया था। And you look at the team and you go like, ये वो team है
जो ये प्लेटफॉर्म तो है ही है, बट दे डिजर्व टू गो अहेड। there's a close competition, then there's a team जो आपको पता है यहाँ पे इससे ज्यादा जगह, बेहतर जगह डिजर्व करती है। Savages is one of, definitely one of them, and they might बिल्कुल not just stop at my bad, stop at monthly qualifiers. They will definitely, most probably, go into the playoffs as well. And if they're very lucky, if they're very lucky and they're very consistent in their skill as well, we can see them in the grand finals as well. So ये तो देखना पड़ेगा. But oh Savages, yes the way they have been playing, it looks like a team with utmost strategy, with utmost persistence in their skill, and we see that कि ये team आपको as a unit नजर आती है. They have a strategy. हमने यहाँ से ये करना है, हमने X से Y जाना है, Y से Z जाना है, and these are the yeah steps we have to do while we're traveling from A to B. And the way इन्होंने circle के अंदर push किया है as a team, बड़ा अच्छा लगा. The way उन्होंने compounds को occupy किया, एक फ्लोर, टॉप वाले फ्लोर पे भी जाके, वो भी एक अच्छी बात थी. और कहीं अननेसेसरी फाइट में कोई बाहर निकल के नहीं ली गई थी. एंड समवॉट इन्होंने कुछ किल्स को अपने सामने से जाते हुए भी दिख दिया था कि ओ, yeah these are the kills जो हमारे सामने से जा रही हैं, let them go, because the major point of interest हमारे लिए, major priority, the goal, the destination, whatever you call it, it is Booyah, और वो ले गए हैं. So I feel like मैं थोड़ा सा ना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि everything is right in the world because Savages got Booyah. और डेफिनेटली सैवेजेस ये जो कि बूया सिक्योर करते हैं एक बहुत खूबसूरती के साथ, मैं कहता हूँ एलिमिनेशंस के साथ, और बूया के जो कि पॉइंट्स हैं वो इनको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। एक अच्छा जंप जो कि है वो पॉइंट्स टेबल के अंदर अपना अब ज़रूर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इवन पॉइंट्स टेबल की भी थ्रू आउट द बात की जाए तो हम देख रहे थे कि 23 लाइक पॉइंट्स का जो कि मरहला रहता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट अभी के लिए रहती है। इस बूया के साथ थोड़ा सा और वो मोमेंटम जो कि है बार का वो हायर सेट कर दिया जा चुका हुआ है। प्लेयर्स के पास अब थोड़ा सा एक आखिरी मैच जो कि रह चुका हुआ है उसको अच्छे से खेलने की अब जो कि एक आज से थिंकिंग रह जाती है वो आ जाती है। मेजॉरिटी टीम्स को एक मोटिवेशन का जो कि फैक्टर है वो इस बूया के बाद सैवेजेस के पास भी आया कि अपने लिए और अच्छे दांत लेके जाएं, आखिरी मैच भी करें। एंड सिमिलरली उन टीम्स के लिए जिन्होंने अपना वो पायदान गवाया होगा इनके बूया की वजह से, वो भी वापस से अपना वो पायदान, अपनी पोजीशन सिक्योर करने की कोशिश में रहेंगे। डेफिनेटली वो दोबारा से ये पायदान लेना चाहते हैं. बट वी आर एट द लास्ट ऑफ टॉरिक्स, वी आर डन विद द 4 games of the day, and after the last game we will have our winners and our qualifiers जो कि monthly finals खेलेंगे Q2. That is going to be our major question. A lot of the teams that have the potential, बल्कि लास्ट गेम से पहले हर टीम के पास पोटेंशियल था, अब वो पोटेंशियल खत्म होता हुआ नजर आएगा. ऑब्वियसली विल हैव आई थिंक 3 to 4 टीम, एटलीस्ट 2 teams तो मैं कंफर्म है कि जो शायद ना आगे जाए, मे बी 3 teams एज वेल. तो वी हैव टू सी कि वो कौन सी टीम है. नो मैटर व्हाट दे डू इन द लास्ट गेम, दे विल नॉट क्वालिफाई unless के कुछ मैं कहता हूँ miraculous हो जाए. They get the booyah with more Oh than yeah. like at lows like more than 24-25 points, maybe they will turn things around. But in all हमें वो देखना पड़ेगा. But जो ज्यादा स्टोरी अच्छी बनती है कि वो कौन सी टीमें हैं जो इस टाइम पे क्वालिफाइंग पोजीशंस के लिए लड़ रही हैं. 7th 6th 7th 8th के लिए इस टाइम पे कौन सी पोजीशंस मौजूद है, कितना करीबी डिफरेंस रहता है. एंड द थर्ड मेजर क्वेश्चन वुड बी टॉरिक्स कि who is going to be the champion? Is it going to be Savages? Is it going to be Stars DZ? Is it going to be Olympia? ये वो 3 टीमें हैं जो कंसिस्टेंटली करीब आ रही हैं एक दूसरे के. With Savages getting Booyah, they definitely have closed the lead on Star DZ, and it will come down to the last game कि आज के दिन का चैंपियन कौन बनेगा. हाँ बिल्कुल, ये आखिरी मैच जो कि है वो सारा सारा फैक्टर जो कि है वो डिसाइड करने वाला है कि स्टार डीजी यहाँ तो अपने लिए इस मैचेस का लाइक चैंपियंस लेके जाएंगे या फिर वो सैवेजेस का नाम रहता है। लेकिन आपको अभी के लिए लेके चलते हैं हम इस मैच के हाइलाइट्स की तरफ, और वो कुछ खूबसूरत मोमेंट्स है जो कि थ्रू आउट द गेम कैप्चर हुए, उनको दोबारा से एक नज़र जो कि है दौड़ाई जाती है। स्टार्टिंग में टीम पुलिस एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट जो कि था वो दिखाती है। टीम एक्सेस की तरफ से भी एक अच्छी एंगेजमेंट दिखाई गई थी हमें, जहां पर से ज़बोला जो कि थे वो कोशिशों में कामयाबी हासिल करके जाते हैं, एलिमिनेशन निकाली जाती हैं। आयनस थ्रू द एंड इस मैच के अंदर एज सच इतना अच्छा नहीं खेल पाए थे, लाइक दे प्लेड इन द लास्ट वन, बट नॉनदलेस टीम सैवेजेस उनका स्टार्टिंग से जो कि एग्रेशन था वो टिल द वेरी एंड जाता है। टीम आरएल का भी एक एग्रेशन जो कि था वो टिल द वेरी एंड हमें देखने को मिला, बिकॉज दे वर द वंस जो कि हैशटैग नंबर 2 पे हमें टीम ख़त्म होते हुए देखने को मिली। बट जहाँ पर 8 मिनट का मरहला ख़त्म होता है, 4 टीमें जो कि हैं वो दम तोड़ चुकी होती हैं, लॉबी की तरफ वापस भेज दी जा चुकी हैं। 9वें मिनट 10वें मिनट पे हमें 11
से ऑलमोस्ट लाइक 9 टीमों पे जो कि तब्दीली है वो देखने को मिलती है, लेकिन ये 9 टीमें जिस वक्त बच जाती है ना आरजी ब्रसिला के एरिया पे, तब जाके पूरा भसड़ मच जाता है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 की 8 टीमें बिल्कुल क्लोज लाइन पे आपस में फाइट कर रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि चल क्या रहा है। एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, बट इन दी एंड SVG वाज एबल टू फिगर इट आउट कि क्या चल रहा है। RL दे प्लेड इट परफेक्टली। RL वाज द वन जो कि सर्कल के अंदर मौजूद थी। RL वाज द वन जिनके पास मोस्ट एडवांटेज था गेम के अंदर, बट समवट SVG केम फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल, बैटल द जो सर्कल के बाहर वाली टीमें थी, देन मेड देयर वे इनटू द सर्कल एंड देन टुक द फाइट एंड वन। लेकिन हम देखेंगे स्कोर कार्ड के RL ने कितने इसको पॉइंट्स लगे गए हैं, SVG कितने पॉइंट्स लगे गए हैं, and most importantly Star DZ. And look at that, we have three teams that we mentioned: Olympia, Star DZ and Savages at top 4. And this is impressive always कि हमेशा ये तीन टीमें जगह कहीं ना कहीं बना जाती है। ओलंपिया 18 पॉइंट, 17 पे रेबल्स का नाम देखने को मिलता है, लेकिन स्टार डीजी वो भी इस मैच के अंदर 13 पॉइंट्स जो कि हैं वो ज़रूर लेके गए हैं। सो स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सैवेजेस को अभी के लिए ऊपर नहीं आने दिया जा रहा, वो अभी भी हैशटैग नंबर 3 या मे बी हैशटैग नंबर 2 पे रिजाइड करने वाले। लेकिन कंप्लीटली बॉटम लाइन से अगर रैंकिंग्स देखी जाए, फैंटास्टिक फोर, आर्क टीम, प्रेडेटर, जीजी एक भी पॉइंट नहीं लेके जा पाते। एक एक पॉइंट ब्लैक पीपी आइकन के पास आता है, ग्रेट वॉल 5 पॉइंट्स, एक शूटर 7 पॉइंट्स, INS 10 पॉइंट्स, शिफ्ट के पास जो किया वो 11 पॉइंट्स रहने वाले हैं। सिमिलर साइड NA9 उनके पास 12 पॉइंट्स, द लीडर भी 12 पॉइंट्स, 13 पे स्टार डीजी, रेबल 17, 18 पे हमें एक और नाम जो कि था वो आता है। लेकिन ओवरऑल फाइनली ओवरऑल हमारी स्क्रीन के सामने आते हुए स्टार डीजी 77 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल अभी भी रहने वाले हैं, जिसमें से किल पॉइंट के तादाद इनके 46 रहते हैं। सैवेजेस उनके फौरन पीछे 6 पॉइंट्स कम, 37 एलिमिनेशन पॉइंट्स और 71 टोटल पॉइंट्स के साथ जो कि है हैशटैग नंबर 2 की पोजीशन सिक्योर कर चुके हैं। ओलंपिया को धक्का एक थोड़ा सा मारा गया है पीछे हैशटैग नंबर 3 पे, तो आरजी आई डोंट थिंक सो कि ओलंपिया सीरीज को एक हल्के में लेना चाहेगी और अगला मैच हमें मे बी इवन ओलंपिया का एक कमबैक देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली 4 गेम्स हो चुके हैं, तीनों टीमें डिसाइड नहीं कर पा रही who's the better one, but at the same time look at the close competition that we were discussing, खास तौर में शिफ्ट, रेबल्स एंड 9, एंड ये तीन टीमें तो एक एक पॉइंट के साथ खेल रही हैं। एक्स शूटर, ब्लैक पीपी, फैंटास्टिक फोर, ये वो टीमें हैं जो बहुत चांस रखती क्वालिफाई करने का। All of these teams have the chance to qualify and not to qualify as well. The leaders थोड़े से comfortable position में, but they're not exactly very safe unless दो टीमें नीचे से उठ के 10-10 पॉइंट भी ले जाती हैं, and the leaders gets eliminated. And same is the case for Yeah. INS and Great Wall. Great Wall comfortably थोड़े ज़्यादा safer position में है, INS the leaders थोड़े से risky position में, Shift तो बहुत बहुत risky position में मौजूद है, so they definitely need a good game. Arc team, हाँ, अब इनकी बात आती है, can they qualify or not? For now, 12 पॉइंट का बूया अगर हम कहें 11 के अंदर, that's 23 points. Then we add 10 to 15 elimination. Then there's a slight chance of them qualifying if not another team, कोई और टीम परफॉर्म नहीं करती. That is one concern. But it is still very very difficult कि और टीम परफॉर्म नहीं करती. कोई भी और टीम लेती 6 पॉइंट ले जाती, they will be qualifying ahead of you, so it's very very difficult for you. But other than the teams जो नीचे रहने वाली हैं, हमारे पास 5 से 6 टीमें जो इस टाइम पे बहुत एक शेकी स्पॉट पे मौजूद हैं. All of them can qualify and all of them cannot qualify at the same time. So all of them have to battle in the last game. And let's not wait कि वो कौन सी टीम करेगी या नहीं करेगी, इसको हम डिस्कस करेंगे आखिर में, because we have the game live and we'll get our answers real soon. We will get our answers real soon। और आखिरी मैदान बरमूडा का स्टार्ट होते हुए प्लेन लाइन मिड से बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे मरहले को एंड शिपयार्ड की तरफ ज़रूर की जा रही है, लेकिन टीम्स का जो कि डिस्पर्शन है वो मास इलेक्ट्रिक की तरफ हमें देखने को मिलता है। सिमिलर साइड एक वेस्टर्न एंगल जो कि हैंगर का रहता है, वहाँ पर भी टीम्स का क्लस्टर ज़रूर बनने वाला है। बट अर्ली फाइट्स कहाँ पर और कितनी जल्दी होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि थ्रू आउट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस और PTR का नाम जो कि है वो एक दूसरे के क्लोज लाइन शाना बशाना देखने को मिलता है, जो कि फाइट के अंदर इंडल्जमेंट अपनी दिखा सकते हैं। मास इलेक्ट्रिक जगह की बात की जाए, द टीम दैट वाज देयर जोजो की, वो फाइट में नहीं जाना चाहती, उनके क्लोज लाइन पे भी कोई प्लेयर नहीं रहने वाला। टीम TL इनकी भी सिमिलर साइड बात की जाए तो कोई भी इंगेजमेंट अभी तक के लिए नहीं आती, बट द फाइट हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड। फाइट जो कि है वो स्टार्ट कर दी जाती हैं। NK JRSS टीम पुलिस के साथ ये फाइट के जो कि है मुब्तला की जाती हैं नियर द हैंगर साइड। हमने मिनी मैप के अंदर सैटेलाइट व्यू से ज़रूर देखा था कि पुलिस की टीम
दे वर गोइंग फॉर द फाइट। पुलिस ने एक रिटेलिएशन जो किया वो करने की भी कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन F4 इस दौरान अपने नाम एक एलिमिनेशन लेके जाने में कामयाब हो चुके हैं। सैवेजेस बिल्कुल सामने रहते हैं। साइमो इनके पास चांस रहेगा कि ये M16A4 को एक खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करके प्लेयर को नॉकडाउन एटलीस्ट निकालें, लेकिन नेक्स्ट उनके बिल्कुल मुंह के आगे ग्लू वॉल ज़रूर पुट ऑफ कर दी जाएगी। दोबारा से ग्रेनेड लॉन्चर्स थोड़े से इस्तेमाल किए जाते हैं प्लेयर को गिराने के चक्कर में, लेकिन कोई भी प्लेयर वहाँ पर से गिरने नहीं वाला, डैमेज भी नहीं लगता। ट्रक के ऊपर चढ़ना चाह ज़रूर रहे हैं, लेकिन पोजीशन आई डोंट थिंक सो इनको अलाउ करेगी। अगर ये चढ़ने की कोशिश करेंगे इस ग्लू वॉल के ऊपर तो डेफिनेट इनको नॉकआउट जो किया वो मिल सकता है, बट नहीं, ये ऊपर चढ़ जाएंगे एक ट्रक के एंड कवर जहाँ पर से मिला है बैक साइड से कंफर्मेशन आ सकती है नेक्स्ट के ऊपर, लेकिन एक खिलाड़ी को नॉक निकालने में कामयाब। 4 HP बच चुके हैं, 5 HP ये हो जाएंगे, लेकिन एक ही झटके में नॉकआउट आएगा। टीम सैवेजेस अर्ली स्टेज पे एलिमिनेट होते हुए आरसी एंड नहीं होना चाहते। अगर ये एलिमिनेट हुए तो आगे उठ के नहीं आ पाएंगे। एग्जैक्टली आगे उठ के आया बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे, बट F4 दे आर ऑलमोस्ट इनटू द गुड पार्ट ऑफ द मैप। दे हैव गॉट 3 एलिमिनेशंस और यहाँ से आगे बढ़ते नजर आए, एसवीजी उड़ते हुए नजर आएंगी एंड टीम स्टार्स के प्लेयर यहाँ पे फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो स्टार्स के प्लेयर के बाद 2 एलिमिनेशन हो चुकी है। प्लेयर्स को चेस भी किया जा रहा है कि प्लेयर वो जो भागते एक बिल्कुल कोशिश की जा रही है। ही ट्राई टू हैव अ हाई ग्राउंड, अनफॉर्चुनेटली एक प्लेयर को नॉक कर पाते हैं, दूसरे प्लेयर का कुछ भी खर्च नहीं कर पाएंगे। प्लेयर उनके सामने अब थोड़ा चक्कर काट रहे हैं और कोशिश करेंगे मैं ज़्यादा चक्कर काटूं तो मेरे ख्याल में स्टार के यासर को चक्कर आ जाए और मुझे छोड़ देंगे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। अनफॉर्चुनेटली आर के प्लेयर ने वहां जाके दूर अपने प्लेयर्स को रिवाइव भी कर लिया है, सो दे आर बैक टू 4 मैन, but obviously they had to use the revival for that access on the other side. They are in the center of a big fight. यहाँ पे multiple teams इनके left and right मौजूद है, एक elimination को मिल चुकी है। Still they have to make sure कि INS के सामने मौजूद है squad that is a very good squad. Definitely हमने इनका Booyah भी देखा है, it's not a powerful squad to be messed with and we can see that INS की kills भी नजर आ रही है जहाँ पे वो shots भी land करते हुए नजर आते हैं। एरिन के स्काई के एरिन यहाँ पे स्टार्स के प्लेयर को नॉक करते हैं, takes a bit of a damage as well, utility का इस्तेमाल करते हैं, can it get damage as well, वहीं पे utility के लिए वो लोग skill इस्तेमाल करते हैं, but Aaron you need to be careful, you don't have a lot of HP to play with। आगे बढ़ना चाहते हैं और खुद skill का इस्तेमाल करके बाहर निकल आएंगे, बस स्टार के अहमद उनको चेस करना चाहते हैं। जंप शॉट मारना चाहिए, ब्लू वॉल लगा दी जाएगी, दोबारा ब्लू वॉल लगा दी जाएगी, can he take him down as well, लेकिन अहमद को पता था उनके पास huge advantage है, that is why वो ये गए थे। बट एरिन के स्काई के एरिन ने ये फाइट बहुत बाहर जाके ली थी, आर्मर के ऊपर मोर के ऊपर शॉट्स लैंड होते हैं, वो भी नॉकडाउन हो चुके एंड देखते ही देखते स्काई ने ये फाइट आराम सुकून से अपने हाथों से दे दी है, जबकि दे वो द वन इन एडवांटेज एंड नाउ स्टार हैज 4 प्लेयर्स अलाइव, सो 2v4 यहाँ पे कंटेनर के अंदर बचे हुए वॉल यहाँ पे क्रिएट की है, वॉल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है एंड सडनली यहाँ पे आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा जो आखिर में छुप के बैठे हुए ढूंढ लिया गया है। पीक अप बू एंड नाउ ही इज डाउन, वन प्लेयर लीविंग बिहाइंड, उसको स्पॉट कर लेंगे and slowly and steadily he will be out of the game as well. Black Sky will be the second team to get eliminated and Stars का squad ये फाइट दोबारा जीत जाता है। स्टार्स का स्क्वाड ये फाइट दोबारा से जीतते हुए देखने को मिल जाएगा। टीम एक्सेस भी इस दौरान अपने 2 एलिमिनेशन निकालने में कामयाब आए, इसके ऊपर ये तीसरा इदाद निकाला जाएगा, लेकिन पोजीशन इतनी अच्छी आई स्टिल थिंक नहीं रहने वाली। सर्कल से एक कॉर्नर ही है इनके पास, अगला स्टेज जो कि होगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात के अंदर इनको तो खेलते हुए नजर आएगा। इनके इवन एक प्लेयर जो कि रहने वाले हैं वो भी सर्कल से बाहर ही हमें देखने को मिल रहे हैं। INS इनकी पोजीशन की बात की जाए टीम आर के पास तो ज़रूर रहती है, लेकिन फाइट्स किस दौरान और किस जगह पे हमें बनते हुए देखने को मिलेंगी, सबसे बड़ा ये सवाल ही रहता है। INS के एक खिलाड़ी यूरी को इनफैक्ट जो कि है वो गिराया जाता है, मेक श्योर किया जाता है कि मिमॉक्स इसको कंफर्मेशन की तरफ ज़रूर लेके जाएं। वजीटा भी आगे बढ़ना चाहते हैं, सर्कल से बाहर हैं, डैमेज जो कि है वो इनटेक कर रहे हैं सर्कल का 3 एलिमिनेशन के साथ। एक्सेस वो आगे बढ़ना चाहती है, आर्क का स्क्वाड बिल्कुल उनके सामने रहेगा, सर्कल से ये बाहर हैं अकेले खिलाड़ी, लेकिन INS बकाया प्लेयर्स जो कि 2 बच चुके हैं, हार्ड और फ्रेड ये आगे बढ़ेंगे, सर्कल के अंदर जाने की कोशिश जो कि है इनकी भरपूर रहने वाली है। इवन अमगर वो सर्कल से बाहर एंड अभी कुछ देर पहले बात भी ये चली थी कि अमगर की जो कि पोजीशन थी वो कंप्लीट एक वेस्टर्न एंगल जो कि था वो उनके पास रहने वाला था, लेकिन ये एक अच्छा जंप एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डायरेक्ट इन द सर्कल जा ज़रूर सकते हैं, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। सर्कल के अंदर जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन सर्कल में जाते ही अगर कोई प्लेयर ने इनको स्पॉट डाउन कर लिया, कोई प्लेयर के सामने ये उतर गए
तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ट्रिपल किल लुमी के पास उस दौरान आते हुए अमुकर जिस जगह पर आए हैं, टीम एनआर जूनियर उस जगह पर रहने वाले हैं। स्कोप ऑन करके फायर देने की कोशिश, कुछ डैमेज जो कि है वो दागे जाते हैं, लेकिन प्लेयर कवर के अंदर जाएंगे दोबारा से। हमें टीम एक्सेस वो आगे बढ़ते हुए मेक श्योर कर रही है कि अपने नाम अपने प्लेयर्स का एक कवर जो कि है वो प्रोवाइड यहाँ पर से जरूर कर दिया जाए। ग्लू वॉल इधर रहने वाली है, प्लेयर को स्पॉट डाउन कर लिया जा चुका है, ग्रेनेड लॉन्चर के साथ नॉक निकाला जाएगा एंड राइट विद द फिनिशर। चौथा एलिमिनेशन टीम एक्सेस के पास आते हुए। अब ना तो सिर्फ टीम एक्सेस जो कि है वो सर्कल के अंदर रहती है, बल्कि सिमिलर साइड इनके क्लोज लाइन से जो कि टीम नंबर 12 पीटीआर का नाम जो कि गुजर रहा था, उनको अब यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा। Exactly. RL, they are being a bit defensive, but in team इनके बिल्कुल सामने आ चुकी है। F4 का स्क्वाड ये फाइट लेना चाहता है, ये फाइट को अवॉइड नहीं करना चाहेगा। एक प्ले की एचपी काफी कम होती है, वापस अब कर दी जाती है। नेरो यहाँ पे शॉट लेने से बाहर आते, एक प्ले को नॉकडाउन भी कर दिया जाएगा। नाउ ही वांट टू कैपिटलाइज ऑन द एडवांटेज, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैन ही टेक दिस फाइट? इट्स नॉट गोना बी एन इजी जॉब, 3 प्लेयर्स वहां पे मौजूद है एंड यू वांट टू टेक अ 1v3, लेकिन जो चौथा प्लेयर अकेला रहने वाला था आरएल का, भागना जरूर चाहता है बट भागने नहीं दिया जाएगा। पीपो को यहाँ पे शॉट्स लैंड करके नॉकडाउन कर दिया जाएगा। पीपो बचने की भरपूर कोशिश करते हैं बट नाउ look at that, RL के एक और प्लेयर को भी नॉकडाउन कर दिया जाएगा। टीम यहाँ पे PL के पास और F4 के पास एक ह्यूज एडवांटेज आ चुका है, ऑल्दो F4 भी यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज जरूर लेती है। दे हैव टू मेक श्योर कि ये फाइट कंप्लीटली अपने टर्न अराउंड कर दी जा सकती है। RL स्टिल लॉस्ट अ 1 प्लेयर, नाउ द 2 प्लेयर्स आर ट्राइंग टू रन अवे एज वेल। बूस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी प्लेयर्स उनको चेस करेंगे। F4 अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी अपनी गेम लूज कर दी थी एंड लुक एट दैट, दे आर नॉट रिटर्निंग फ्रॉम F4। F4 खुद भी भाग रही है बिकॉज़ एक तीसरा स्क्वाड यहाँ पे आ चुका है एंड दे आर लाइक आप सब यहाँ से निकले, हमें कोई इजी किल चाहिए। पीटीआर के सीमो अपने प्लेयर को छोड़ के चले जाएंगे। सकुया यहाँ पे जरूर उदासी का इजहार करेंगे, क्यों मुझे छोड़ के गए। सीमो को पे शॉट लैंड की जाती है, वन गेट्स कनेक्टेड, स्टिल इन द सेफ जोन एंड सकुया यहाँ पे अब के लिए मौजूद है। इस टाइम पे 3 प्लेयर्स के दरमियान में क्या अचीव कर पाएंगे, क्या कुछ कर पाएंगे एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 0, which is not a great number but it's okay, you got it। और अब वहां से एक ही प्लेयर भागना शुरू करते हैं बट फाइट्स खत्म नहीं हो रही। टॉरेक्स फाइट्स एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, हर जगह फाइट्स चल रही हैं। एंड आई डू बिलीव कि ये लास्ट मैच की जो कि हमें खूबसूरती देखने को ज़रूर मिल रही है इन फाइट्स की, लेकिन लतीफ़ जिस तरह ही बाहर की तरफ जाते हैं उनको भी नॉकडाउन ज़रूर कर दिया जाएगा। फिनिशर मिलता है, टीम आइकन अपना एक खिलाड़ी गवाते हुए 2 एलिमिनेशन आ जाते हैं, लेकिन जावेद जिस तरह ही बाहर निकलते हैं उनको भी टेक डाउन ज़रूर कर दिया जाएगा। एर्जा और गेमर के ऊपर सारे का सारा दारोमदार बन चुका हुआ है। सर्कल बैक साइड से आ रहा है, डैमेज सर्कल अलग देने वाला है। PTR YSF हाथ में एक अच्छी ऑम इन्होंने पकड़ी हुई है, ऑम का एक शॉट भी अगर दाग दें तो बहुत ज़्यादा एक डैमेज जो कि है वो प्लेयर के पास आ सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि खुद भी अगर एलिमिनेट हुए तो एक कंप्लीट टीम का एलिमिनेशन जो कि है वो आएगा। टीम का एक फुली एलिमिनेशन आप हैशटैग नंबर 12 पे नहीं लेके आना चाहते, 13 पे नहीं लेके आना चाहते। ड्रोन आता है GW के पास, लेकिन बाखूबी से उस ड्रोन को फाड़ दिया जाएगा। जितना भी रिकॉन था वो ख़त्म किया गया इस पीक एरिया पे। कहीं ना कहीं 2 टीम्स एक छत पे रहती हैं जो कि GW का नाम देखने को मिल रहा है, सैवेजेस का नाम इनके बिल्कुल बिलो पे हमें एक कंपाउंड्स के अंदर, इसी घर के अंदर जो कि है वो देखने को मिल रहा है। बट स्टिल देयर आर 13 टीम्स। ये तो सेंटर के अंदर रहने वाले हैं, बट वेयर द रेस्ट ऑफ द टीम्स? आर कहाँ है, जीजो वाली टीम कहाँ है, RL का नाम कहाँ रहने वाला है, NA9 का नाम जो कि है वो कहाँ हमें देखने को मिलेगा। सिमिलर साइड टीम स्टार्स का जो कि नाम है थ्रू आउट द जर्नी, वो भी एक अच्छे एलिमिनेशन अपने लिए निकाल रहे हैं। वो किधर रहने वाले हैं और फाइट्स उनकी भी किस तरह से बन रही है, ये सबसे बड़ा अभी के लिए सवाल रहेगा आरजी। डेफिनेटली ये बड़ा सवाल रहेगा। GW लुक एट दैट, दे रियली लव दिस प्लेस, उनको इस जगह से बहुत मोहब्बत है। लास्ट गेम जो हमारे पास बर्मुदा के ऊपर खेली गई थी, यहीं पे बैठे थे, यहीं पे लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट टीम से जो एलिमिनेट हुई थी, नाउ दे आर बैक टू दैट पोजीशन और दैट लुक्स लाइक अ रियली ग्रेट पोजीशन एज वेल बिकॉज़ समवेट सर्कल के अंदर एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन रहती है। बट नाउ द सर्कल इज गोना बी क्लोजिंग इन रियली सून, हर तरफ से यहाँ पे प्रेशर आता हुआ नजर आएगा एंड द सर्कल जिस तरफ जाएगा वो एक बहुत अच्छी बात आती है। लुक एट दैट, GW इज राइट नाउ इन अ सेफर पोजीशन, बट अगला सर्कल छोड़ जाएगा। GW shouldn't get too comfortable with that because अगर आप एक जगह से ज्यादा comfortable हो जाएं, you will be the earliest team to get eliminated when the circle starts closing in because आप बाहर नहीं निकल सकते। Access on the other side, they are looking super deadly right now, इतने deadly मुझे अभी तक कोई और स्क्वाड नजर नहीं है इस मैप के अंदर। The way they are moving ahead, trying to take multiple fight and now they are on to GW meta। यहाँ पे शॉट सेट करने की कोशिश करते, शॉट सेट कनेक्ट भी कर पाती, नॉक नहीं निकाल पाता, बट नाउ टीम एक्सेस बहुत करीब आ चुके हैं। GW they'll try to hold the edge of the circle as much as they can, they have to be careful कि यहाँ पे जल्दी eliminate हो भी सकते हैं because they are surrounded by a lot of teams। They are definitely surrounded by a lot of teams, लेकिन उन टीम्स को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से अपने नाम उन टीम्स का एलिमिनेशन जो कि अपने नाम करते हुए नजर आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल
रहने वाला है। और अगर टीम GW वो एलिमिनेशन निकालने में कामयाब होती है तो डेफिनेट एक अच्छी एहदाद, एक अच्छी पोजीशन जो कि वो एटलीस्ट इन द पॉइंट्स टेबल अपने नाम सिक्योर कर सकते हैं। नंबर 12 टीम है जो कि PTR की रहने वाली है। स्पॉट डाउन तो ज़रूर किया जाता है टीम स्टार की तरफ से, शॉट्स भी दागे गए, लेकिन एज सच कोई नॉक, कोई एलिमिनेशन वो नहीं निकल पाता। सिमिलर साइड टीम GW और कोशिश कर रही है टीम INS के प्लेयर्स को देखने के लिए। INS सर्कल से बाहर है, सर्कल के अंदर उनको एंट्री ज़रूर देनी है, तो सर्कल के ऊपर आई स्टिल थिंक कि GW जो कि है वो खेल सकती है। सर्कल के एक कवर के ऊपर प्लेयर्स को मजबूर किया जा सकता है कि वो आगे की तरफ आए। जिस तरह ही सर्कल के अंदर आने के लिए वो प्लेयर्स आगे की तरफ बढ़ते हैं तो GW आसानी से वो एलिमिनेशन अपने नाम निकाल सकती है। स्टार्स के लॉ टीम आर के लिए मुश्किलात इधर खड़ी करते हुए नॉकडाउन पे नॉकडाउन जो है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। अमगर की तरफ से भी एक नॉकडाउन ज़रूर विद ग्रेनेड जाएगा, बट PTR हिप हॉप वो आगे बढ़ना चाहते हैं। 6 एलिमिनेशन सो फार इस टीम के रहने वाले, लेकिन लुमी आप किल फीड देखें। सिमिलर साइड टीम स्टार भी किल फीड के अंदर अपना नाम शुमार करते हुए बैक टू बैक एलिमिनेशन आ रहे हैं। लुमी की तरफ से भी कुछ अच्छे एहदाद, कुछ अच्छे शॉट्स दागने की कोशिश, काफ़ी लो किंग रहने वाले हैं। इट्स 1 HP फॉर द किंग एंड इट्स ओवर। देखते ही देखते टीम स्टार को भी यहाँ पर से बाहर तक ज़रूर दिया जाएगा। नाउ वर डाउन टू द टॉप 9 टीम्स जो कि इस पूरे मैच में 34 खिलाड़ियों के ऊपर मरहला जो कि है वो चेंज हो चुका है। पीक से भी सर्कल निकल चुका है। एक हार्ड वेस्टर्न एंगल का शिफ्ट सर्कल का देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस वेस्टर्न एंगल पे ऑलरेडी कुछ टीम्स का नाम अभी भी मुयसर रहता है। टीम NA9 अलॉन्ग साइड टीम XS, ये दोनों की दोनों आपस में फाइट की तरफ जा सकती हैं। बोला इनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि स्कोप ऑन करके प्ले को एलिमिनेट करें, लेकिन ऐसा कोई कनेक्टिविटी प्ले की तरफ से आती नहीं है। PXL इन द मीनवाइल वो घरों के अंदर पहुंच चुके हैं। टीम GW जो किया वो घर की छत पे थी कुछ देर पहले, अब घर के अंदर आ चुके हैं। GW के साथ फाइट जो की है, इंगेजमेंट आती भी है, एलिमिनेशन मिलता है। एंड विद दिस फायर टीम GW भी अपने नाम एलिमिनेशन लेके जाने में कामयाब, लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन विद द टीम XS? देखते ही देखते उनका भी नाम यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, लॉबी की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। एंड टीम NA9 बहुत खूबसूरती के साथ कुछ देर पहले एक ऐसा लगा था कि SS इन पे भी हावी पड़ सकती थी, लेकिन उल्टा यही XS पे हावी पड़ जाते हैं। टीम शिफ्ट 8 एलिमिनेशन के साथ पीक के बाहर मौजूद है। टीम स्टार्स इनके सामने रहने वाली यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी तरफ से। सीमॉक्स लेफ्ट साइड से जाना चाहते हैं, सो GW का स्क्वाड माय बैड अगेन एंड अगेन, बट वहां पे सामने प्लेयर्स रहते हैं। GW के ब्लू वॉल का इस्तेमाल किया जाएगा और सामने स्टार्स का स्क्वाड भी इतने आराम से, सॉरी GW का स्क्वाड इतने आराम से एलिमिनेट नहीं होना चाहता। 2 पैक बाहर निकलते हैं, शॉर्ट लाइन करने की कोशिश करते हैं, वापस अंदर जाना पड़ेगा। एंड दे आर ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द राइट साइड एज वेल, मे बी वांट टू अवॉइड दिस फाइट, बट वहीं भी यूटिलिटी बिल्कुल सामने SFT के प्ले के सामने लैंड करती है, बट उनकी हीलिंग उनको वापस 100% HP पे ले जाएगी, ऑलमोस्ट 98 के ऊपर। But GW, the way they awarded this fight is completely insane. सामने से नहीं, राइट वॉल को हक करते हुए बाहर निकल गए, सर्कल के अंदर आ गए। एंड शिफ्ट नाउ दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सटेंड अ बिट एज वेल, बट GW के प्लेयर बिल्कुल रियलाइज नहीं करते कि बैक साइड से जहां पे भाग गए थे वहां पे ऑब्वियसली टीम मौजूद होगी, एंड वहीं से शॉट आती है, उनको मल्टीपल साइड से ध्यान करना पड़ेगा। दे हैव टू सर्वाइव देमसेल्व्स, यहां पत्थर के पीछे रहना पड़ेगा, बट टीम SFT दे आर आल्सो इन अ गुड पोजीशन। ये पूरा का पूरा जो यार्ड का एरिया रहता है उसके अंदर आराम से से बैठे हुए हैं। मैक्स यहां पे हीलिंग का लगा रहे हैं, यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाए, इनके ऊपर एक प्ले को नॉकडाउन कर दिया जाए। PTR की तरफ से शॉट्स लैंड की जाती है, GW के टाची भी इनको नॉकडाउन कर देते हैं। एंड नाउ GW के टाची यहां पे खुद सॉरी भी नॉकडाउन हो जाएंगे, मेटा भी नॉकडाउन हो जाएंगे। स्टार के 2 पैक यहां पे मौजूद है और वहां पे 2 पैक जो GW के भी रहने वाले हैं वो भी रहेंगे, बट टाची दोबारा नॉकडाउन हो जाएंगे। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर GW टू सर्वाइव डिस्पाइट द फैक्ट कि सर्कल यहां से बाहर जा चुका है, दूर जा चुका है और ये तीनों टीमें फाइट ले रही हैं। और अब GW के सामने जो ये टीम फाइट भी ले रही है उनको भी यहाँ से जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन शेफ के ऊपर एक खूबसूरत सा ग्रेनेड लॉन्चर लैंड करते हैं एंड दे टेक देम आउट ऑफ द गेम, लीविंग ओनली 4 स्क्वाड्स बिहाइंड। GW फाइनली ये फाइट जीतते हुए नजर आती है। मेटा को रिवाइव नहीं किया जा सकता बिकॉज अब टाइम गुजर चुका है, बट GW विल प्रोसीड विद द 3 प्लेयर्स अहेड। बट कमिंग ऑन द साइड ऑफ टॉरिक्स, यहाँ तो एक अलग दुनिया बस रही है। यहाँ पर एक अलग ही दुनिया हमें इस कंटेनर के अंदर ज़रूर देखने को मिली है। लूट का सिनेरियो जीजो किंग की तरफ से हमें ज़रूर देखने को मिला। दोनों एंट्रेंसेस पे ग्लू वॉल लगा दी गई और इस खिड़कियों से इस शीशे के थ्रू बुलेट प्रूफ ग्लास जो कि रहता है उसके थ्रू प्लेयर्स को अब ये स्पॉट डाउन जरूर करेंगे। फाइन फिल नी जो कि इनफैक्ट वो देख रहे हैं टीम GW के प्लेयर्स को दोबारा से ऑम के शॉट्स ये कुछ दरकार रहते हैं, लग सकते थे प्लेयर के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता। UAV वो डिप्लॉय टीम GW की तरफ से कर दिया जा चुका है। लोकेशन दबाने वाली है टीम PTR इन द मीनवाइल किलिंग स्प्री अपना स्टार्ट करते हुए बैक टू बैक टीम GW 2 पैक जो कि है वो एक नॉक निकालते हैं। कंफर्मेशन भी उस प्लेयर के ऊपर जरूर आते हुए। सिमिलर साइड अगर बात की जाए इन टोटल टीम्स की तो 4 ही नाम, PTR का, टीम GW का सिमिलर साइड हमें
और एक दो नाम जो कि थे वो ज़रूर देखने को मिले। NA9 जो कि रहता है, जीरो किंग का नाम जो कि था वो ज़रूर शुमार होता है, लेकिन GW इटाची वो आगे जाना चाहते हैं। सो फार 10 एलिमिनेशन इस टीम की ज़रूर रहती है। ग्लू वॉल तोड़ने की भरपूर कोशिश, 10-14 का ये एक शॉटगन का सफ़र जो किया वो किया जा सकता है कि एक ही फटका आरजी अगर लग गया प्लेयर के यहाँ पर से खात्मा ज़रूर हो जाएगा। बट इताची थोड़ा सा सेफर एंगल पे खेलना चाहते हैं, प्लेयर को मजबूर करना चाहते हैं कि वो आप आगे की तरफ आएँ, वो उनको सर्कल के अंदर आने की मजबूरी है जो कि है वो ज़रूर दिखाई जाए। लेकिन लॉन्ग रेंजेस के फायर, लॉन्ग रेंजेस के स्प्रे क्या वो दागे जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। एंड अ ब्यूटीफुल लाइक इस कंटेनर के अंदर एक अच्छी ग्लू वॉल बना के कॉर्नर पे तो बैठे हुए हैं, लेकिन अगला सर्कल निकलना है, अगले सर्कल के अंदर उनको भी जाना है। इताची इनके पास एक ग्रेनेड आएगा, डैमेज जो किया है वो 2 पैक को ज़रूर मिलते हुए नजर आएगा, जिसमें DW अब अपने 2 खिलाड़ियों के ऊपर इताची और PXL के ऊपर सर्वाइव करें। लेकिन इताची को इस दफ़ा नॉकआउट जरूर कर दिया जाता है। PXL इन द मीनवाइल वो आगे जाना चाहते हैं। इताची का कंफर्मेशन भी आते हुए 2 वर्सेस 1 का ये जो कि सिनेरियो है फाइट के इनफैक्ट वो ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन इट्स 2 वर्सेस 3 का सिनेरियो। PXL वो अकेले खिलाड़ी इस वक्त के लिए बचे हुए हैं क्योंकि 2 पैक पीछे रहने वाले हैं। प्लेयर आएंगे, TBS का इस्तेमाल एक अच्छा यहाँ पर शॉटगन का इस्तेमाल करते हैं, दोनों खिलाड़ियों को गिराते हैं, लेकिन एक सेल्फ रिवाइवल किट से प्लेयर वापस अपने पैरों पर खड़े तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन क्या रिवाइव दे पाएंगे? द आंसर इज नो, रिवाइव तो नहीं दिया पाता। और देखते ही देखते इट्स अ ब्यूटीफुल बूया फॉर द टीम GW, अपने नाम खूबसूरती से ये मैच का लाइक बूया लेने में ज़रूर सिक्योरमेंट कर जाते हैं। GW जहाँ पर से ग्रेट वॉल की टीम रहती है, समवट हमने देखा था कि थोड़ा सा लैग कर रहे थे, हैशटैग नंबर 4 पे थे, लेकिन ये बूया के बाद मे बी हैशटैग नंबर 1 पे तो ना आए, लेकिन हैशटैग नंबर 2 पे एटलीस्ट अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। डेफिनेटली अपनी पोजीशन ये लोग सिक्योर कर सकते थे, बट व्हाट अ गेम इट वाज। ग्रेट वॉल, दे वर अ बिट शेकी, दे नीडेड सम पॉइंट्स टू मेक श्योर दे क्वालिफाई इन अ सेफली। yeah. ये लोग पहले भी कर रहे थे, बट the way they ended their day with a wonderful booyah, that was impressive। और खास तौर पे ये वो टीम थी जो कि स्टार्स DZ, उसके अलावा जी टीम सैवेजेस और ओलंपिया के पास नजर आ रही थी, बट गेम नंबर 3 और 4 में लोग परफॉर्म नहीं कर पाए, बट दे डेफिनेटली बाउंस्ड बैक विद अ वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस एंड बूया लेके जाते हैं। पीक का एरिया इनका एरिया रहता है, ये पहले भी बरमूदा पे यहीं पे तो सर्कल कहीं यहीं पे क्लोज होता हुआ नजर आया था। अगेन पीक के एरिया पे ही सर्कल ने प्रेफरेंस दी है। द लास्ट टाइम दे मेड अ मिस्टेक, ये उस पीक के जो कंपाउंड के ऊपर मौजूद थे उसको छोड़ नहीं पाए थे, एंड दिस टाइम दे डिड परफेक्टली फाइन। और इस तरह जहां पे इन्होंने वॉल को हक करके शिफ्ट के स्क्वाड को अवॉइड Oh करना, yeah, that was दैट मे बी द की मोमेंट एंड द बेस्ट मोमेंट ऑफ इट ऑल, कि इन्होंने इनके सामने 4 प्लेयर भागते हुए आ रहे हैं, दे लाइक दिस इज नॉट आवर कंसर्न, वी गॉट इनटू दिस लास्ट टाइम, और ये लोगों ने एलिमिनेट किया था, बट जो सामने पत्थर है वहां तक जाना हमारा ज्यादा जरूरी बात है। दे डिड दैट एज वेल। वो फाइट इन्होंने बाद में ली थी, इन्होंने बाद में आके शिफ्ट को एलिमिनेट किया था, एंड ऑब्वियसली शिफ्ट ने भी काफी से डैमेज दिया, एक प्लेयर को एलिमिनेट किया, दूसरे को नॉक किया था। इट गॉट टू अ पॉइंट ऑफ मे बी 2v2 2v1, बट इन द एंड GW won, and their decision to take that fight later into the game was an impeccable decision, because सर्कल के प्रेशर के साथ फाइट लेना आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल, आपकी मैकेनिकल स्किल्स को काफी हर्ट कर जाता है, बट ऑल ऑफ इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव फ्रॉम द साइड ऑफ GW। बिल्कुल, लेकिन अब चलेंगे हम हाइलाइट्स की तरफ, और GW की कुछ और शानदार परफॉर्मेंसेस जो कि हाईलाइट की तरफ आई हैं उनको भी देखते हैं। कुछ और शॉट्स जो कि मिस आउट कर दी गई हैं थ्रू आउट द सिनेरियो वो भी हम ज़रूर देखेंगे। अर्नन स्काई एक अच्छा पहला नॉक निकालते हुए दूसरी तरफ खुद नॉकआउट ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन स्टार्स का ये जो कि कंटेनर के अंदर प्लेयर को ढूंढ के मारना था, एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक एक डोमिनेशन जो कि था सर्ट ज़रूर कर रहा था। आग में मॉक्स यूरी को एलिमिनेट करते हैं, इस दौरान फ्रेड जो कि थे वो गाड़ी पकड़ के INS के प्लेयर्स सर्कल के अंदर अपनी एंट्री ज़रूर लेके जाना चाहते थे, लेकिन अमगर विद द ग्रेनेड लॉन्चर एक अच्छा एलिमिनेशन इनकी तरफ से भी आया ज़रूर था। स्काई ही वॉज द गाय जिनको पकड़ के जो कि एलिमिनेट यहाँ पर से ज़रूर किया जाता है। सिमिलर साइड टीम स्टार देखते ही देखते अपने आखिरी प्लेयर पे आ ज़रूर चुकी हुई थी, और उनका भी खात्मा कुछ ही देर के बाद उसके हमें ज़रूर देखने को मिला था। बट द फाइट जो कि वॉल के साथ साथ चल रही थी, NA9 टीम स्टार्स के 2 पैक जो कि GW के साथ यहाँ पर खेल रहे थे, एंड इन द वेरी एंड एज वेल प्लेयर रिवाइव तो हो जाते हैं सेल्फ हीलिंग किट के साथ, लेकिन वो सेल्फ हीलिंग किट जो कि थी वो इतना कवर नहीं उनको प्रोवाइड कर पाती, इतनी HP नहीं दे पाती है कि वो 2 प्लेयर्स के साथ बैक टू बैक अपनी फाइट के अंदर इंडल्जमेंट दिखाएं और जो कि बूया था उसको लेने की कोशिश करें। एंड एट द वेरी एंड GW बहुत खूबसूरती के साथ अपने इस मैच का बूया लेने में कामयाब होती है। डेफिनेटली, बट एक चीज़ जो मैं कहूँगा वो
जो difference नजर आया था, obviously we have three teams contesting for the number one position. That was Star DC, Olympia, and Savages. They are really close, but Olympia का बूया नहीं था. Star DC का बूया comfortable नजर आता था. Like they were in control. लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं थे कि 3-4-5 में ले जाए. Although GW and Savages, they had to fight for Booyah. They had to struggle and they had to lose their players multiple times. They had to rotate as well. But whenever Stars DZ का वो Booyah लेके जाती थी, उनके लिए मैं कहता हूँ कि एक इम्प्रेसिव तरीके से वो लेके जाते हैं. 4 प्लेयर सर्वाइव करें कंफर्टेबली, वो लोग लास्ट सर्कल के अंदर आते हैं और वो Booyah लेके जाते हैं. दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव ऑन देयर साइड. बिल्कुल, वो एक बहुत ही एक इम्प्रेसिव जो कि था, हमें गेम ज़रूर देखने को मिला. लेकिन मेरा मेन कंसर्न जो कि है वो टीम स्टार का रहने वाला था कि हाउ डिड टीम स्टार नॉट मेक इट टिल द वेरी एंड. एक अच्छा एंडिंग पॉइंट जो कि था वो उनकी तरफ से क्यों नहीं आया. स्कोर बोर्ड की तरफ हम ज़रूर चलना चाहेंगे और सारे एहदादों को अब प्लस करके ज़रूर देखते हैं कि व्हाट द सिनेरियो इज़. इस मैच का बूया टीम ग्रेट वॉल 26 पॉइंट्स अपने नाम लेके जाने में कामयाब हुई. दैट मीन्स के 64 पॉइंट्स इनके पास आ चुके हैं पिछले मैच के बाद. आई बिलीव सो 38 पॉइंट्स इनके रहने वाले थे. द लीडर्स 16 पॉइंट्स लेके गए. प्रेडेटर जीजी वो भी 16 पॉइंट्स लेके जाते हैं. शूटर्स वो 16 पॉइंट्स के साथ रहने वाले हैं. सिमिलर साइड NA9 वो 13 पॉइंट्स. स्टार डीजी 11 पॉइंट्स. एंड टॉप पे तो ये टीम थी 75 पॉइंट्स. अब इस 11 पॉइंट्स के बाद इनके ज़रूर एंटर कर दिए गए हैं आइकन 8 पॉइंट्स, INS 5, फैंटास्टिक 4 5, रेबल 4, सैवेजेस 3, आर्क टीम 2, एक पे ओलंपिया और ब्लैक पीपी जो कि है वो 0 लेके जाते हैं. ओलंपिया एक ऐसे मरहले पे एलिमिनेट हुई है जहां पर एक्सपेक्टेड नहीं था. सबसे ज़्यादा चांस जो कि था नंबर 1 पे आने का इनका और टीम सैवेजेस का रहने वाला था. और सबसे पहले एलिमिनेट ही इन दो टीम्स को किया जाता है कि सैवेजेस वो 3 पॉइंट्स टोटल पे एलिमिनेट की गई. ओलंपिया उनको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है और उनका खात्मा कर दिया जाता है. Yes. एंड डेफिनेटली आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ का थोड़ा इशू आ चुका था. बट मेजर कंसर्न इस कि सैवेजेस और ओलंपिया की साइड से दोनों की तरफ से अभी लोग नंबर 1 नहीं आ सकते. स्टार डीज इज डेफिनेटली द चैंपियन ऑफ टुडे. दे हैड अ ग्रेट डे एंड दे वर कंफर्टेबल, गॉट बैक टू बैक बूया. बाकी 3 गेम में अबव एवरेज परफॉर्मेंस दी है. बट आई वांट टू सी द ओवरऑल स्कोर कार्ड. द मेजर क्वेश्चन राइट नाउ, द सेकंड क्वेश्चन, कि वो कौन सी टीम है जो क्वालिफाई कर रही है और जो क्वालिफाई नहीं करी. हाउ क्लोज दे आर, व्हाट ऑफ अ ग्रेट Oh, yeah. कंपटीशन इट इज, एंड दैट आई हैव टू सी. लीडर्स की साइड से भी एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, प्रेडेटर की साइड से भी एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आती है. एंड वी हैव द चैंपियंस ऑफ इनविटेशनल क्वालिफायर Q2, द नंबर 2, एंड दैट इज गोइंग टू बी द स्टार्स DC with a total of 88 points. Yeah, guys, I'm calculating. मैंने साथ बुक रखी है, साथ में कैलकुलेटर रखा है, 75. टेंशन नहीं लेनी. Not 85. 88. Wait, is it 88? क्योंकि 11 पॉइंट्स इस मैच के अंदर लेके जाते हैं और इससे पिछला मैच आई टोटली बिलीव के 64 पॉइंट्स थे उनके. So judging from that, 64, 11, that means 75. But overall, Hello, come 88, on, there we Torix, go. come on, Oh, Torix. okay, I I'm agree. so good at maths. मैंने मैट्रिक की, FSC पढ़ी हुई, ठीक है, मेरी मैथ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होगी, ठीक है. I definitely agree कि 88 है. Yes, we have Star Daisy at number 1. They are the champions at 88 points. Congratulations to them. They had a comfortable win. Savages in Olympia, they were close, but unfortunately last game they performed नहीं कर पाए. Great Wall, they had a huge jump. जहाँ पे वो इस competition में नहीं थे, they are very close to Olympia and Savages, and top 3 को top 4 बना दिया जाता है. The leaders with that last performance, they are qualifying. Shift as well, and for INS, they are qualifying. Unfortunately, N9 Shooter की performance उनको करीब नहीं ला पाती. Not being qualified by a few points, that is going to hurt a lot. As for the case for Rebels and Fantastic Four, they were trying their best. Fantastic Four की game भी अच्छी जा रही थी, but they got eliminated in the center. Rebels बहुत करीब आए थे, but not close enough. As for Black PP, Predator GG, Icon and Arc team, they had Black PP and Predator GG, they had their moments. As for Icon and Arc team, they were never in the game. They were relevant in getting some kill points. हमें नजर आए थे कहीं ना कहीं लतीफ आइकन के परफॉर्मेंस देते थे. आर्क टीम भी कहीं ना कहीं फाइट पुट अप कर रही थी, बट दे वर ऑलवेज एक दो प्लेयर नॉक करके खुद पूरी की पूरी एलिमिनेट हो जाती थी. सो दे वर लैक इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड देयर स्ट्रेटजी. बट
Congratulations to the teams qualifying for the next round. I hope you're happy, but the next stage is much more difficult because it will have teams from the open qualifiers. वो एक बहुत बड़ा stage एक momentum के साथ आएंगे. So I hope you're ready to fight a train of momentum. ओ यस, अगर आप मोमेंटम की ट्रेन से फाइट करने के लिए रेडी हैं तो ओपन क्वालिफायर्स के अंदर आपका नाम शुमार दर्ज हो चुका हुआ है। ये टॉप 7 टीम्स, कंग्रेचुलेशंस टू देम। लेकिन थ्रू आउट नंबर 8 नंबर 9 एंड इवन नंबर 10 इनके पास एक बहुत ही, मैं कहूँगा, एक अच्छा चांस था कि अपने आप को क्वालिफाई कर सकते थे। NA9 एक पॉइंट कमी के साथ वो जो कि हैं क्वालिफाई नहीं कर पाते। एक्स शूटर्स 3 पॉइंट्स के साथ जो कि है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। रेबल्स का नाम जो कि है वो फिर हमें कुछ हद तक 9 पॉइंट्स के ऊपर चेंज होते हुए ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन आफ्टर दैट वो सिलसिला कम्प्लीटली हमें गिरते हुए ही नज़र आया था कि कोई और क्लोज आ ही नहीं सकता था। बट ओवरऑल हमारे सामने रहती है। एंड नॉनदलेस स्टार डीजी थ्रू आउट आज के दिन पे पूरा दिन एक अच्छा, मैं कहूँगा, एक कंसिस्टेंटली जो कि थी इनकी परफॉर्मेंस कंसेक्यूटिवली, लाइक एक अच्छे एहदाद जो कि थे वो एलिमिनेशंस के लेके जा रहे थे। अगर इवन किल्स की सिंगुलर बात की जाए तो अकेले 57 एलिमिनेशंस जो कि हैं किल पॉइंट्स के ऊपर टीम स्टार जो कि अपने 88 पॉइंट्स को लेके जा रही है। मींस के 31 और पॉइंट्स जो कि हैं वो इन्होंने पोजीशन से निकाले हैं। बूया का जहाँ पर से 12 पॉइंट्स का एक रहता है, मींस के ज़्यादातर जो कि चांसेस थे इनके एलिमिनेशंस पे ही बने हैं। कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द 5 गेम्स जो कि इन्होंने खेली है, उन्होंने इसमें कंसिस्टेंटली कोशिश यही की कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेशंस लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा किल पॉइंट्स जो कि अपने नाम लेके जाएं। जिस तरह के सैवेजेस थी, ओलंपिया थी, ग्रेट वॉल थी, कोशिश इनकी तरफ से भी अच्छी ज़रूर की जाती है, बट वो कोशिश इतना रंग नहीं लेके आती है। पॉइंट्स तो इकट्ठा कर पाते हैं, बट एक ऐसा मौका इनको नहीं मिलता कि एलिमिनेशंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थ्रू आउट द गेम थे कि आपने पोजीशन भी लेनी थी, आपने बूया भी लेना था, आपने पॉइंट्स जो कि थे वो भी सिक्योर करने थे। वो पॉइंट्स एलिमिनेशन के नहीं सिक्योर कर पाते हैं। एंड आई थिंक वहाँ पर ये जो कि टीम है ना थोड़ा सा लैक कर जाती है, और स्टार डीजी का जो कि नाम था उसमें एक अपर एज अपने नाम ले जाती है। Definitely, that was the approach on the side of Star DC. But Torix, coming to the end part, what a day it has been. It was not outshined by Star DC. They had their moments, they are the champions, and they are the winner of the prize pool as well. But all in all, other than the fact that a lot of the team, not just one, we had Olympia, we had Savages, and lastly we had the great GW Great Wall putting up a very, very good fight. So that is my utmost happiness for the day कि हमारे पास ये competition एक one-sided affair नहीं था as for the champions. Star DZ didn't have it easy coming even after securing Booyah in 2 matches. Team Olympia and along with that the factor के साथ साथ दो टीमें उनको मुकाबला कर रही थी, which made them make sure that they should perform till the last game. आखिरी गेम तक वो लड़के गए हैं, आखिरी गेम तक वो मेक श्योर किया है वो चैंपियंस रहे, एंड दैट वाज अ वेरी गुड साइड फैक्टर ऑन देयर साइड एज वेल. सो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड गेम. कांग्रेचुलेशंस अगेन टू द टीम्स दैट क्वालिफाइड, एंड हमारे प्राइस पूल का भी हम देखते हैं कौन कौन सी टीम्स को मिला होगा, तो दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. अनफॉर्चुनेट फॉर द टीम जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, a bit disheartened to see that your journey will come to an end here, but obviously you have much more chances. I hope you learn from your mistakes जो आज आपने कहना तो नहीं चाहता बट आपने की हैं, जो आप बेहतर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर रोटेशन, इन टर्म्स ऑफ योर गन पावर, मे बी गोइंग आउट ऑफ द वे एंड गोइंग आउट के जहाँ पे अपने प्लेयर्स वनरेबल पोजीशन पे आ सकते थे. बट दैट इज जस्ट वन थिंग. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट अ टीम कैन लुक फॉरवर्ड लाइक लुक अपॉन टू मेक देमसेल्व्स बेटर, एंड आई होप नेक्स्ट टाइम आई सी दीज टीम्स, आई होप कि ये लोग अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर सकें, बिकॉज दे आर हेयर फॉर अ रीजन एंड आई थिंक दे कैन गो लॉन्ग वे. They are here for a reason and they are here to play. वो खेलने के लिए आई हैं और वो खेल भी रही हैं थ्रू आउट द जर्नी. उन्होंने एक अच्छे लाइक गेम प्ले जो कि थे अपने दिखाए ज़रूर, कोशिश ज़रूर की थी कि अपने नाम एलिमिनेशंस भी लेके जाएं, पॉइंट्स भी लेके जाएं, bट एट द वेरी एंड इट्स स्टिल स्टार डीजी जो कि चैम्पियंस का नाम जो कि अपना लेके जाते हैं, और डायरेक्ट एक बड़ी छलांग जो कि आरजी वो इस टीम ने ली है इन द ग्रैंड फाइनल में, जहाँ पर इन्होंने अपना नाम शुमार कर लिया. अभी और क्वालिफायर्स के राउंड आने हैं, अभी और लाइक ओपन क्वालिफायर्स, इन्विटेशनल क्वालिफायर्स हमें दोबारा से देखने को मिलेंगे. दिस वाज द Q2, अभी Q3 चलना है, Q4 चलना है, लेकिन आज का सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है. अब हम मिलेंगे आपको ऑन द नेक्स्ट स्ट्रीम. तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों. टेक केयर, हैव अ ब्यूटीफुल नाइट. अल्लाह ने के बान है. अल्लाह हाफ़िज़.
memories we made under the summer sun. Chasing after waves, a taste of berries on my tongue. Sipping on a feeling, sunny's got